chance to play with the guys that they've been watching on TV, maybe some of them playing along with their heroes, their ideals. So a marvelous opportunity, and definitely what a setting today. I think the pitch looks fantastic, and the bowlers, they will have a tough time. When we talk As about, usual. yeah, you talk about playing along with their heroes, there are lots of names which are very well known in the circuit and they've been around in Pakistan cricket. Someone like Yasir Shah, who is part of the team today. What's in it for them, apart from sharing their experiences or identifying new talent for the board? Well, for them now it's time to pass on whatever they have. And the best way to do that is in the field, on the go, where players are in action. And that is the time when you, under pressure, you perform in front of the boys and keep them calm and let them think on the toes when it is required. So I think a senior player who definitely is someone who is not going to play again for Pakistan, but definitely can serve as someone who is a great teacher on the go for the young boys. We talk about Abbottabad and Rawalpindi playing today. Let's have a look at the squads. Rawalpindi se start karte hain, dekhte hain Rawalpindi ka squad kaisa hai. You might see a lot of names which our viewers might be seeing for the first time, and then there are certain names which have been performing like Umar Amin and Zaman Khan, Kashif Ali, Mehran Mumtaz, Mubassir. They're all part of Shaheen's. Yes, talking about the youngsters, Abdul Fasi जो है इन्होंने he scored runs, 100 किया, इसने chase में बड़ा अच्छा debut पे 50 runs किए. Kashif Ali, somebody who's been called to the Pakistan camp, young fast bowler, very talented. Mehran Mumtaz playing for Pakistan Shaheen. So a lot of good things to look at. Mohammad Fazan is there, and Umair Masood is also somebody who's been in and out of different camps which were of Shaheens and even the senior Pakistan side. And Umar Amin again, and the experienced campaigner along with him, Zaman. Let's have a look at the Abbottabad team, the squad rather, not the team, and find out. We'll also have quite a few names. Yasir Shah, we mentioned, is the captain. उसके अलावा काफ़ी ऐसे नाम हैं जो इस domestic circuit में भी रहे हैं, कुछ international खेले. फ़खर ज़मान इनकी टीम का हिस्सा हैं. Inquiring earlier on, Adil Naz is the name which the coach mentioned that he is somebody to watch out. He's a young fast bowler. उसी के साथ फिर आप आगे देखिए अगर फ़खर ज़मान और यासिर के होते हुए, there are plenty of youngsters. Khalid Usman, a very experienced campaigner, and so is Israr Hussain with them, the left-hand batter. ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि हमने देखे हैं, काफ़ी अरसे से क्रिकेट के सर्किट में रहे हैं. कुछ ऐसे नए लड़के हैं इस नए फॉर्मेट के हिसाब से जहां 18 टीमें, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. एक मेरा सवाल है जो कि शायद पहले किसी ने कभी आपसे किया हो. इंटरनेशनल लेवल पे तो खेलते ही हैं, टेलीविजन पे मैचेस जा रहे होते हैं, लेकिन इस लेवल पे नेशनल T20 पे जब मैच टेलीवाइज हो रहा है कंपेयर टू अ मैच जो नहीं हो रहा, प्लेयर के माइंड में ये चल रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ शायद दुनिया भी देखेगी या सिटी कंट्री देखेगी. Absolutely. आजकल तो ज़माना है वायरल चीज़ों का. So if you can play a big knock or maybe have an over जहाँ पे आप 4 से 5 छक्का मार दें या एक हैट्रिक कर दें, कोई आउटस्टैंडिंग कैच कर दें, रन आउट कर दें, मैच इफेक्ट कर दें in any position. A wicket keeper takes a blinder. So this all can go viral and you can be known overnight. आप पता चले घर से निकले कुछ लेने, सब जानते हैं आपको भाई किधर जा रहे हो, बड़े अच्छे शॉट मारते हो, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हो. So it's a big chance for everyone. अच्छा, बात करते हैं कुछ एस्टैब्लिश नेम्स की. जैसे हमने वर्ल्ड कप जब देख रहे थे उसमें काफ़ी जिक्र हुआ कुछ प्लेयर्स का कि दे शुड गो बैक टू द ग्रास रूट, गेट देमसेल्व्स मोर प्रैक्टिस. फ़खर ज़मान ने पिछले वर्ल्ड कप में लास्ट 2 मैचेस में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी. शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे. ही इज़ बैक एंड ही इज़ फीचरिंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर गेम. उनके लिए एक अच्छा ये ड्रेस रिहर्सल कहूँ या प्लेटफॉर्म कहूँ जहाँ पे वो अपनी आय और इन कर सकते हैं बिफोर पाकिस्तान टीम T20 फॉर्मेट्स में अपने पूरे ट्रिप स्टार्ट करे और फिर वर्ल्ड कप में जाए. देखिए जिस तरह की उन्होंने बारी ली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो तो एक आंख से भी खेल सकते हैं, जैसी उनकी फॉर्म लग रही है, एक आंख बंद करके भी खेल सकते हैं. और आई थिंक फॉर यंगस्टर्स आई थिंक दिस इज अ बिग ओकेजन टू प्ले अलोंग विद फ़खर हु हैज डन मार्वलसली वेल इन द वर्ल्ड कप. उससे पहले भी उसने पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार इनिंग्स खेली हैं. और उसकी खास बात यह है कि जिस दिन उसका दिन होता है उस दिन पाकिस्तान मैच जीतता है. उस दिन वो इफेक्ट करता है ऐसा कि इम्पैक्ट पूरी गेम के रिजल्ट के ऊपर होता है. एंड दैट इज समथिंग स्पेशल दैट ही कैरीज. और ये उसके साथ खेल के बच्चे उससे ऐसी चीज़ें पिक कर सकते हैं वेयर यू अलोन कैन इफेक्ट द होल ऑपोजिशन. फ़खर ज़मान की बात हो रही है, अमर सईद फ़खर के साथ है. आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई. हालिया वर्ल्ड कप में जारहाना बैटिंग करने वाले फ़खर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं. कैसे फ़खर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और अच्छा हूँ. T20 खेलने के लिए आए हुए हैं. अच्छा, आपने अभी ये हालिया वर्ल्ड कप में 126 रन की शानदार धुआंधार इनिंग खेली है. कुछ टूर्नामेंट के आगाज में फॉर्म आपकी ठीक नहीं थी, ड्रॉप भी हुए, वापस टीम में आए. कुछ बताइए हमें उस प्रोसेस के बारे में, क्या चल रहा था आपके दिमाग में?
नहीं, इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए आप जाते तो मेरे माइंड में तो ये था कि मैंने इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बनना है, लेकिन वो एक मैच खेलने के बाद जब ड्रॉप हुए हैं, और बस कोशिश यही थी कि फिर जब भी चांस मिले तो टीम के लिए परफॉर्म करें और मैच जितवाएं। और बस अल्लाह का शुक्र है कि जो मैच खेले उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हुई, और अगर हम सेमीफाइनल फाइनल खेलते और अच्छा होता है, लेकिन ये क्रिकेट इसमें होता रहता है। ये और जब आप ये इनिंग खेल रहे थे तो कोई खास प्लानिंग कुछ इस तरह, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब सिचुएशन आप के जैसे जारहाना प्लेयर को मिल जाए तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, तो आपको भी ऐसा ही लगा कि आपको एक लाइसेंस मिल गया था अपना गेम खेलने का? देखिए, अगर आप 400 रन चेस कर रहे हो तो बिल्कुल माइंड में यही था कि हमने गेम से आगे जाना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ही 8 रन का एवरेज चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है वनडे के लिहाज से। तो हमारे माइंड में भी यही था कि बस जैसे ही सेट होंगे तो क्योंकि मेरा रोल भी यही होता है कि जो मेरे साथ दूसरा खेलता है उसके लिए मैं बैटिंग को थोड़ा सा आसान करूं, क्योंकि मैं ही एग्रेसर खेलता हूं। तो बस मेरा भी यही प्लान था, और बस बाकी आपको पता है क्रिकेट में अगर आपका डे हो तो उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एबटाबाद से इस बार आप T20 नेशनल T20 खेल रहे हैं, क्या कहते हैं इस टीम के बारे में? क्या इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपने ज़रूर देखी होंगी, क्या लड़कों के बारे में ख्याल आते हैं आपके? देखिए, बहुत ज़बरदस्त टीम है ये, और हम लोग अभी मीटिंग में भी यही बात कर रहे थे, और मैंने उनको यही बोला कि अगर हम इस टीम से ये टूर्नामेंट ना जीते तो मतलब हम, इसका मतलब ये होगा कि हम अपने जो बेस्ट क्रिकेट है वो नहीं खेले, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग में भी डेप्थ है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, इवन स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। तो टीम बहुत ज़बरदस्त है, और देखिए हमारा कम्बिनेशन बनेगा तो इस टूर्नामेंट की मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द फेवरेट टीम होगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर आपके वक्त का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू जी, थैंक यू। फखर जमान के बारे में सवाल आपसे कमेंट्री में करूंगा डिटेल में, लेकिन ये क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आपका रॉक बॉटम हिट हो जाए फॉर्म में तो इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते, तो देन यू हिट योर वे बैक इनटू फॉर्म। देखिए, पर्सन विद हिज माइंडसेट हु नोज हिज गेम, तो उसके लिए फिर ऐसे ही है, ही विल कम आउट एक्सप्लोसिव नो मैटर व्हाट, एंड समटाइम्स यू रिक्वायर दैट। ओके, इस पे बात और होगी। पिच के बारे में कुछ हम डिटेल हासिल करेंगे शाह फैसल से। पिच रिपोर्ट हुई थोड़ी देर पहले, देखते हैं कि आज का सरफेस क्या कहता है। All set for the T20 cricket. The drama of T20 cricket is back. We are at the iconic National Bank Stadium here in Karachi on a beautiful afternoon. It's a little warm right now, but the breeze is always here in Karachi. And as the evening progresses, we're going to have perfect conditions for cricket. Looking at this arena, it's quite a large arena. Towards my front, it's 82 yards. Towards my back, it's 68 yards. But the straight boundaries are 75 yards. Talking about the actual surface, it's a typical National Bank Stadium pitch. It's straw-colored, it's rolled in, and very little grass on it. And with this kind of weather condition, it's just about perfect for T20 cricket. The team that wins the toss will have a dilemma, because National Bank Stadium is a very hard ground to defend on. But looking at this surface, it'll be very hard for the skipper who wins the toss not to bat first. All right, let's hit the toss and then we'll have more talk. It's Ali Yunus with the two captains. We are in the City of Lights for AH Group Jazz 4G National T20 Cup, and we are all set for the toss. The two captains, Yasir Shah for Abbottabad, Umar Amin for Rawalpindi, and Nadeem Arshad is the match referee. Umar Amin is going to give it a spin. Tails is the call. Heads it is. उमर अमीन, क्या करेंगे और क्यों? पहले बॉलिंग करेंगे हम लोग। क्यों आपको लगता है कि सरफेस पे बॉलिंग अच्छा ही फैसला? वेल आई थिंक सरफेस तो इतना कोई चेंज नहीं होगा। दोनों इनिंग्स में काफ़ी ड्राई लग रहा है, काफ़ी फ्लैट लग रहा है, बैटिंग के लिए अच्छा लग रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक टारगेट उनको अच्छे लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करके उसको चेस डाउन करें। नैरो मार्जिन से आप पाकिस्तान कप में रह गए थे, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के ये ग्रुप्स बने हुए हैं हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले मैच से अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आपकी टीम न्यूज़, काफ़ी प्लेयर्स आपके गए हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं। जी बिल्कुल, यासिर खान आए हैं हमारी टीम में प्लेइंग 11 में। बाकी हमारे 3 पेसर्स, 1 विकेट कीपर और 2 स्पिनर्स, 5 बैटर्स। गो वेल उमर अमीन। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। शाहजी, टॉस हार गए आप, जीतते तो क्या करते? हम भी बॉलिंग ही करते हैं। क्यों लग रहा है आपको कि इस सरफेस पे बॉलिंग ही सही फैसला? क्योंकि यहाँ पे पहला मैच है और पहला मैच में आपको देखना होता है कि क्या विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है, तो इसी वजह।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पाकिस्तान कप में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट ये टीम T20 के लिए अच्छी लग रही है। नहीं, टीम हमारी अच्छी है और हमारे यहाँ पे एबटाबाद रीजन ने अच्छा परफॉर्म किया, 4 डे में भी और 1 डे में भी, दूसरे राउंड पे भी गए हुए थे। हमारे प्लेयर्स अच्छे नए प्लेयर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो फास्ट बॉलर्स है, आदिल है और फयाज है, ये अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। और फ़खर कामरान गुलाम के आने से टीम को और बूस्ट अप मिलेगा। ज़बरदस्त, क्योंकि हमारे प्लेयर्स है और जितने सीनियर्स है, कामरान गुलाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स है और जिस फ़खर ज़मान है, तो सारी टीम अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। All the best, थैंक यू, Yasir Shah. थैंक यू। There you go. Rawalpindi has won the toss and they will be bowling first. चलिए टीम्स पे नजर डाल लेते हैं आज की 11 एबटाबाद की। ये है हमारे सामने जो कि पहले बैटिंग करेंगे और ऑफ कोर्स कोई इसमें वो नहीं कि फखर जमान ओपन करें, खालिद उस्मान एक बड़ी सरप्राइज है अगर वो ओपन कर रहे हैं तो। देखिए आई थिंक ये सिर्फ उन्होंने टीम दी है, बैटिंग ऑर्डर डेफिनेटली ये लगता तो नहीं है। बहरहाल आई थिंक ये जो 5 प्लेयर्स हैं इसमें फ़खर, खालिद हो गए, यासिर हो गए और उनके साथ आदिल नाज हैं जिनका नाम कोच ने लिया, तो खासे एक्सपीरियंस भी है इस टीम में, वेल बैलेंस। और जिस तरह फ़खर ने कहा कि ये टीम वन ऑफ द फेवरेट्स होगी, इसका मतलब है कि काफ़ी टैलेंट इधर अनअर्थ होगा आज। 3 बैटर, 2 ऑलराउंडर, बाकी 5 फास्ट बॉलर के साथ एबटाबाद आ रहा है इस मैच में। रावलपिंडी की नजर डालते हैं। उन्होंने आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। उनके कप्तान उमर अमीन और यासिर खान के ओपन में ज़ीशान मलिक काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। हैदर अली से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी होंगी। मुबस्सिर खान एक अच्छा नाम है जो कि नजर आए हैं शाहीन्स के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए रिसेंट टाइम्स में। महरान मुमताज़ का लेफ्ट आर्म स्पिन एंड देन सो ऑन जमान खान एंड मोहम्मद फैजान। देखिए इनका बड़ा प्रॉमिसिंग जो है फास्ट बॉलिंग यूनिट है। ऊपर से देखें एक्सप्लोसिव में हैदर अली है, उमर अमीन है, सो गुड थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिंडी साइड एज वेल। कल हमने देखा कि यहाँ 88% ह्यूमिडिटी थी। कल शाम को हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी तो ह्यूमिडिटी फैक्टर थोड़ा ज्यादा था। आज थोड़ी बहुत ब्रीज है। टॉस पे क्या कहते हैं, सही फैसला है? अभी तो खैर ये भी रात में ही जाएगा छोटे दिन। आई थिंक प्रेफरेबली अपनी टीम को देखते हुए शायद उन्होंने चेस किया। पिच में ऐसा कुछ नहीं देखा और इफ एनीथिंग अंडर लाइट्स पिच और बेहतर होती है, बिकॉज आई प्लेड ओवर हियर इन अंडर लाइट्स और यहाँ पे बैटिंग आसान ही रहती है और अगर ड्यू आ जाए तो आइसिंग ऑन द केक है। बट दिस गेम ड्यू इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल आई थिंक उमर ने अपनी टीम को देख के फैसला ठीक किया होगा। हमने काफी मैचेस देखे पाकिस्तान सुपर लीग के भी, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर है। यही रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे इस मैच का शानदार एक्शन। हमारे तमाम देखने वालों को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची से, जहां पर पहले 4 डे और फिर 1 डे के तमाम मैचेस की और इस रंगीनी के बाद हम पहुंचे हैं इस एक्शन पैक फॉर्मेट में, जहां पर आपको हर 3 घंटे के बाद देखने आप आते हैं और अब से 4 दिन के बाद वो 8 टीम्स मिलेंगी जो कि अगले राउंड में पहुंच के इस नए फॉर्मेट को एक मरतबा फिर अख्तियार करके एक नया चैंपियन लेकर आएंगी। तो इसका पहला ये वो मैच है जो कि आप तक पहुंच रहा है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम से, लेकिन इसके साथ एक गहमा गहमी पहले ही शुरू हो चुकी है रोशनियों के शहर कराची में। लेकिन इस मैच के साथ क्या कुछ होगा ये सब आप देख सकेंगे। फ़खर जमान को आपने देखा वो इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए, इस शानदार फॉर्म को कैरी करने के लिए वापस आए हैं इस T20 फॉर्मेट में। नुमाइंदगी कर रहे हैं एबटाबाद की और देखना होगा कि जो इन्होंने एक नया रंग इख्तियार किया था 50 के बाद 100 और उसके बाद ये वसी और रीज रिकॉर्ड 5,500 से ज़ायद रन, 27 की एवरेज जो के माने नहीं रखती, लेकिन 38 50 3 सेंचुरीज इस T20 के फॉर्मेट में बना चुके हैं। वो कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे पहला मैच और उसमें माने रखेगा कि वो अपने आप को सेटल करने में कामयाब हों और उस फॉर्म को भी कंटिन्यू कर सकें जो कि उन्होंने हासिल की है। इनके साथ हैं विकेट कीपर बैटर सज्जाद अली जो कि इनिंग्स की शुरुआत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब सरप्राइज मुबस्सिर खान बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं जो कि अब तक 32 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन एक टैलेंटेड ऐसे खिलाड़ी जो कि अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों एबिलिटीज से अगले को हैरान करने की सलाहियत रखता है। लेकिन शायद फ़खर जमान को देखकर ऑफ स्पिनर को लाने का फैसला किया है और पॉपुलर डिमांड पे वापस आ चुके हैं हमारे रोशनियों के शहर कराची में स्मार्ट एंड हैंडसम अली यूनुस। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू कराची। थैंक यू वेरी मच अकील, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द फर्स्ट गेम। रावलपिंडी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अच्छा फैसला है ये क्योंकि पिच बहुत ही शानदार लग रहा है, बेल्टर लग रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पिच मजीद बेहतर होता चला जाएगा और बैटिंग और आसान होती चली जाएगी। 4 फील्डर मौजूद हैं जबकि 1 पॉइंट के पीछे कवर्स में, जिसके साथ मुबस्सिर बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, जबकि ऑन पे 2 फील्डर लेने का फैसला किया है। सो हम सब को इंतजार था जैसे T20 फॉर्मेट का, वो वापस आ चुका है। 1 फील्डर को लेने का फैसला किया है लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पे, जबकि इसके साथ साथ
इस एक्शन पैक मैच में दूसरे फील्डर मौजूद होंगे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान। सो पहली गेंद नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम से दोनों टीम्स के पहले मैच की। तमाम फॉर्मेट्स आपने अली अब तक देखे, कवर किए और उसके उतार चढ़ाव, बड़ी शानदार क्रिकेट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये T20 फॉर्मेट है, बड़ा टाइमली इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, क्योंकि आगे जिस अंदाज से टीम शेप अप होती जा रही हैं खिलाड़ियों के लिए अपने आप को प्रूव करने का, PSL की आमद से पहले और फिर उसके साथ साथ उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज और फिर एक और मरतबा, ये तो पलक झपकते पता नहीं चलता, T20 का वर्ल्ड कप हमारे सर पे आन पहुंचता है, तो दुनिया हासिल कर लेने को होगी जो कि यहाँ परफॉर्म करने में कामयाब होगी। या अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे प्लेयर्स के लिए अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए, यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने आप को दिखा सकें, मनवा सकें। मुबस्सिर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा है, स्पेशली इस फॉर्मेट में अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी है नया बॉल करने की और उनके सामने है फ़खर जमान जो कि बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स खेली है वर्ल्ड कप में, शानदार पाकिस्तान के लिए। यस, T20 फॉर्मेट और जिस अंदाज से ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंडर का मैचअप पड़ता है उसमें देखना होगा फ़खर जमान क्या रंग इख्तियार करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ही की लाइन के साथ लगता है कि उनको वो टीज करेंगे कि शॉट खेलने के लिए जाएं, और इस जो एक एरिया था इंप्रूव करने के लिए लगता है वहां पे काम किया है फ़खर ने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान। या फ़खर जमान के आने के बाद इस एबटाबाद की टीम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि ये मिसिंग थे एबटाबाद में, वनडे कप में भी और 4-डे क्रिकेट में भी नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से। तो अब उनके आने के बाद यासिर शाह ने भी ये बात की कि उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, एक्साइटमेंट सी आ गई है और अब मुझे लगता है कि बैलेंस जो है वो बहुत बेहतर हो गया एबटाबाद टीम का। बड़ा मौका है मुबस्सिर के लिए बॉलिंग की शुरुआत करने का। एक स्टार बैट्समैन के सामने अब तक उन्होंने लो ट्रेजेक्ट्री के साथ गेंद की है, ज़्यादा फ्लाइट नहीं दी और इसी के ज़रिए से वो लगता है कि ज़ेर करने की कोशिश करेंगे। और ये ऑन साइड की बाउंड्री आज बहुत बड़ी है, 82 मीटर के 82 यार्ड्स का फासला है जो कि तय करना पड़ेगा फ़खर जमान को अपने टिपिकल स्लॉग शॉट के लिए, जिसको वो उसके ऊपर से खेलें। तो अब तक एक अच्छा फैसला नजर आ रहा है। और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं फ़खर जमान अब तक इस बॉलिंग को। जब बाउंड्रीज का आपने जिक्र किया, मेरी एक्सपेक्टेशन है T20 क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी लंबी बाउंड्री है, स्पेशली ऑन साइड अगर हम देखें फ़खर जमान जब बैटिंग करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया कि 82 मीटर्स की ये बाउंड्री है। ऑस्ट्रेलिया तो टीम टेस्ट साइड जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तैयारी जो है उन बाउंड्रीज की यहाँ पे T20 में हो रही है। पहला ओवर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खामोशी से मुकम्मल, 4 बिना किसी नुकसान के एबटाबाद। एबटाबाद की टीम का जिक्र हुआ क्योंकि रावलपिंडी का को हमने क्रिकेट देखी है पूरे कायद आज़म ट्रॉफी में भी, उसके बाद पाकिस्तान कप में भी, लेकिन एबटाबाद को हम नहीं देख सके एक्शन में। यासिर शाह है, फ़खर जमान, खालिद उस्मान एक और बहुत शानदार टैलेंटेड ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। कामरान गुलाम की वापसी हुई है, ये गेस्ट प्लेयर खेल रहे थे पिशावर से। उनके साथ साथ और भी काफ़ी बेहतर टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनको अब नए स्टार्स अब हम देखेंगे एबटाबाद की जानिब से। काशिफ अली नहीं है आज रावलपिंडी के लिए क्योंकि उनको कैंप में, पाकिस्तान टीम के कैंप में बुला लिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है थ्रू आउट कायद आज़म ट्रॉफी एंड पाकिस्तान कप। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट दिया है टीम को, उनकी कमी अकील डेफिनेटली महसूस होगी। डेफिनेटली फैजान गेंद करने आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे बाउंड्रीज की। आज पिच नंबर 6 पे मुकाबला खेला जा रहा है और अब ये फ़खर जमान के लिए फ़ायदा होगा कि ऑन साइड पर उनके लिए एरिया भी उनका फेवरेट रीजन वसी ओपन है, जो कि मिड विकेट का पूरा एरिया खाली है और बाउंड्री का साइज भी बड़ा नहीं है। और ये आए फ़खर जमान आपके लिए अपने जालिमाना अंदाज से 2 कदम आगे आकर बाउंड्री के ऊपर से पहला छक्का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट का। ज्यादा वक्त नहीं लगा उनको अपनी फॉर्म को यहां दिखाते हुए, थोड़ा दूर बॉल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा स्विंग ऑफ द बैट। और एरिया ये इनका फेवरेट एरिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये जो स्विंग बनता है काफी मदद हासिल होती है इससे एलिवेट करने में।
ये अच्छी खबर नहीं है रावलपिंडी के लिए, क्योंकि फ़खर जमान जब इस तरह खेलते हैं तो ये मूड में होते हैं, अच्छी फॉर्म में होते हैं, और जैसा ये पिच है ये सूट करेगा इनके स्टाइल को। गेंद की लेंथ को चेंज किया और अच्छे अंदाज से फखर को मजबूर किया है कि वो अपनी क्रीज में डीप जाएं, और उन्होंने भी इस पे एहतराम दिया। एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। जिस पिच का आप पहले जिक्र कर रहे थे वो अभी, क्योंकि बड़े मैचेस यहाँ पे खेले जाने हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त तक लगातार रोजाना 2-2 मैचेस होंगे, तो बड़ा चैलेंज रहेगा ग्राउंड स्टाफ के लिए कि वो इस अंदाज की पिचेस को तैयार रखें। फ़खर ज़मान बेंगलुरु से अपनी इस रेड हॉट फॉर्म को लेकर पहुंचे यहाँ तक, जहाँ पे इस स्टेडियम का जिक्र है। वहाँ पर उन्होंने 27 मैचेस अब तक खेले, 1000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं इस फेवरेट अपने ग्राउंड में। हैप्पी हंटिंग स्टेडियम में उन्होंने 106 का हाईएस्ट रखा है, 40 का एवरेज। तो यादें शानदार है फ़खर ज़मान की। अच्छा रन है ये, थोड़ा स्विंग भी मिला है जांदाद को। इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली ऑन नए बॉल के साथ थोड़ा बॉल स्विंग करें और प्रेशर डाल सकें, क्योंकि अगर यहाँ पे अर्ली विकेट्स आप नहीं हासिल करेंगे तो बहुत रन्स बनने की तवक्को है, क्योंकि बेल्टर है ये पिच। अभी आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पे काफी सारे स्क्वाड्स तैयार किए गए हैं नेशनल T20 के लिए, और इसीलिए कोई हेजिटेशन नहीं थी उमर अमीन को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने में, क्योंकि जितना मैच आगे जाएगा उतनी ही ये बैटिंग के लिए बेहतर होती चली जाएगी पिच, और आपको बहुत सारे स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। दोनों क्वालिटी टीम्स हैं, लेकिन एबटाबाद का जो ज्यादातर दारोमदार है वो फ़खर ज़मान पे रहेगा। इसके बाद कामरान गुलाम डेफिनेटली हैं, बट अच्छे आगाज के लिए इनका रहना जरूरी है। एक मरतबा फिर लेंथ को चेंज किया, पेस में भी तेज लगे हैं। फैजान का बेहतरीन कमबैक फ़खर ज़मान के खिलाफ मजबूर किया उनको कि वो अपने स्ट्रोक को चेक करें। बज़ाहिर यही लग रहा था कि वो एक मरतबा फिर उस शॉट को खेलने के लिए जा रहे हैं जो कि ओवर की इब्तिदा में उन्होंने खेला। वो बस स्मार्ट लग रहे हैं अपने अनकन्वेंशनल ग्लासेस के साथ। लगता है कि जैसे वो कराची में ज़बन-ए-निसार स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। वैसे भी बड़े स्मार्ट। या पाकिस्तान कप के आखिर में ये अनफिट हो गए थे, इनकी उंगली पे बॉल लगा था, जिसकी वजह से रावलपिंडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि काफ़ी बड़ी इन्होंने ये बैलेंस देते हैं रावलपिंडी की टीम को। ऑलराउंड क्रिकेटर है मुबस्सिर, और ये तो इनके लिए बहुत यादगार ग्राउंड है, बहुत सारे रन्स किए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा अख्तिताम, 6 कंसीड करने के बाद बेहतरीन कमबैक किया है। फैजान का ओवर मुकम्मल हुआ। अली क्रिकेट की बहार उतरी हुई है शहर कराची में। 18 टीम्स हैं और आपको जहां चले जाएं वहां पर क्रिकेट मिलेगी। इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम एरिना से हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर जो ओवल बना हुआ है हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट एकेडमी हनीफ मोहम्मद के लिए उनके नाम से मंसूब की गई, वहां पर मुकाबले, उसके साथ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एनबीबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये 4 दिन तक इस अंदाज से मुकाबले जारी रहेंगे। जिसके बाद सुपर 8 का मरहला जिसको आप करार दे सकते हैं, वहां पर 4 ग्रुप्स, 2-2 टीम्स निकलेंगी और फिर उसके बाद उन 32 मुकाबलों का आगाज होगा, जिससे हम 10 दिसंबर को पुराने फॉर्मेट में वापस जाकर एक नया चैंपियन देख सकेंगे। तो बड़ा मौका मिलेगा इन तमाम खिलाड़ियों को, खासतौर पर जो अगले राउंड तक पहुंचेंगे क्वालिफाई करते हुए, उनके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि वो अपने आप को प्रूव करें ऐसे मैचेस में। अच्छा रन एक बार फिर, बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट दोनों बैटर्स की जानिब से। और आप एक्साइटमेंट का जिक्र कर रहे थे अकील, तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। पहला टाई हमने देख लिया है मुल्तान और सियालकोट के दरमियान, जो कि सियालकोट ने जीता है सुपर ओवर में जाके। बहुत ही एक्साइटमेंट ऑलरेडी नेशनल T20 की। और ये जब इस तरीके से फ़खर ज़मान पेन ले रहे हो तो ये अच्छा खबर नहीं है पिंडी के लिए। बड़ा शॉट खेलने गए हैं लेकिन एलिवेशन उस तरीके से हासिल नहीं कर पाए सजाद। और बड़े बड़े स्टार्स हैं, शोएब मलिक कप्तानी कर रहे हैं सियालकोट की, और भी हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे। इमाद वसीम खेल रहे हैं, हारिस रऊफ इस्लामाबाद की जानिब से खेलेंगे, उमर अमीन रावलपिंडी, फ़खर ज़मान। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था कराची के लिए इस टाइम पे। सुपर ओवर टाई मैच, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाहर निकलते हैं नेक्स्ट ओवर वो मैच मुनक्किद हुआ। लावा पकड़ा है फ़खर ज़मान के जी में एक छक्का लगाने के बाद, लेकिन बड़ी तेजी के साथ ना सिर्फ दूसरी जानिब से फैजान ने अपनी लेंथ को चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो कर रन निकाल पाएंगे। मुबस्सिर शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि गेंद उन तक पहुंचेगी नॉन स्ट्राइकर एंड पे।
और एक रन गैर जरूरी तौर पर दिया। अखिल ये स्लॉपी क्रिकेट है, क्योंकि जब फखर जमान क्रीज पे है तो आपको एक एक रन रोकना है, क्योंकि ये जब शुरू होंगे तो ये इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट, मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा मुबस्सिर को, ये बॉल भी उन्होंने बहुत स्लो किया है, ये स्मार्ट बॉलिंग है इस पिच के लिए। और ये आया पहला चौका, लंबी बाउंड्री है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। पूरा फासला तय करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनसे तेज निकली, प्लेसमेंट भी अच्छी और टाइमिंग भी शानदार थी, अपने जिस्म से दूर खेले लेकिन पहला चौका कमाने में कामयाब सजाद। थोड़ी देर बॉल हवा में जरूर रही थी लेकिन लकी रहे कि गैप में लगा बॉल, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से 4 रन हासिल किए। दाद देनी होगी मुबस्सिर की कि बॉल स्लो कर रहे हैं अभी भी, और यही इस पिच पे बचने का तरीका है कि आप दूर बॉल कीजिए और पेस को वेरी करते रहें, स्लो बॉल करें, गैस करने दें बैटर को कि कौन सी पेस पे बॉल आएगा। और राइट हैंडर के लिए अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप शुरू करते हैं तो स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन जैसे आपने कहा दोनों मौजूद हैं। और कोशिश की है और निकाल लिया एक मरतबा, फिर गैप ज्यादा कमिट कर गए थे डाउन द लेग साइड और पूरा फायदा उठाया। क्रेडिट जाएगा सजाद को, स्क्वायर के पीछे का एरिया मुंतखब किया, चौके के साथ ओवर मुकम्मल, 24 बिना किसी नुकसान। जी हाँ, लेग साइडिश बॉल है ये इजी पिकिंग्स है क्योंकि फील्डर मौजूद नहीं है स्क्वायर लेग पे, थोड़ा वाइड खड़े हैं, ये बहुत अंदर लगा है बॉल, क्योंकि जो लाइन थी बॉल की वो लेग साइड पे थी, टांग पे थी। यहाँ पे आसानी से आप बल्ला लगाइए और 4 रन हासिल कीजिए सर्कल के अंदर, 24 बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर्स के बाद। जिस गो के हमने कहा कि कराची में बहार उतरी हुई है क्रिकेट की, लेकिन अभी सर्दियां भी नहीं आई हैं और कुछ सर्दी का हिंट मिला था रोशनियों के शहर में, लेकिन इस वक्त दोबारा से बड़ा ह्यूमिड किस्म का ये मौसम है जिसके बायस आपको गर्मी का एहसास होता है। जहांदाद गेंद करने के लिए आ गए, और तेज गेंद के साथ शुरुआत की लेकिन फायदा क्या मिल जाएगा फखर जमान को, जवाब में पूरी दौड़ लगाई लेकिन पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके अब्दुल फसी। कीमती 4 रन मिल गए फखर जमान को। ये मुसलसल दूसरा गलत बॉल है जो रावलपिंडी ने किया है, टांग पे। जब फाइनल का फील्डर सर्कल के अंदर होगा तो ये क्राइम है बॉल करना, और फखर जैसे बैटर को अगर आप इस तरह की लेंथ और इस तरह की लाइन पे बॉल करेंगे ये मिस आउट नहीं करेंगे। इवन इनसाइड एज था लेकिन 4 रन हासिल हो गए क्योंकि फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद था। तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा स्टार्ट है ये एबटाबाद के लिए। अकील बहुत सारे नए स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे इस बार नेशनल T20 में। और एक और मरतबा निकाल गए, इस मरतबा अब्दुल फसी के दाएं जानिब से लेंथ को चेंज किया लेकिन लाइन वही। इस मरतबा फखर जमान को शॉट खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बैक टू बैक चौके एबटाबाद के लिए। यहाँ पे उमर अमीन को बात करनी होगी अपने बॉलर से कि यहाँ पे लाइन बहुत ही खराब हो रही है। आखिर 3 बॉलें एक ही लाइन पे किए गए हैं, एक स्पिनर की जानिब से और अब 2 बॉलें फास्ट बॉलर की जानिब से। लेग साइड पे आप बॉल करेंगे सिर्फ बल्ला ही लगाना होगा और इतना बड़ा गैप मौजूद है कि इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी फील्डर के लिए। ऑलरेडी 20 रन पर पहुंच गए हैं 12 बॉलों पे फखर जमान। बेहतर गेंद और इसको लाइन में भी लाकर करने की कोशिश की। फील्डिंग में भी फाइनल के फील्डर को इस मरतबा भेज दिया था स्क्वायर की जानिब, जिसके बाद फखर जमान भी शॉट लगाने से रुके और डिसेंट कमबैक किया। और अच्छा लग रहा होगा फखर जमान को अपने करीब खड़ा देख के जहांदाद को बॉलिंग करते जाते। लेकिन जो अच्छा नहीं लग रहा होगा वो है ये पिच, कितने अच्छे तरीके से बल्ले पे बॉल आ रहा है, स्विंग भी ज्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि दोपहर का मैच है, कोई मॉइस्चर का भी चांस नहीं है। इसलिए अगर आप थोड़ा सब्र दिखाएंगे, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे तो बहुत सारे रन आपको मिलेंगे। और फखर आज इसी मूड में लग रहे हैं अखिल। और ये मौका है सज्जाद के लिए भी, अपनी जगह पे खड़े खड़े वो फ्लैश करने के लिए गए थे। पूरा रीजन खाली पड़ा हुआ है कवर्स का, कोई ऐसा फुटवर्क नहीं था। लेकिन अगर आपको अब एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो अपने आप को जिस अंदाज से आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी 18 टीम्स होने के बाद बड़ी तादाद में नए खिलाड़ियों को मौके मिले हैं, लेकिन इनमें से कई वो भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान कप या फिर लॉन्गेस्ट फॉर्मेट को भी खेला होगा। और अब कितनी क्विकली अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस क्विकेस्ट फॉर्मेट में, जिसमें आपके पास अब हर गेंद में एक अपॉर्चुनिटी होती है एक बड़ा शॉट मारने की, और उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है।
लेकिन यहां पर कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया. ब्रेव सज्जाद ने फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव की मिसाल को अपने नाम किया, अपने जिस्म से दूर खेले, हवा में खेले, लेकिन चौका. यहाँ बहुत ही खराब बॉलिंग है रावलपिंडी की जानिब से. आउटसाइड द ऑफ स्टंप लो फुल टॉस को पॉइंट के ऊपर से खेले हैं 4 रन के लिए. ये अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है फखर का और सज्जाद का, क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक मेकर लग रहे हैं, दोनों बड़ी शॉट खेलने वाले प्लेयर लग रहे हैं. ये विकेट कीपर बैटर हैं सज्जाद, ऑल्दो प्रीटीएस्ट वे नहीं था बट इफेक्टिव था. आउटसाइड द ऑफ स्टंप सिर्फ कलाइयों की मदद से फील्डर के ऊपर से 4 रन. अच्छा पेस ऑफ को वेरी किया और अचानक से सरप्राइज किया सज्जाद को 37 में लगे से नुकसान के. Into the 5th over, 2 to go in the power play. To be precise, say 1.5, 38. It's a good start, this. Didn't quite get the timing around. Salman alongside me, it's the start. Well, it's not the first game. We've had a couple of games around in different grounds in Karachi for this AH group presents Jazz National T20. And Abbottabad and Rawalpindi facing each other. For those who've just joined us, Rawalpindi won the toss. The ones in green decided to bowl first, just probably the first outing. They want to get an idea of how the pitch is playing, what the surface is like. And as the matches go on till the 10th, you'll see more condition-dependent decisions. This has been stroked beautifully through the cover point region, off the back foot. Just stand and deliver stroke. Tells you how good the pitch is. If you can just hit the ball on the up with this command, definitely the pitch has to be a good batting track. It's all right that you want to see how conditions go, but now pressure will start to mount unless the wickets start to fall. It was a length ball, provided a bit of room outside the off stump, and the batter took full advantage. Probably pace off will be very important on this pitch because it is very good for batting. It looks as if nothing is happening off the track, and we haven't witnessed any movement in the air as well so far. So yes, change of pace and accuracy of where you want to bowl, the precise length and line would be very, very important. And also the fielding will come in very handy. If they can accept half chances and stop some runs from going through, will be very important as a fielding unit. Looks good, Faizan. There's a good delivery there into the block hole, not allowing Fakhr to free his arms. If you have followed how Fakhr plays, anything outside the off stump, any width around, and he'll be just jumping onto it. Faizan has done well on debut. It seems a definite plan. This is the ceremony where the debutant received his cap from one of the coaches. That is a proud moment.
for any youngster to represent his city. And here he is. I'm going to say something you might not like, but this is the format where you see the youngsters are more excited. Short bursts of energy, T20, you expect more action out here. And since they've been watching a lot of T20 cricket around the world, whether you talk about leagues, whether they just, you just also feel as a person that even Pakistan has a better chance when you talk about the shortest format. Sad but true. That's because we've got to this stage by ourselves. This one was a bit short, couldn't time it, bottom edge, straight to the mid-wicket fielder. 5 overs bowled, 45 for none, Abbottabad. Two matches today here on the ground. When you talk about what the due factor would be, usually you'd expect if there's any, would come around after 8. That would be the time when the first game would be already done. And when you talk about the second game, I don't know how much due dependent would it be, the toss, because it will be there in both the innings. Zaman this time finding the fielder in covers. This will be an interesting contest. Zaman and Fakhar Zaman both play for Lahore Qalandars and must have faced each other in the practice games, in the scenario games, in the nets as well. So we'll see who gets the better of whom on this occasion. Coming back to your talk about this particular format, obviously this one will attract more youngsters. It's less time taking, less painstaking, less fitness required. And at times you really do not have to be ultimate in your skill as well. You spoke about Zaman Khan. We've seen how he's performed in clutch moments for Lahore Qalandars in the PSL and then the Asia Cup, all important last over. Whatever the result may be, one thing's for sure that he's a bowler with a big heart. In front of a full house, big occasion, he doesn't deviate. He bowls every single delivery to merit. Shot again. Umar Amin cuts it off. No runs. Zaman showed a big art, great temperament, and we saw that in the firstly in the PSL when he was given to bowl the last over and he had to defend only 9 runs with a set Asif Ali in front of him, who is far more experienced when you talk about PSL, and he successfully did that. Then on a number of occasions he's done that now. That's 50 up with his stroke over the covers for 4. And as we again talk something good about the bowlers, the commentator's curse is very viral, Sikandar. Yeah, this was a good shot. A little too full and allowed the batter to just throw his hands at it. Had to be hit, especially when the circle is on. It's still in the power play. So the margin of error is very, very slim in terms of lengths. T20 batters always seem to have an upper hand. And the bowlers do have that kind of a cushion. Yes, they will be hit. It's about taking wickets. Is a better length, just too close to cut it. It's played it hard into the ground. Last ball of the power play coming up. 50 already on the board without any loss. So Abbottabad have started really well. Taken off. Power play is done. It's 51 for no loss.
Signal for the end of the power play by the umpire. So now you can have more than 2 fielders outside the circle. Yes, now you can have 4 in the ring and the rest can go out. It's a quick drink for both the batters. It is a bit warm compared to the rest of the country when you come to Karachi this time of the year. Mehran Mumtaz will bowl, and this is the power play. Fakhr Zaman launching one straight down the ground, and then this one was hit through mid-off, not timed really well. Another sweep and some poor bowling on the legs, and Fakhr Zaman will always take advantage of this kind of bowling, and this one was beautifully square driven, and this one over covers. So a good power play for Abbottabad, 51 for no loss. Both the batters have looked good. 26 of 19, Sajjad, Fakhr 24 of 17. It's a good healthy power play, 51. They tried 2 overs with off spin, Mubassir, especially for Fakhr Zaman. Didn't really pay off. It's a bit of a gamble that you would try in terms of matchups. Now the field is spread out, so you got 3 inside the circle on the offside. And then you got 1 at fine leg, and Mehran Mumtaz, here he is. You got 3 men patrolling the onside boundary with a deep square, a deep mid-wicket, and a wide-ish long on. It's important, even the spinners will have to vary their pace, and Mehran Mumtaz, this one, he's just slowed it a bit in pace, and bowling within the stumps will be the key. There's also the dimensional difference in the ground. So if they take him on and go against the spin, the boundary is 68. And with Fakhr Zaman being a left-hander, if he wants to go over mid-wicket or square leg, it's a huge boundary. It's 80 plus yards over there on his leg side. And this is where captains will be tested tonight, which bowlers they bring from which ends, and also the air when it starts to blow, which way is it going. We saw it during that innings in the World Cup when he was facing the 2 spinners, even Sodhi, and I don't know if I'm right, was Santner there. Anything they would try to bowl full or wide outside the off-stump to him, he had the ability to drag it and play it to mid-wicket. If it's in his arc, he'll swing. It's in the air and gone. Tried a reverse and just couldn't clear that fielder at backward point. That's a soft dismissal there. Yes, Mehran doing the trick for Islamabad, and Abdul Fassi takes at point an easy catch. The batter trying to reverse sweep, trying to be cute. He was playing fine when he was playing in front of the pitch. Just went out of the box and lost his wicket. 53 for 1. Seems all right. The front foot. And then the reverse attempted. He was looking good. Sometimes you just feel, was it necessary? He's got 2 fielders, in fact 4 in the circle, and this is one behind the square on the offside, and it just goes straight into the hands. And he could have gone on the other side, sweeping it conventionally towards his legs, with the lesser fielders being on the leg side, because there's a left-arm spinner operating. So didn't get his idea what he was trying to do, but whatever it was is back in the hut. 53 for 1, Abbottabad. KG, the new batter. He's played at number 3 during the PSL for the Lahore Qalandars. He's been a bit flexible. When he's playing for KP last year, he was batting middle order. He had one of the most prolific seasons. Proper batter. He's proved himself across formats against South Africa. He was selected in the test squad. He didn't get a game though. But yes, someone who likes to bat around, doesn't give his wicket away easily.
Yes, he is a very gutsy player and he has performed in all the formats and been a very prolific run getter in the last few years. Mehran on the legs to Fakhar Zaman, did not give him any room, and the boundary on the legs of Fakhar Zaman is huge. Over bowled, 7 gone, 55 for 1. That's the only wicket. Sajad trying to reverse that. You just feel it was a touch unnecessary. It was going good. So much hard work. The field is pretty spread out on the onside. As I mentioned, deep square, deep mid-wicket and wideish long on. He could have easily taken his chance trying to beat short fine. As Abbottabad asked to bat first, and the AH group presents Jazz Super 4G National T20. 7 overs, 55 for 1. We've seen, I will not take it as a test case, but we've seen 200 chase here in T20s in the Pakistan Super League. But most of the games have been won batting second, chasing. But those don't confuse it. Those are the games started at 8 o'clock. Oh yes, buddy. Well, the big boundary will definitely make a difference. When the batter thinks about hitting the ball out of the park, if the boundary is 80 meters like we have today on one side, it's a huge factor to be mentally prepared to take on a boundary which is 80 plus yards. We're just talking about stats. If you talk about day-night games, you're talking about an afternoon game finishing under lights, then out of 9, 6 have been won by batting first. It's different time of the year, smaller boundaries, different pitches, a lot to differ. This time around it is 80 plus yards on one side, it's 68 on the other side, whereas the games we are talking about, it's mostly 65 everywhere. That's pretty strange actually. Then you mentioned you'd start thinking that you would want high scoring games. 80 is a lot. Coming back for the second. 80 on one side is just a little too much of an asking. And yes, of course, you talked about, you're very right about it, because the PSL happens mid-Feb. There's still early times. We haven't really, honestly, got into the winter, the Karachi winter. Captains will be tested, batters' fitness will be tested. A lot of runs they will have to run, especially on the bigger sides, and then bigger gaps. Has never been an easy ground to defend, and bigger gaps do not make it any easier. This time again punched, and should be 2. Fakhar Zaman is quick and he'll turn and return back easily. Yeah, it's so important to understand the dimensions of the ground. When you talk about 80 on one side and 60 odd on the other, then there'll be a lot of empty pockets in the ground on the bigger side. You can easily push 3 also when you talk about that bigger boundary on the left side in this particular angle, where if you're bowling from the university end. So yeah, I mean, you've got to identify those where you can go for those extra 2s and 3s. And even the fielders on the bigger side have to be standing 10 yards in from the boundary at least. Driven again. And well fielded. 61 for 1 after 8. आठ ओवर्स में 61 रन, एक खिलाड़ी आउट. एबटाबाद का स्कोर. 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है इन 8 ओवर्स में. मुबस्सिर ने 3 ओवर्स कराए और फैजान ने 2. इसके अलावा जहांदाद जमान और मेहरान ने. अक्सर कप्तान T20 क्रिकेट में खासतौर पर पावर प्ले में इस तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं ताकि बैटर जो हैं एक बॉलर के अगेंस्ट सेट ना हो सकें.
मेहरान मुमताज, जोरदार अपील और चांस है यहाँ रन आउट का। दोनों एंड पे थ्रो कर सकते थे लेकिन विकेट पे लगी नहीं बॉल। खुशामदीद अहमर सईद। शुक्रिया। अब तक अच्छी बॉलिंग की है, बैट लगा था ये मेरे ख्याल से, ये जी हाँ काफी क्लोज मामला था लेकिन अंपायर का इशारा मेरा ख्याल से कि बैट। खैर कोशिश कर रहे हैं कि लेंथ ना दी जाए जिससे वो एलिवेशन हासिल कर सकें। मेहरान मुमताज काफी ज़हीन बॉलर हैं। इनकी स्ट्रेंथ तो इनके करियर के शुरू में जो इनकी फ्लाइट और लूप हुआ करती थी, लेकिन अब T20 क्रिकेट की बदौलत थोड़ा सा उन्होंने अपनी पेस में इजाफा किया और काफी फ्लैट ट्रेजेक्टरी से बॉल कर रहे हैं। ये बॉल छोड़ के किया और मायूस होंगे, एक रन दे दिया। ये रन बचना चाहिए था। बहुत अच्छा आगाज इनका मेहरान मुमताज का था जब ये एज क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत अच्छा लूप ड्रिफ्ट इनका जो है बहुत ही शानदार था, लेकिन जैसा आपने कहा T20 क्रिकेट ने इनको अपना अंदाज बदलने पे मजबूर किया। थोड़ा तेज बॉल करने लगे हैं जिसकी वजह से ड्रिफ्ट भी कम और टर्न भी जो है अब इनकी बॉल में कम नजर आती है। फ्री एंट्री है इस नेशनल T20 कप में, इसलिए आज जुम्मे के रोज कुछ तमाशाई आए हैं ग्राउंड में, मजीद आएंगे। T20 क्रिकेट बड़े स्टार्स खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में और मौसम भी बहुत शानदार है, खासतौर पे इवनिंग्स में यहाँ कराची में। तमाशाई कम तादाद है लेकिन जैसा आपने कहा आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगी। फखर को आप रूम नहीं दे सकते ऑफ स्टंप के बाहर, चाहे आप स्पिनर हो या फास्ट बॉलर। यही मेहरान ने अंदाजा लगाया, ये बॉल काफी दूर थी और फखर ने बाजू चलाए जोरदार तरीके से, बाउंड्री के साथ ओवर का इख्तिताम किया 70 पर 1। बहुत ऑस्टम के बाहर बॉल, तकरीबन फ्री हिट है ये फखर जमान के लिए। पहला ओवर जिसमें कोई डॉट बॉल नहीं हुई। फखर का जिस तरह का फ्री फ्लोइंग बैट स्विंग है, बाबू ने वो मौका दें हाथ चलाने का तो फिर वो आपको बख्शते नहीं हैं। और चांस था ये, तान उमर अमीन जो कि बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं, इस मर्तबा इस ड्राइव को एंटिसिपेट नहीं कर सके। वो बस सिर मायूस होंगे इस एफर्ट से। चोट भी लगी है इनको और नुकसानदेह हो सकता है ये, क्योंकि बैटिंग भी इनको करनी है बाद में। देखें ये काफी आसान कैच था, खासतौर पे उमर अमीन जैसे फील्डर के लिए जो कि काफी अच्छे इस पोजीशन पे खास तौर पे काफी मौसर अंदाज से फील्डिंग करते रहे हैं। बाहर जा रहे हैं उमर अमीन और अहमर खाली स्टैंड्स हैं जहां से ये बॉल नजर आई। ऐसे लगता है थोड़ा लेट उन्होंने रिएक्ट किया, जो बैकग्राउंड में स्टैंड्स हैं और काफी ब्राइट दिन है, वाइट बॉल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उमर तो नॉर्मली बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं और ये रावलपिंडी के लिए अच्छी अलामत नहीं है कि उमर का बाहर जाना। नेशनल T20 कप उमर को जाते हुए हम देख रहे हैं अहमर कि दोबारा वो हमारे पास वो फॉर्मेट आया है जिसमें रीजन वर्सेस रीजन का, और काफी ज्यादा टीमें, 18 टीमें 16 रीजन्स की, वो जो लोकल राइवलरी वाला एक कॉन्सेप्ट है वो दोबारा रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है। जी बड़ा जरूरी है मेरा ख्याल से, और नए आने वाले प्लेयर्स के लिए। ये देखिए उमर ने लेट रिएक्ट किया, ये गेंद उनके बाएं जानिब थी। वो बैटर तो लेफ्ट हैंडेड हैं लेकिन वो राइट हैंड से थ्रो करते हैं, तो इनका नेचुरल साइड नहीं था, लेकिन फिर भी उमर को हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त कैचेस इन्होंने किए हैं अपने करियर में।
लेकिन ऐसा वही जो मुझे लगता है कि शायद बॉल पिक करने में थोड़ी सी वो देर हो गई उन्हें बैकग्राउंड की वजह से। उमर खान आ गए हैं उमर अमीन की जगह फील्डिंग करने। बड़े बासलाहियत लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मंजर से खो से गए हैं। कॉन्शियस एफर्ट लग रही है मुबस्सिर की कि वो कोशिश कर रहे हैं कि फखर को लेंथ ना मिले ताकि वो एलिवेशन हासिल कर सके, और जगह भी नहीं दे रहे हैं। ये उनकी खास बात अब तक रही है। बिल्कुल उन्होंने किसी तरह की भी स्पेस नहीं दी है, उनको ड्रिफ्ट कर रहे हैं बॉल अंदर की तरफ। कैच की आवाज लगाई लेकिन फील्डर से जरा पहले गिर गई। अच्छी एफर्ट थी यहां पे, आसान नहीं होते ये कैचेस जो आपके आगे गिर रहे हो। चांस लिया फील्डर ने। ओवर में मुबस्सिर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह वो एंगल कर रहे हैं राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडेड फखर को, फखर ने शॉट की ट्राई की लेकिन वो उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सके। सलमान बट ने इसका जिक्र किया था अभी कि ये बाउंड्रीज इस तरह की हैं, डायमेंशंस इस ग्राउंड की काफ़ी लंबी बाउंड्रीज हैं, तो जो फील्डर्स है बाउंड्री के उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ उनको सही जगहें खड़े होने के लिए उनके लिए। इस मर्तबा गैप हासिल करने में कामयाब हुए और 4 रन मिल जाएंगे। मुबस्सिर का वही एंगल, इस मर्तबा थोड़ा सा लेंथ में चूक गए और कामरान गुलाम इसी मौके की तलाश में थे। मुंह पे गिरा ये बॉल, लेकिन बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट कामरान गुलाम की। तो फील्डर्स के बीच में ये देखिए आप, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के बिल्कुल दरमियान। इस अपील का कोई जवाब नहीं, लेग स्टंप से मिलो दूर गेंद गिरी। शोजब रजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाफ वे स्टेज मुकम्मल हो गई 10 ओवर्स के बाद। एबटाबाद 76 पर एक खिलाड़ी आउट। उमर अमीन का हाथ खासा जख्मी लग रहा है, उनको अपने अंगूठे में कुछ तकलीफ नजर आ रही है, महसूस हो रही है। पिंडी के डग आउट और टॉस जीतकर पहले 10 ओवर में फखर की मौजूदगी में इस विकेट पर 76 रन, हालांकि विकेट तो एक ही मिली है लेकिन ये ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगी। इसी रफ्तार से अगर खेलते रहे तो 148 बनाएंगे एबटाबाद, जो कि शायद बिलो पार होंगे। जी अब तक बुरी बॉलिंग नहीं की है, और फखर की मौजूदगी जैसे आपने कहा, अभी हम वर्ल्ड कप में उनकी एक चारियाना इनिंग्स देख चुके हैं। मेरे ख्याल से बाउंड्रीज का इसमें बहुत अमल दखल है। फखर ने पर तोला बड़ी शॉट के लिए, लेकिन इस मर्तबा फ्लाइट में डिफीट किया। ये वही लूप है जिसका अमर थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी ये मेहरान मुमताज की। बैटिंग विकेटों पे बड़ी जरूरी है कि आप अपनी पेस को वेरी करें, और मेहरान मुमताज क्योंकि अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। चेंज ऑफ पेस, बॉल हवा में लेकिन गैप में भी और 4 रन। फील्ड प्लेसिंग से खुश नहीं है लेकिन ये बॉल से पहले देख लेना चाहिए था। पूरा वक्त मिल गया कामरान गुलाम को उनकी इनिंग्स अब मोमेंटम पकड़ते हुए। खराब बॉल के लिए कभी फील्ड खड़ी नहीं की जाती, कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह। बॉल हवा में, 3 फील्डर आ रहे हैं और तीनों के दरमियान गिरी ये बॉल। मुबस्सिर ने बॉल उठाया एक मरतबा फिर, अच्छी डिलीवरी थी। डिसेप्शन का आंसर है मेहरान की बॉलिंग में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना जाने क्यों उन्होंने इस तरह बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस ओवर में उनकी फ्लाइट की वेरिएशन पहले और तीसरी गेंद पर बहुत ही लाजवाब थी। इस मर्तबा फखर ने बल्ला जोर से घुमाया लेकिन सीधा मुबस्सिर के पास ही गई। अब तक बहुत अच्छी तरह टाइम नहीं कर पाए फखर बॉल, और फखर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये उनकी कुछ स्लो इनिंग मानी जाएगी।
इस मर्तबा अच्छी फील्डिंग, डीप में 2 रन बने। विकेट का बिहेवियर अमर मैं आपसे जरूर पूछूंगा, डायरेक्ट थ्रो लगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह लग रही थी विकेट, क्या उस तरह मुझे लगा बॉल उस तरह छोड़ नहीं रही विकेट। फखर जैसे प्लेयर टाइमिंग हासिल नहीं कर पा रहे। क्या आप समझते हैं कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर्स हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशन अब बैटिंग टीम को कम करनी चाहिए या टू अर्ली? जी हाँ, एक अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है कि ये असेस कर ले बहुत ही जल्द कि कौन सी विकेट पे कितना टोटल मौसर होगा। लाजवाब बॉलिंग, एक मरतबा फिर मेहरान मुमताज की। ये बात जारी रखेंगे जब आएंगे ओवर के बाद 11 के बाद 86 पर 1। नेशनल बैंक स्टेडियम, उम्मीद है कि काफी रौनक लगेगी इस नेशनल T20 चैंपियनशिप में यहाँ पर। और एबटाबाद ने सिर्फ 18 डॉट्स बॉल खेली हैं अभी तक, 10 चौके और 1 छक्का लगा है। यहाँ पे कोई 3 रन नहीं बनाए किसी एक शॉट पर। नेशनल बैंक स्टेडियम में ये नामुमकिन नहीं है, जितने बड़े ये पॉकेट्स हैं यहाँ पे आप भाग भाग के 3 रन भी बना सकते हैं, लेकिन इस इनिंग्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। T20 क्रिकेट वैसे तो एंटरटेनमेंट लगती है, लेकिन एक खासा मुश्किल फॉर्मेट है क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको अपना स्विच ऑन करना पड़ता है दिमाग, बहुत जल्दी आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। और जैसा कि आपने कहा विकेट का भी आपने जिक्र किया, तो बहुत जल्दी ये असेस करना पड़ता है कि कौन सा टोटल इस विकेट पे जो है वो काफ़ी होगा, ख़ास तौर पे जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो। कराची में, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में बादल छा गए हैं एकदम से। पिंडी की डिफेंसिव बॉलिंग जो स्किल्स हैं वो अभी तक काफी अच्छी नजर आई हैं, लेकिन ये दोनों अपसेट हो गए। फखर ने 36 रन बना लिए, कामरान गुलाम सिर्फ 18 गेंदों पर 23। यहां से एक प्लेटफॉर्म ऐसा लगता है कि बन गया है एबटाबाद के पास। शहादात खान इस सीजन में नजर आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काफी मुतासिर किया उन्होंने। यूनिवर्सिटी रोड एंड पे ग्राउंड स्टाफ जो है वो साइड स्क्रीन के सामने आ रहे थे, क्योंकि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं। शहादात ने पहला स्पेल भी मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा किया था, बहुत स्विंग हो रहा था उनका। थोड़ा सा अनलकी रहे वो कि थोड़ी सी लाइन लेग स्टंप की तरफ उनकी रही, लेकिन अनलकी भी यूं रहे, इनसाइड एजेस लगे थोड़े से। शहादात का डेब्यू है ये T20 क्रिकेट में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो हमने इन्हें देखा था, और पाकिस्तान कप में भी। ये लम्हा इन्हें याद रहेगा, T20 डेब्यू यहाँ आइकॉनिक और तारीखी नेशनल बैंक स्टेडियम में। काफी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। इसी पॉकेट्स में खेल के 2 की कोशिश थी, लेकिन पहले फखर ने मना किया, फिर कामरान ने। किसी भी यंगस्टर के लिए बड़ा यादगार लम्हा होता है जब डेब्यू उनका, और उम्मीद करते हैं कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। जहादात न सिर्फ अच्छे बॉलर हैं बल्कि बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। और अब जो फखर फेस कर रहे हैं, तो ऑन साइड पे इनकी छोटी बाउंड्री है, लेकिन लेंथ ऐसी जबरदस्त है कि फखर को बिल्कुल फ्री होने नहीं दे रहे। यहां ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा रावलपिंडी के बॉलर्स को। जी हाँ बिल्कुल, और टाइमिंग में भी थोड़ा सा, अब विकेट की तो जिक्र हम कर ही रहे थे, लेकिन अब आप ये देखिए पिछला बॉल इट वाज अ फुल टॉस, जो टाइम नहीं कर पाए फखर सही तरह से।
जो पेस चांस है, थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और कामरान गुलाम पहुंच गए, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट लगती तो वो नहीं पहुंच पाते। फिर मजीद एक्शन, ऑल एक्शन, दोनों एंड पे चांस बन गया था, लेकिन कामरान गुलाम पहुंच गए। T20 की खासियत मुस्तकिल कुछ ना कुछ खेल में जारी रहता है। स्लोअर वन थी जिसको टाइम नहीं कर सके थे, सीधा फील्डर के हाथ में गई, लेकिन देखिए स्लोअर वन, थोड़ा सा टाइमिंग और देर से निकले अपनी क्रीज से, अगर डायरेक्ट हिट होती तो नुकसान हो सकता था। दोनों एंड पे, और दोनों एंड पे कामरान गुलाम ही थे, ये डबल प्ले हो सकता था। फिर स्लो डिलीवरी, काफी वेट करना पड़ा। डीप फील्डिंग अच्छी है रावलपिंडी की, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर, और सिर्फ सिंगल तक ही महदूद कर दिया। अच्छा मुकाबला यहां पे नेशनल बैंक स्टेडियम में जारी है। एबटाबाद 12 के बाद 93 पे 1। $93 for 1. 12 overs gone and looking rock solid. Fakhr Zaman 38 of 29. He's slowed down a little bit after the power play, but don't get that wrong, because he's just setting that platform going. Once he knows things are in control, then he will look to get explosive, as we know him. Mehran with his left arm spin will continue. 3 overs, 1 for 23. Upish for a while, just drops short of that short cover fielder there. For a moment, Kamran would have had his heart in his mouth. Chance. But he's a touch slow in releasing that ball at the non-striker. Still, we'll go upstairs to have a second look. Well, looks pretty much in. Yeah, it was the substitute fielder, Umar Khan. There was not much force behind that throw. That is why probably I believe that he's safe, Kamran Ghulam, because for Abbottabad they need this partnership to go ahead at least till 15th to 16th over. That's where they can really launch. Decision still pending. For some reason, Mehran just stopping him to throw. Seriously didn't get. Oh, this is closer than we all thought. Looks close, looks really close. And he's out. Whoa, that is a surprise. Wicket of Kamran Ghulam. Because with this angle, it's clear that he is short of that crease, Kamran Ghulam. What an unfortunate way to lose your wicket. Nobody expected it. Everyone has gone to their field positions. And now probably they'll have to come and regather, because decision pending. This will turn into out. Yes, right decision made. 41 partnership broken. An unfortunate way, but it's Umar Khan doing the trick. Yeah, from the naked eye, looked like the pick and release. What a touch slow, but Kamran was struggling. Just a matter of an inch and a half, and he knows that this is a great opportunity missed. Kamran Ghulam is the second wicket that has fallen for 27. 93 for 2 in the 13th over.
Good opportunity for Arif, because we've been talking about these new stars being made here at National T20 Cup. But all eyes would be on Fakhar Zaman. He's the one who's all set, 39 of 30. The platform is set. Ideally, he would want to go till 15 and then really go after the bowling, because he holds the key. He holds this batting line together. On the other hand, Mehran Mumtaz has really bowled well. He's varied his pace, his line. That is what happens when you play all your season, complete first-class season. Good shot. He's got enough power, bottom hand and maximum onto that advertising hoarding. Arif starts off with the maximum and brings the 100 for Abbottabad. Wow, what a way to get your first runs at this level. It's his debut and he plays his first shot down the track. Good swing of the bat, getting to the pitch, and the clarity of thought that he wanted to go big and over that fielder of long on. Wow, what a way to start your career. Once again, this time it's a little bigger than the one previous. Over the advertising hoarding. 2 maximums to Arif on 2 deliveries. Pressure? What pressure? He doesn't know anything like pressure. It was in his zone, he went after it. Again, look at that. Tossed up into his zone again. That swing again. This is really good. There was more flight given on that occasion by Mehran, and he's not a big turner. So he's got enough time, Arif. This time at quicker and flatter trajectory. The 2 sixes have just given him that extra fraction bit of a second to swing the bat. 13 gone, 107 for 2. Mehran Mumtaz has bowled out 4 overs. He's given away 37 runs but taken 1 wicket. But 12 runs coming off the last 2 deliveries that he bowled to Arif. He's not expecting that. Zaman back into the attack from the University Road end. He's bowled 1 over, none for 6. Just probably looking at what Arif was doing to the spinners. The fielding captain, Omar Amin, thinks that let's get someone quick. Let's see if he's going to try something off him. Gone! Played on to the stumps, and it has worked. Just the thought that was being played into the minds of the fielding captain. It has paid off. Playing away from the body, a bit of a loose shot, and he chops it onto that off middle. Oh, he's disappointed because he got the start he wanted. And have a look at the front foot. No problems there. Yeah, just dragged on. Probably did not get that height as he was expected. That's a good wicket to have, a good time. Arif looked good for his couple of 6s. He'll have to go back on 13. It's 107 for 3. Ahmed Khan, the new batter, he's making his debut. 107 for 3 at the National Bank Stadium, first game here.
And Zaman has managed to get his first wicket in his very second over after Arif's 2 sixes against Mehran Mumtaz. Here we go again. Trying to york him down the leg side. Will be a wide. Have a look at Arif's follow wicket to Zaman. Extra bit of bounce there, and his shot is also not very complete. Gets the bottom part of the bat and onto the stumps. Sometimes what happens is with that slinging arm, gets a bit difficult to gauge the bounce, because it's not easy to bowl a shorter one with that action, but he does it so well. 2 deliveries that are so well calculated from Zaman. One is the Yorker, and this is the other one. Just climbs up on the batter from that almost good length. Most wickets by fast bowlers in T20s, and Zaman is featuring in that list of top 5. 2023 is the year where these numbers belong. Yeah, good to see a couple of Pakistanis. Shaheen Afridi also with 53 wickets. Zaman Khan with 46. Typical Fakhr Zaman shot. Couple of runs, there was a chance, but throw was quite wide. Better throw would have probably made things interesting. Mubassir deep mid wicket. The throw was a little wide of the stumps, otherwise Ahmed was struggling for sure. Look at that again. Watch Ahmed coming back. The throw was wide of the stumps, otherwise he was struggling clearly. Down on one knee and just scoops that over the keeper for a boundary. Very T20-like, quick on the feet, Fakhr Zaman. That will just put the bowler off his length for a moment. Yeah, read the line and the length pretty quickly. Fakhr Zaman, he was in position very early, and all he had to do was place it over that fine leg fielder. Great innovation, great game awareness also by Fakhr. He knew the fielder is inside, using the pace of Zaman. It was generally very accurate, but this time a bit leg side-ish from him. Round the wicket, very full toss, and has been smashed through covers. That was hit hard, I tell you that. Full toss and no chance for short cover to put a hand to it. That flew past him. Yeah, that is poor bowling. Full toss outside the off stump. That's what he's searching for. These are easy pickings. These are going to the boundary any day, any time to Fakhr Zaman. There's no one there. There is a fielder though, but he's squarer. This was hit over that extra cover fielder. Beautiful batting. $50 up for Fakhr Zaman. That'll be his 8th at the National Bank Stadium in Karachi and 39th overall in his career in T20s. He's done well. It's been a quick fire run, 34 balls for that 50. It's been a big over this. Giving them a solid platform. 14 gone, 120 for 3. Five fours, 1-6, strike rate of 147 for Fakhr Zaman. That's what he will do. As long as he stays, these numbers will increase. 120 after 14. The platform is set for coming 6 overs. Ideally, they would want to get to 180 or 190 from here on. And if Fakhr stays, they might can go to 200 even. Because we know what he is capable of. And he's got that platform, 50 of 34. But the good news for Rawalpindi is that Umar Amin is back into the field. Got hurt on his finger, he had to go out. Now he's back as a captain. This will make a difference. Again, that slog, just a single. That's the bigger side of the ground. Oh, it's gone through.
He's just taken his eyes off the ball for a second and he's paid the price. That's very ordinary work down there. Mubassir Khan rushing to the ball and looking at the batter rather than collecting it. This is poor by Mubassir. Fakhar Zaman, you don't want to be giving any runs, any easy runs. And look at that, just taking his eyes off. An awkward bounce probably in front of him. But at this level, with this, in this age, you've got to be stopping those. This is poor. All he had to do was keep his body behind the ball. You go for that kind of pick up and release when you know the batters are going for the second, but they were just strolling for a single. Yeah, this is what happens when you have long boundary, because Fakhar Zaman wanted to get two. He put pressure, ran that first one quickly, and that is the reason he made Mubassir do that mistake. No ball signaled by the umpire. It was a good ball, good Yorker, but it's a no ball, which means an extra ball and you can't get him out unless he's run out. Yeah, pretty ordinary in last 5 to 7 minutes by Rawalpindi. Some gentle deliveries outside the off stump, then a misfield going for 4, and now a no ball. So it's not really going Rawalpindi's way in last couple of overs. Onside field spread out, free hit. Where does Fakhar go? Wide outside the off stump is a wide signal by the umpire. Just touch and go. Slower ball attempted by Faizan. Still remains a free hit as the umpire signals. It was very close, but the umpire thinking that it is a wide change in pace by Faizan. It's going to be interesting what he bowls next, because that was the plan initially. Ball a slower one outside the off stump. Always going away from him, but touch and go. It's a good ball again, change of pace. Fakhar had made his mind, he's going to swing his bat. Just not there, hasn't arrived as he would have liked. Have a look at that, just goes through with the shot. Mad swing of the bat, but no pace on it, arrived late. Protection there. There's a lot happening, Ali, in the cricket arena. Rana, which is, of course, Fahim Ashraf got married. We had Imam ul Haq having a ceremony, a Qawwali ceremony, soon getting married. Lots happening around you. You're sitting next to us. I saw your brother there attending that event. Lots of invitations going out. Apologize to Imam, couldn't attend the event because wasn't invited. And neither did Fahim. Yeah, lots of who's and who's were there at Imam's wedding. In fact, the Kabaddi night yesterday. Everyone was there. Sarfraz, Babar Azam, the names you mentioned. I know who will invite me. I'm just hoping. Who? There is someone, but it's just not happening. I said it before, I'll say it again. One day. Good ball again. Into the block hole. Oh, coming back for the second. That's as I mentioned earlier in the previous 10. Big pockets. If you're on the onside, this is an 80-plus yard boundary. You've got to be somewhere at the 75 marker to stop those twos. 130 for 3.
has been a Fakhar Zaman show. Using his feet brilliantly, clarity in his mind that he wants to go, using his form, cashing this form. Form is in. He was helped by some average bowling by Rawalpindi bowlers, but he capitalized. Fantastic inning. Standing on one end and losing, watching the wickets go on the other end. It's never easy. Look at that phases. The strike rate increases longer he bats. 1 to 6, 112, and then to 17, 15, 167, and now in the last 4 overs, the strike rate increases to 261, and we're exactly into that phase now. Well, it just shows that he pays no regard to 3 different power plays. The mid overs, he just starts, when I said the power plays where he sets the foundation and then he explodes completely, goes belligerent in the last 4 overs or so. 16 to 20, 5. And that is why it is so important. In any format, you got to take wickets in the mid overs. That's where you break the momentum. So we could need to see a wicket coming from Rawalpindi here. But he's batted well today. He's taken his time. There was a time when wickets were falling on the other end. He needed a partnership. He did that with Kamran Ghulam. I haven't seen him play a wrong shot or a false shot. He's been given the respect to the bowlers, to the ball, to the good deliveries. And whenever provided the opportunity, he's pounced on that. In the last over, he played that paddle sweep also, 1 over extra cover. The game awareness is just brilliant. The point, Sikandar, you were making earlier is about on the onside of Fakhar Zaman. It's an 82 yards boundary. That's where the game awareness comes from the fielders individually. They have to adjust where to stand. You cannot just depend on captain to look for that thing also, that where he should be standing. A fielder at this level, somebody like Mubassar who has played so much cricket, he should know himself. He could always come up 5 yards or 8 yards just to stop that double, because it's a long boundary. This is the other end. Yeah, that's where I was talking about. Just guided it towards that area, point area, 4 runs. Great batting by Fakhar Zaman, using the pace, the game awareness that he's been showing throughout his inning. Just brilliant. He possesses power, yes, but this is about timing. This is sheer timing. The ball just flew in the backward point area. No chance for sweeper cover to even think of coming near it. It's a long distance anyway. The ball was going away from him. The fielder was patrolling the boundary, just 1 in front of the square. Full toss again. This will be another 2 because the fielders are kissing the boundary line. Good running. So important to understand the dimensions as a batting unit. Yeah, great game awareness again shown by Fakhar Zaman. He looked a different Fakhar Zaman today, because once he's playing like that, it's not a good news. He's using that pace, he's using the fielders also that coming up from the boundary line, playing it with soft hands, taking a couple. It's good batting. $16 gone, 140 for 3. क्रूशल मौका है इस इनिंग्स में जहां पे अभी भी गेम में वापसी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये ओवर्स माने रखेंगे। दूसरी जाने फखर जमान कदम जमा चुके हैं, डायमेंशंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ सोने पे सुहागा के दौड़ बड़ा ज़बरदस्त रहे हैं। अपने ओवर मुकम्मल कर चुके हैं मुबस्सिर और उनके साथ मेहरान मुमताज़, जबकि 1 ओवर रह गया है फैज़ान और जहांदाद के पास, जबकि जमान के पास कीमती 2 ओवर मौजूद हैं।
अच्छी बॉलिंग की है जमान ने, 2 ओवर में 19 रन जरूर दिए लेकिन एक विकेट भी हासिल की है। और एक और नो बॉल। पिछली नो बॉल का फायदा नहीं उठा सके थे फखर जमान, लेकिन अब मौका मिलेगा अपने हाथ खोलने का। कुछ स्लॉपी वर्क लग रहा है सलमान, बट पहले गेम में लग रहा है कि वार्म अप होने में टाइम लग रहा है रावलपिंडी वालों को। देखिए रावलपिंडी के बॉलर्स जो हैं वो आइडिया ठीक था यॉर्कर करने का, लेकिन ओवर स्टेपिंग जो है ये प्रॉब्लम रही है और ये बड़ा करीबी मामला था। लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर डेफिनेटली इनकी जो हील है इट क्रॉस द लाइन और अंपायर राइटली सो उन्होंने इसे नो बॉल डिक्लेयर किया। अहमद को मौका मिलेगा, 3 फील्डर बाउंड्री पर मौजूद है ऑन साइड पर बड़े शॉट लगाने का, जबकि दूसरी जाने पे एक और नो बॉल होगी। इसका फायदा यूं नहीं उठा सके कि वेस्ट साइड से ऊपर थी, गो के जा रही थी लेग स्टंप की जानिब, इससे तो बच निकले, लेकिन एक मरतबा फिर नो बॉल वेस्ट साइड की वजह से दोबारा करने के लिए आएंगे फ्री हिट की डिलीवरी। नो बॉल तो हुई है लेकिन एक बड़ा हिट मिस किया बैटर ने इस बॉल पे। आइडियल हाइट थी इस बॉल की और छोटी बाउंड्री वाली साइड थी ये, और बड़ा हिट मार सकते थे लेकिन इसको बिल्कुल टाइम नहीं किया उन्होंने। और एक मरतबा फिर बचने की कोशिश की है और लंबी बाउंड्री है लेकिन इसको रोकने में कामयाब नहीं हो सके। अपने बाएं जाने भागते हुए आए फैजान और फाइनली चौके की सूरत में फायदा मिल गया फ्री हिट का। इस बार थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था और बड़ी हिट मारना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ, थिक एज था, लेकिन बॉल गैप में गई और शायद डिजायर्ड रिजल्ट से 2 रन्स कम मिले, 4 रन्स बने इस बॉल पर, लेकिन बिल्कुल गैप को थ्रेड किया इन्होंने। यॉर्कर की और अच्छा कमबैक किया है। सलमान, आप खुद रिकॉर्ड रखते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का, और मजे की बात यह है कि आज ही के दिन बनाया गया था वो कामरान इकबाल के साथ रावलपिंडी में, लेकिन वो कंडीशंस रावलपिंडी की मुख्तलिफ थी, ग्राउंड छोटा था, ये डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, पिच ट्रिकी लग रही है, तो जो टोटल बनाती हुई लग रही है कोई 200 के आसपास का, कैसे लग रहा है रावलपिंडी के लिए आपको? देखिए डिपेंड करेगा, अगर फखर जमान खेलते हैं आखिर तक तो फिर ये चांस है कि 200 के करीब जाएं, वरना मुश्किल हो सकती है। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं रही है बैटर्स की इस पिच के ऊपर, ये थोड़ा स्लो एंड लो है, लेकिन इसमें उठाने में कामयाब रहे हैं। फील्डर जा रहे हैं अपने दाएं जानिब और इस कैच को ड्रॉप कर दिया। दाएं जानिब जाते हुए नजरें जमाई, जिशान मलिक थे जो कि आखिरी लम्हात तक इसके नीचे आने के बावजूद अपने हाथों को बंद करने में कामयाब ना हो सके, और किस्मत मुस्कुराते हुए फखर जमान पे। देखिए अगेन एक और टॉप एज, बड़ी हिट मारना चाहते थे लेकिन ये बाउंड्री जो है वो 80 यार्ड से ज्यादा है और यहां पर हिट मारने के लिए आपका परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। स्लोअर बॉल थी, पेस भी जनरेट नहीं कर सके, लेकिन लकी रहे, 2 रन हासिल हुए, आसान कैच ड्रॉप किया और अब उठाया है, राब्ता भी जबरदस्त है और गेंद ने उड़ान हासिल किया, पीछे जाने भाग रहे, ट्रिकी होगा, लेकिन एक मरतबा फिर बच निकले। मेहरान मुमताज थे जिनके लिए मुश्किल जरूर था लेकिन असल काम कर चुके थे गेंद के नीचे आने का, आखिरी लम्हात में जज ना कर सके। और एक और लाइफ, फखर जमान भी मुस्कुरा रहे हैं और किस्मत की देवी भी इन पे मुस्कुराती चली जा रही है। एक बार फिर स्लोअर वन था, फिर बड़ा हिट मारना चाहते थे, अगेन टॉप एज हुई और कैच का रिजल्ट भी एक बार फिर वही हुआ, ड्रॉप हुआ। मुश्किल जरूर था लेकिन इसको भी हासिल किया जा सकता था। एक मरतबा फिर लंबी बाउंड्री है, दूसरे रन के लिए वापस आना पड़ेगा और इस सूरत में जमान ने, सलमान जो कि बड़ा अच्छा ओवर हो सकता था अदरवाइज, वो जो फ्री हिट के जरिए से उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर ये 2 मरतबा गेंद हवा में गई है, हौसले पस्त हो गए होंगे जमान के इस ओवर को करते हुए। देखिए अगर फील्डर जो हैं बॉलर का साथ ना दें और कंसेक्यूटिव बॉल्स के ऊपर कैचेस ड्रॉप करें और वो भी फखर जमान के, तो फिर आप तो अपनी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। और दूसरी जानिब लाइसेंस मिला है फखर जमान को, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे। मुबस्सिर तैयार थे इस कैच को लेने के लिए, तीसरी मरतबा लकी साबित ना हो सके और रिलीफ मिला जमान को आउट करके 72 रन की एक्शन पैक इनिंग्स खेलकर बिलाखिर आउट। एक बार फिर बड़ी बाउंड्री की तरफ बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, फ्लैट हिट किया, अच्छी टाइमिंग अच्छी थी स्ट्रोक के ऊपर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, और इस बार थर्ड टाइम लकी रहे। बॉलर जो है यहाँ पर
काफ़ी डैमेज कर चुके हैं फ़खर जमान ऑलरेडी, और मज़ीद कर सकते थे। यकीनन उससे बच जाएगी रावलपिंडी की टीम। और यहाँ पर बड़े छोटे मार्जिन से बचत हो गई है, वरना एक और फ्री हिट हो सकती थी और पकड़े कैच का फायदा भी नहीं होना था। यस, तो एक मौका जरूर आया था, लेकिन उनको लंबी वॉक को हासिल करना पड़ेगा। मुबस्सिर ने सब कुछ ठीक किया, कैच के लिए अपने बैक पैडल करते हुए सीने के साथ लगाया। फखर आउट है बिलाखिर 72 रन बनाकर। 3 ओवर अभी भी बाकी, 154 पे 4। इत्तेजाज हबीब आने वाले बैट्समैन, और अब निस्बतन 2 नए बैटर्स इकट्ठे हो रहे हैं क्रीज पे। 3 ओवर अभी भी बाकी हैं, और फखर जमान के होते हुए कंडीशंस कितनी भी मुख्तलिफ हों या मुश्किल हों बैटर्स के लिए, वो अब अपनी कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन एक नए बैटर को आकर शायद 1-2 गेंदें कम से कम गुजारनी पड़ेंगे सलमान अपने आप को संभालने के लिए। जी हाँ, पिच इतना आसान नहीं है, लो भी रह रहा है, स्लो है, चेंज ऑफ पेस पे बड़ी हिट मारना मुश्किल है। हमने देखा सेट बैटर्स अच्छी टाइमिंग से महरूम रहे काफ़ी देर तक, और यहाँ पर तो फील्डर्स भी बॉलर का साथ नहीं दे रहे। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर तो किसी भी बैटर के लिए आसानी होगी। लेकिन अब एक मौका है कि इस रन को अगर ये 175 से नीचे रोक सकें अच्छी बॉलिंग के जरिए, तो अच्छा चांस होगा। अभी अहमद राइट हैंडर है, उनके लिए बड़ी बाउंड्री है और उसको पैक करके रखा हुआ है। 3 फील्डर्स बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री के साथ लगे लगे खड़े हैं। आखिरी 3 ओवर का खेल जारी है। पहली गेंद को सामना करने के लिए आएंगे एतजाज। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा और शायद बाद में हमें डायमेंशन सलमान चेंज होती हुई दिखाई दें, लेकिन मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस में आप जब मुख्तलिफ ग्राउंड में जाते हैं तो आपको डायमेंशंस का, पिच की कंडीशंस का मुकाबला करना पड़ता है। आज के दिन ये जो गेम अवेयरनेस है इन बाउंड्री के डायमेंशंस के लिहाज से, वो फ़खर जमान ने तो शायद रियलाइज़ किए, लेकिन बाकी बैट्समैन को भी। अब चूंकि अगला मैच भी इसी कंडीशन में खेला जाएगा, इसी पिच नंबर 6 पे, तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आते ही कि किस अंदाज से आप इन बाउंड्री डायमेंशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। चेंज ऑफ पेस लेकिन निकल गई लेग स्टंप के बाहर, और अच्छी गेंद करते करते इसकी लाइन में चूक गए, और एक और एक्स्ट्रा। 4 विकेट गिरे हैं अभी तक एबटाबाद के, और काफी चांसेस ऐसे जो कि फील्डर्स ग्रैब कर सकते थे लेकिन उसमें नाकाम रहे। चेंज ऑफ पेस जो है वो की है इस पिच के ऊपर। अगर आप बैटर को तंग करना चाहते हैं या उसको अनसेटल करना चाहते हैं तो चेंज ऑफ पेस बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ पे थी, टाइम नहीं कर सके। 1 रन बनेगा, कवर्स की तरफ खेलें इसको। ये फखर जमान आउट हुए, स्लोअर वन था और डेफिनेटली पेस नहीं मिली उन्हें। मिडल जरूर किया था, टाइमिंग भी अच्छी थी, फ्लैट गया बॉल, परफेक्शन थी जैसे फील्डर को पिक किया उन्होंने। और इसी ओवर में इससे पहले 2 कैचेस गिराए। एक बार फिर अच्छा यॉर्कर, बहुत ही अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, यंग फास्ट बॉलर हैं। अराउंड द विकेट आके और रूम नहीं देना चाह रहे बिकॉज इस तरफ बाउंड्री बहुत छोटी है। राइट हैंडर्स की ऑफ साइड बाउंड्री जो है, अगर आप फार एंड से बॉलिंग को देखें तो वहां पर 68 मीटर्स है, जबकि दूसरी तरफ जो लेग साइड बाउंड्री है राइट हैंडर्स की वो 80 प्लस है। तो बहुत ही बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से बैटर्स भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि छोटी तरफ ही चांस लिया जाए। एक मरतबा फिर स्लो वन की, और दूसरी तरफ स्मार्ट क्रिकेट का मुजाहरा किया है। नए इत्तेजाज नए अभी भी क्रीज पे, और उन्होंने बड़े शॉट से इज्तनाब किया। 4 इनके सरकर्दा खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और उसके बाद शायद वो मजीद रिस्क नहीं लेना चाहते आने वाले 2 ओवर्स तक। और एक मौके पे जो कि पटरी पे लग रहे थे कि पहुंच जाएंगे 190 के आसपास, अपने आप को दोबारा से संभालना पड़ेगा। अच्छी बॉलिंग इन आखिरी ओवर्स में, शानदार अंदाज से अपने लेंथ को वेरी कर रहे हैं। बैट्समैन को मौका नहीं मिल रहा। कदमों का इस्तेमाल भी किया था शॉट को एनफोर्स करने के लिए स्लोअर पिच पे, लेकिन बच निकले। फैजान दराज का दें और अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, और सेंसिबल है। गेम अवेयरनेस भी इनकी अच्छी है, इन्हें पता है किस तरफ बाउंड्री जो है वो छोटी है, किस तरफ बॉल करूंगा तो इन्हें मुझे लेग्स की तरफ ही खेलना पड़ेगा।
और इंटेलिजेंटली कोई रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे बैटर्स को। एक मरतबा फिर पेस को चेंज किया, लेकिन फुल टॉस ऑफर कर दी दूसरी जानिब एतजाज को। आधा काम ठीक किया, लेकिन बाकी सरासर गलत, और एतजाज को अपना पहला चौका लगाने का मौका मिल गया। अच्छा ओवर करते करते चौके के साथ इख्तिताम। रिप्ले में देखिए, और एक चीज कंसिस्टेंट है, और इस पूरे सीजन में, सिर्फ आज के मैच में नहीं, वो ये है कि जब भी कमेंट्री बॉक्स में हमने किसी की तारीफ की है, उसी वक्त उसने कुछ ना कुछ गलत किया, और एक बार फिर मौका नहीं जाने दिया, और अच्छा ओवर करते करते इसको फुल टॉस दे बैठे इस बॉल पे, जिसपे बैटर ने पूरा फायदा उठाया, स्लाइस किया उसे पॉइंट के ऊपर से 164 पे 4। जमान ओवर करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा वाकयात से भरपूर ओवर था इनका पिछला, जिसकी शुरुआत की थी उन्होंने फ्री हिट के साथ, दोबारा फ्री हिट ऑफर की, बच निकले, उसके बाद कैचेस ड्रॉप हुए, और अभी अपना आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं। 2 विकेट्स उन्होंने कमाई हैं 33 रन देके। फायदा ये हो सकता है राइट हैंडेड बैटर को कि उनकी ऑन साइड पे, जो कि आमतौर पर मजबूत साइड समझी जाती है, मुख्तसर बाउंड्री है, उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर रुक गए और अच्छा किया, कैच लेने का मौका नहीं था। पिछले ओवर में बड़े वाकयात से भरपूर था सलमान इनका। जी हाँ, उसमें कैचेस ड्रॉप हुए, बड़े शॉट्स को ट्राई करते रहे, बार बार फखर जमान लकी रहे 2 मरतबा, आखिरकार वो पकड़े गए। और जमान खान ने अच्छी बॉलिंग की, उन्हें बिल्कुल पेस ऑन द बॉल नहीं उन्होंने प्रोवाइड की, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की। ये वो लास्ट ओवर है जहां पर पहला जो चौका लगा, ये भी इनसाइड एज था, थिक एज हुआ, गैप में गई, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और एक और अच्छा यॉर्कर। एक बार फिर अच्छी टाइडी लेंथ है, ये रूम नहीं दे रहे हैं बैटर को, एलिवेशन का मौका नहीं दे रहे हैं कि वो इस बॉल के नीचे जाकर इसे बड़ा स्ट्रोक लगा सके। और इंटरेस्टिंग है, पिछले बॉल पे इन्होंने मिड ऑफ को ऊपर बुलाया था, और अब एक बार फिर इन्होंने फील्ड में चेंजिंग की, और ये वो कैचेज हैं आपकी स्क्रीन पर, जो 2 मौके 2 बॉलों में फखर जमान को मिले इनके पिछले ओवर में। और ये वाला तो लगता है कि हवा में घूमता रहा, क्योंकि जैसे फील्डर नीचे घूमे उसके। लेकिन उसी अंदाज से उठाया है, फील्डर जा रहे हैं मेहरान, और उनके पीछे आ रहे हैं बॉलर जमान, लेकिन दोनों नहीं पहुंच पाएंगे, दोनों के बीच में गेंद गिर गई। एलिवेशन दी थी, लेकिन डिस्टेंस इतना भी ना दे सके कि वो दायरे को क्लियर करते। जमान बहुत शानदार टेम्परामेंट के मालिक हैं, इन्होंने पीएसएल में लास्ट ओवर में रन्स को डिफेंड किया, इन्होंने अपने डेब्यू पे बहुत अच्छी बॉलिंग की, और डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, और नया बॉल भी करवाया, जो कि यूजुअली करते नहीं है ये। वक्त आन पहुंचा है कि हर गेंद पे बड़े शॉट के लिए जाएं। यस, बड़े जोशीले, और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि वेयरिंग हिज हार्ट ऑन स्लीव टाइप के क्रिकेटर हैं, और नजर आता है कि वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लिंगिंग एक्शन है, और पूरी कोशिश के साथ वो डेक को हिट करते हैं पेस जनरेट करने के लिए, और अपनी लेंथ को चेंज करते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि हालांकि खुद यंग बॉलर हैं, कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं रखते, लेकिन क्योंकि इस टीम के अंदर ये सीनियर बॉलर हैं, तो छोटी जो बाउंड्री है लेग साइड पे, उस एंड से खुद बॉलिंग कर रहे हैं। इन बड़ी आसानी से ये भी दूसरी तरफ जा सकते थे, लेकिन अच्छी चीज़ है ये। बेहतरीन ओवर, जो कि अब तक बगैर किसी बाउंड्री के तो गुजरा ही है, लेकिन साथ साथ इसमें 1 रन कम दिया रन बॉल से। इसके साथ अपने ओवर को रैप अप करने के लिए जाएंगे। 1 ओवर बाकी रह जाएगा इनिंग्स का, और स्ट्रगल कर रहे हैं बड़ी हिट्स लगाने के लिए। अच्छा कमबैक किया रावलपिंडी ने एक मौके पे, जो कि रनवे टोटल दिख रहा था एबटाबाद की जानिब से, खासतौर पर जब तक फखर क्रीज पर मौजूद थे। इसमें स्टॉपेज आया, लेकिन इन्होंने भी जाते जाते फुल टॉस ऑफर कर दी, और कोई मसला नहीं हुआ वहां पर एतजाज को अपना दूसरा चौका हासिल करने के लिए लेग स्टंप से बाहर की जानिब मूव करते हुए एंड स्टैंड एंड डिलीवर की जीती जागती मिसाल बने एतजाज। एक बार फिर आपने तारीफ की इस मर्तबा, और नतीजा वही निकला, अच्छे ओवर के बाद लास्ट बॉल पे चौका। सो ये जो कमेंट्री बॉक्स की तारीफ है, ये बॉलर के लिए वबाले जान साबित हो रही है। 19 ओवर का जो खेल है वो अख्तिताम को पहुंचा है 171 पे 4। यस, इब्तिदाई इश्क है सलमान, जो कि पहला मुकाबला एक बड़ा टूर्नामेंट है, गो के अब जमान के पास इस मैच में कमबैक का मौका नहीं होगा, उनका कोटा मुकम्मल हो चुका है, इनिंग्स का 1 ओवर बाकी है, लेकिन उनके पास अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होगा, वो नेक्स्ट स्टेज तक मजीद एलिवेशन हासिल कर सकेंगे। आखिरी ओवर की शुरुआत है,
उठाकर खेलने के लिए गए हैं, गेंद हवा में है और फील्डर ने इस मरतबा आसानी के साथ इसको कैच कर लिया। जमान ने अभी ओवर मुकम्मल किया था, गेंद के नीचे खैमा जन हुए और आसान कैच को अपने महफूज हाथों में मुंतकिल किया। एक दफा फिर बड़ी हिट लगाने में नाकाम हुए बैटर्स और टाइम नहीं कर पा रहे हैं बैटर्स। और रावलपिंडी बॉलर्स की बात ये अच्छी है कि बिल्कुल लेंथ अप, बिल्कुल पिच अप कर रहे हैं और कहीं पे एलिवेशन का मौका नहीं दे रहे। और इस दफा कैच जो है बड़ी बासानी और पूरे तमाम तरीके से पकड़ा, परफेक्टली ऑल राइट, फील्ड पोजीशन और एक और चेंज ऑफ पेस। सो चेंज ऑफ पेस जो है वो बॉलिंग के लिए की है इस पिच के ऊपर। खालिद उस्मान नए आने वाले बैटर हैं और अहमद खान वो जो आउट होके जा रहे हैं। 14 रन बनाए इन्होंने, 13 गेंदों का सामना किया। तजर्बाकार खालिद उस्मान जो कि चंद बड़े हिट्स लगाना चाहेंगे इन 5 गेंदों पे। स्ट्राइक पर उनको आना पड़ेगा। एतजाज दूसरी तरफ 2 चौके लगा चुके हैं। डेथ ओवर्स की अच्छी बॉलिंग है अब तक। गो के पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे चौका कंसीड किया, लेकिन ओवरऑल जो कि अब तक एक लड़ी आ चुकी होती है बाउंड्रीज की, उससे बच निकलने में वो कामयाब रहे हैं। खालिद उस्मान बहरहाल इतने तजर्बे के हामिल ज़रूर हैं कि वो कवर्स की जानिब खेलने के लिए जाएं, लेकिन देखना होगा कि क्या वो रूम बना के खेलने के लिए जाते हैं। इतनी बड़ी बाउंड्री में तकरीबन 80 मैचेस है खालिद उस्मान के और एवरेज 16 का है, जो कि उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता। इतनी बड़ी बाउंड्री में आपको गैप्स में खेलना आना चाहिए। और अगेन इस बार इंटेंशन तो कुछ और थी, लेकिन बॉल गया थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से। 4 रन्स मिले और खालिद उस्मान का एक अच्छा स्टार्ट उनकी टीम के लिए। वो कहते हैं डजंट मैटर हाउ दे कम एज लॉन्ग एज दे कम। तो एक टुवर्ड्स द एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओवर के बाकी बॉल कैसे जाते हैं, मोमेंटम हो सकता है उस टीम के साथ चला जाए। खुशकिस्मत रहे खालिद उस्मान, पहली गेंद पर बड़ा थिक कैच निकला और गेंद फ्लाई करती हुई, फील्डर अंदर थे, शॉर्ट थर्ड मैन पे उनके ऊपर से फ्लाई करती हुई चौके के लिए गई। विकेट हासिल करते ही बदकिस्मत रहे चौके को कंसीड करके। पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं था। डीप से तेजी के साथ लपके थे गेंद पे, सिर्फ 1 रन मिल पाया। यासिर शाह एबटाबाद के कप्तान, शायद इनको आने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी पड़ेगी इस टोटल को डिफेंड करने के लिए। एक घुटे पे बैंड किया, हवा में खेला है, लेकिन फील्डर से पहले गेंद लैंड कर जाएगी। एक मरतबा फिर मुबस्सिर मौजूद थे वहां पे। तो अच्छा अख्तिताम हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस टारगेट को जो कि मिलने वाला है? देखिए एक डिसेंट टारगेट है। ये पिच इतना आसान नहीं है। हमने देखा बैटर्स यहाँ पे काफी वक्त भी गुजारा, उसके बाद भी टाइमिंग नहीं मिल रही थी। और फिर डिफेंड करना यहाँ पे जो है स्कोर को वो खासा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो जो खाली पॉकेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और गेम अवेयरनेस कैप्टन्स की और फील्डर्स की सबकी टेस्ट होगी। कहीं पे आपको बाउंड्री के साथ रहना है, कहीं आपको अंदर रहना है। रिवर्स मारना चाहते थे, इस दफ़ा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए और लास्ट बॉल बचा है। 177 रन हैं और खालिद उस्मान जो है सामने तसल्ली देते हुए गए आप फिक्र ना कीजिए। जब बड़ी बाउंड्रीज आती हैं समर, तो बैटर्स का बड़ा इम्तिहान होता है कि उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो कैसी है। इनिंग्स की आखिरी गेंद आने को खालिद उस्मान सामना करेंगे और चेंज ऑफ पेस में एक मरतबा फिर बच निकले। तो यूं शानदार इख्तिताम किया, सिर्फ 1 चौका निकला आखिरी ओवर में, वो भी एच की सूरत में। इससे अच्छा इख्तिताम नहीं हो सकता था। जहांदाद ने न सिर्फ विकेट समेटी बल्कि 2 डॉट बॉल्स करके इस इनिंग्स को रैप अप किया है। 36 रन दिए उन्होंने कुल अपने कोटे में, लेकिन 1 विकेट हासिल किया। अच्छा स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड और बैटर बिल्कुल इसको चेक ना कर सके। अपने आप को रूम देना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी कोई पेस उन्हें बॉल पे नहीं मिली जिससे वो काम कर सकते। 177 आखिरकार टोटल बना एबटाबाद के लिए। और फखर जमान के होते हुए जो लग रहा था कि शायद बात 200 तक चली जाए, उस
उस होप को काफ़ी डेंट पड़ा है उनकी विकेट गिरने से। और एबटाबाद के पहले 10 ओवर्स में 76 रन थे एक विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर था, लेकिन कोई ऐसा स्टार्ट नहीं था कि जिसे आप कहें कि दे रन अवे विद इट। उसके बाद अच्छा कमबैक किया, अगले 10 ओवर्स में 4 विकेट्स ली रावलपिंडी ने। लेकिन अगर वो कैचेस कर लेते जो उन्होंने छोड़े हैं तो शायद इससे खासा कम हो सकता था टोटल। पावर प्ले में अगर हम देखें तो पहले 6 ओवर्स में 51 रन बने और आखिरी 5 ओवर्स जो है वो 47 रन बने। ये स्कोर कार्ड एबटाबाद का। सजाद 27 रन बनाए, अच्छे लग रहे थे, लेकिन कैरी ऑन ना कर सके उस इनिंग को। फखर जमान 72 रन के साथ सर फहरिस्त रहे और कामरान गुलाम भी एक अच्छा स्टार्ट लेके जब तेज खेलने की बारी आई तो वो भी रन आउट हुए। और उसके बाद यंगस्टर्स ने बैटिंग की। हमने देखा आरिफ ने आते ही 2 शानदार बड़े हिट लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी इनसाइड एज पे बोल्ड हुए। सो एक अच्छा डिस्प्ले फ्रॉम अ यंग साइड। बॉलिंग इब्तिदा की थी मुबस्सिर ने, जिन्होंने अपना कोटा मुकम्मल किया बिना किसी विकेट के। फैजान को भी कोई विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन जमान पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। उन्होंने 10 रन जरूर दिए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की। एक को रन आउट करके वापस भेजने में कामयाब रहे, जबकि झांदाद और मेहरान भी एक एक खिलाड़ी को आउट कर पाए। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे सज्जाद अली और फखर जमान। इब्तदाई ओवर्स में कुछ खामोशी रही, लेकिन उसके बाद फखर जमान ने अपने टिपिकल रवैये को अपनाना शुरू किया और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने फेवरेट रीजन का पूरा इस्तेमाल किया। छोटी बाउंड्री को भी एक्सप्लॉइट करते रहे। फिर सज्जाद को हाथ खोलने का मौका मिला और कुछ ज़बरदस्त किस्म के अंदाज के उन्होंने शॉट्स लगाए, लेकिन रिवर्स शॉट खेलते खेलते जब आउट हुए उसके बाद आए कामरान गुलाम और उनको भी एक ड्रॉप कैच का फायदा मिला। अच्छे टच में लग रहे थे कामरान, लेकिन एक तेज रन और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होकर वापस गए। अच्छी थ्रो थी जो कि डायरेक्ट जाके स्टंप्स पे लगी। फखर जमान के ऑन स्लॉट का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस दरमियान में कई गेंदें थी जिनको वो टाइम करने में कामयाब ना हो सके। आरिफ आए थे जिन्होंने आते ही 2 छक्के लगाकर इम्पैक्ट क्रिएट किया था, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ 2 गेंदों के मेहमान साबित हो सके। फिर फखर जमान का जमान के खिलाफ एक्शन पैक ओवर आया जिसमें 2 मरतबा उनको लाइफ मिली, लेकिन तीसरी मरतबा वो खुशकिस्मत साबित होने में कामयाब ना हो सके जब मुबस्सिर के पास गेंद गई और उन्होंने आसानी के साथ कैच करके वापस भेजा जमान को। लेकिन अपना असर छोड़ चुके थे। 72 रन की इनिंग्स खेली फखर जमान ने। दूसरी जानिब अहमद मौजूद थे जिन्होंने बड़े हिट्स लगाए, लेकिन उनका भी खात्मा किया इनिंग्स का और उनको वापस भेजने में कामयाब रहे और यूं 178 रन का टारगेट बनाए। ट्रिकी टारगेट होगा, लेकिन एक दिलचस्प गेम होने की तवक्को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। कैसे खेलेगा इस टारगेट के पीछे रावलपिंडी, इन सब के साथ आपके साथ मौजूद होंगे चंद लम्हात में। और ये आए फखर जमान आपके लिए। In the air and gone. Tried to reverse and just couldn't clear that fielder at backward point. Gone. Played out to the stumps and it has worked. Down on one knee and just scoops that over the keeper for a boundary. दूसरी जानिब लाइसेंस मिला है फखर जमान को, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे।
तवक्को ये है कि ज़्यादातर मैचेस लास्ट ओवर आखिरी गेंद के फिनिश तक जाएंगे। जब मैं मानता हूं कि अच्छा टोटल हो गया है एबटाबाद की जानिब से, 178 का ये टारगेट है, आसान नहीं होगा। और एक चीज़ जो यासिर शाह के एडवांटेज में जाती है कि अब इनको अंदाज़ा हो गया कि कौन से बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने देखा कि मेहरान, मुमताज़ और मुबस्सर ने जिस पेस से बॉलिंग की है, जिन एरियाज़ में बॉलिंग की है, उससे इनको काफ़ी आइडिया होगा कि स्पिनर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मुबस्सर की बात करें या मेहरान, इन्होंने बहुत स्लो बॉल किया है और दूर बॉल किया है, जिसकी वजह से जो नंबर्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनमें ये दो जो स्पिनर्स थे ये स्टैंड आउट किए हैं। ऑल्दो ज़्यादा विकेट्स मुबस्सर ने तो विकेट हासिल नहीं की, लेकिन स्टिल उन्होंने जिन एरियाज़ में बॉल किया, ये स्कोर ज़्यादा हो सकता था, लेकिन कम बैक किया है। ज़िशान मलिक काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होगा इनके ऊपर, क्योंकि ये हार्ड हिटर बैटर हैं। 178 के टारगेट को चेस करने के लिए आपको स्टार्ट बहुत अच्छा दरकार होगा, और ज़िशान में वो पोटेंशियल है। इनफैक्ट रावलपिंडी की बैटिंग लाइन अच्छी बैटिंग लाइनअप है, जिसके अंदर अब्दुल फसी है बहुत अच्छी फॉर्म में, हैदर अली, उमर अमीन, मुबस्सर खान, ये सारे बहुत ही तगड़े बैटर हैं। लेकिन जो एडवांटेज सिर्फ यासिर शाह एंड कंपनी की तरफ जाता है कि अब उनको कंडीशंस का थोड़ा अंदाज़ा हो गया है कि किन बॉलर्स को कहाँ किस एंड से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लंबी बाउंड्री है। फिटनेस भी टेस्ट होगी यहाँ पे बैटर्स की, कैसे एक को दो में कन्वर्ट करना है। ज़िशान मलिक के साथ यासिर इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं, उछलते कूदते अपने आप को वार्म अप करते हुए। आपको याद कराते चलें कि कराची के हम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर सूरज डूबने में अभी भी कोई 1 घंटा बाकी है, और गो के आज बड़ा ह्यूमिड आउटलुक है अली, और इसके बाद सेकंड गेम में इस बात का इम्कान लग रहा है कि ड्यू का कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जिस अंदाज का मौसम है। लेकिन पहला गेम चूंकि जब तक सूरज डूबता है उस वक्त तक अपना असल वक्त गुजार चुका होगा, इस वजह से वहाँ पर कंडीशंस का उस अंदाज से कोई तब्दील होने का इम्कान नज़र नहीं आता। जिस तरह से आपने कहा है कि अब इस पिच के हवाले से इनको इतना ज़रूर अंदाज़ा हो चुका है कि किस पेस के साथ अपने आप को लेकर चलना होगा, और फिर वो बॉलर्स को टारगेट करने की भी कोशिश कर सकेंगे। यासिर के पास दुनिया जहां का तजर्बा मौजूद है, बड़े अच्छे अंदाज में वो पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक के सीजन्स में अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को वो लड़ाते हुए आए हैं, और साथ साथ बड़े खुद इन्वॉल्व रहते हैं। और इस अंदाज की पिच पे जहां पर वो अपनी लेंथ को वेरी करते हैं, जहां पर वो रॉन्ग वन का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको शायद इनिंग्स के दरमियान में आकर भी अपना किरदार अदा करना होगा। ज़िशान मलिक अच्छे बैटर हैं, ये अच्छा स्कोर करते हैं, तेजी से स्कोर करना पसंद है इनको। आदिल नाज स्टार्ट करेंगे एबटाबाद के लिए। 178 रन्स अगर डिफेंड करने हैं तो अर्ली प्रेशर डालना होगा, विकेट्स हासिल करनी होंगी। और अकील, हमने कराची में जितनी भी क्रिकेट कवर की है, ये देखिए, ये जो जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, ये जो टाइम होता है, ये फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत शानदार होता है। सीम स्विंग होता है, और अगर अभी तो ये पहली इनिंग है, अगर 4 डे मैच हो तो रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिलता है इस टाइम पे। तो ये जो थोड़ा टाइम, आधा पौना घंटा यहाँ से ऑनवर्ड्स, ये मुश्किलात पैदा करेगा बैटर्स के लिए। यस, नई गेंद है, और इसके साथ साथ ज़िशान मलिक का सीजन कोई इतना खातिर खा गुजरा नहीं है जो उन्होंने पाकिस्तान कप में अब तक परफॉर्मेंस दिखाई है। और अब वो जो फ़खर जमान जिस गेम अवेयरनेस का आप भी जिक्र कर रहे थे पिछले इनिंग्स में, वो किस अंदाज से इन कंडीशंस को अपने हक में मोड़ पाएंगे वो देखना होगा। अभी पेविलियन एंड से बॉलिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं, और ऑन साइड पर पूरा रीजन खाली छोड़ा हुआ है, और मुख्तसर बाउंड्री है ऑन साइड पे। तैयारियां मुकम्मल हैं इस इनिंग्स की शुरुआत के लिए। एक फील्डर को स्क्वायर लेग पर रखने का फैसला किया, जबकि एक थर्ड मैन पर मौजूद है। दूसरी इनिंग्स की पहली बॉल करने के लिए आदिल, अच्छी गेंद, शानदार मूवमेंट हासिल की, और ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए चली गई। यासिर को न जाने कैसे बच निकले, दिल हलक में आ गया होगा बैटर का। बदकिस्मत रहे बॉलर के, एज से भी बची और स्टंप से भी। ये शानदार बॉल था। पहला ही बॉल पड़ने के बाद जो सीम हुआ, बहुत तेजी से अंदर की तरफ आया बॉल, और इसी सीम स्विंग की मैं बात कर रहा था कि ये टाइम ऐसा है जहां पे बॉलर्स को ये मदद मिलेगी। अगर आप सही एरिया में बॉल करेंगे, सही चैनल में बॉल करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत लकी रहे यासिर कि थोड़ा हाइट की वजह से ये मिस आउट कर गए, विकेट को लग जाना था ये बॉल। एक और सीरीज गेंद, अच्छी डिलीवरी, हाइट की वजह से मिस करती स्टंप्स को, लेकिन बैट्समैन को उन्होंने जरूर मुश्किलात से दो चार किया है। दूसरी जानिब यासिर भी बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी PSL में इन्होंने कर रखी है, लेकिन जिस अंदाज की उनको ये हैवी मेटल का सामना करना पड़ा है, इंटरेस्टिंग होगा। एक मरतबा फिर वाइड ऑफ क्रीज से एंगल बना के ला रहे हैं और मुश्किल से दो चार कर रहे हैं, शायद तवक्को कर ही नहीं रहे थे इस पेस के लिए।
अच्छा एक्शन है इन स्विंग के लिए आदिल का, बस आपको सही एरिया चूज करना है। अच्छा स्टार्ट है, पहली 2 बॉलें ऑन टारगेट की हैं स्विंग और सीम के साथ आदिल ने। ये इम्तिहान है यासिर के लिए। एक मरतबा फिर मूवमेंट, लेकिन इस मरतबा दूसरी दफा वो खेलने में कामयाब रहे और गए हैं स्ट्राइक से दूर, और यही उनके लिए बेहतर कंसिडर होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस नज़ारे को देखें। गो के टारगेट ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि इसको आपको हर गेंद को टारगेट करना पड़े, लेकिन अगर इब्तदाई ओवर्स में वो छुपा के रखने में कामयाब हो जाते हैं बाउंड्रीज को, तो फिर दूसरी तरफ से इनको इसका मौका मिलेगा कि वो इन दोनों राइट हैंडर्स के खिलाफ बड़ी बाउंड्री को डिफेंड करने की कोशिश करें और इतनी ऊंची उड़ान देने का मौका ना दें। ये साहब तो नीचे लैंड कर रहे हैं। वेलकम बैक टू कराची। बड़े बड़े मेहमान आए इस मरतबा, और जिस स्टेटस में पिछले साल थे उसी में आए। उम्मीद है कि जो खुशियां तस्वर कर रहे होंगे, जिस मकसद के लिए कराची आ रहे होंगे, वो उनको मिले। और यहाँ से देखेंगे 10 दिसंबर को कौन ट्रॉफी लेके जाता है। आप क्यों शर्मा रहे हैं अली? ऐसे भी आपको पता है शादियों का सीजन है, अभी इसमें हम डिटेल में बात करें। निशान मलिक पहली गेंद का सामना करेंगे। पेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फील्ड को अबू ना कर सके। सर्कल के एच पे हासिल किया इस गेंद को। इन द एंड ऑफ द मार्क ईशान। यहाँ काफी अच्छी फील्ड सेट कर रखी है यासिर शाह ने। इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि कवर में फील्डर सिर्फ एक पॉइंट पे हैं और एक्स्ट्रा कवर पे हैं। गैप दिखा रहे हैं क्योंकि इन स्विंग करते हैं, नेचुरल इन स्विंग करते हैं आदिल, तो वो चाहते हैं कि कवर की तरफ खेलें बैटर। और अगर आप दूसरी जानिब नजर डालते हैं तो मिड विकेट पे हैं, डीप स्क्वायर लेग भी फील्डर हैं। तो एज पर जो स्विंग ऑफ द बॉलर इन्होंने फील्ड सेट रखी है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कप्तानी का भी इम्तिहान होगा यासिर शाह के लिए, क्योंकि क्वालिटी बैटिंग है रावलपिंडी की भी। स्लिप भी रखने का फैसला किया है। इस मरतबा दूसरी तरफ मूव किया गेंद को और इन स्विंगर खेलने के लिए चले गए थे यासिर। एक मरतबा फिर चूक गए और एक और डॉट बॉल। या मिक्सअप करना होगा आदिल को। अर्ली स्टेज है, यंग है अभी, लेकिन ये इनका लर्निंग प्रोसेस है इस तरह की क्रिकेट खेलना। इनको मिक्सअप करना होगा, अपनी पेस को, अपनी लाइन, अपनी लेंथ को। प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों यासिर और जीशान ये तगड़ा खेलते हैं, ये बड़ी हिट मारते हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रेडिक्टेबल कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी इनके लिए। इनको गैस करते रहना होगा। यस, नॉर्दर्न की अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं 21 साल नौजवान आदिल नाज, और जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में हिट द ग्राउंड रनिंग की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। शानदार मूवमेंट हासिल की है। बेहतरीन ओवर, लेकिन अपनी लाइन में चूक गए इस मरतबा। स्टंप्स के बहुत बाहर गेंद की, लेकिन ओवर बड़ा अच्छा रहा, 2 बिना किसी नुकसान के। डबल हेडर्स का आज पहला दिन है। नॉन स्टॉप क्रिकेट अपने देखने वाले क्रिकेट के फैंस, और उम्मीद करेंगे कि नए नए फैंस बने ऐसे टूर्नामेंट से। और जब 10 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का अख्ताम हो तो हमें कम से कम 4-5 ऐसे हीरोज मिल सकें जिन पे हमें नजर रखने का मौका मिले, क्योंकि बड़े बिजी सीजन की शुरुआत है। इसके साथ साथ जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया था कि T20 का अरूज रहेगा, पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है। ड्राफ्ट से शायद चंद दिन पहले इस टूर्नामेंट का अख्ताम होगा, और चूंकि पाकिस्तान के जो फ्रंट लाइन के बैटर और बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे, उसके कैंप में होंगे, तो यहाँ पर बाकियों को अपने पॉइंट को प्रूव करने का मौका मिलेगा। और ये एक अच्छा कदम नजर आता है। खालिद उस्मान गेंद करने के लिए आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, खैबर पख्तूनख्वा की टीम हो या पेशावर की। और अब एबटाबाद के लिए उन्होंने बड़े मार्के सर अंजाम दिए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो यहाँ पर जो अभी देर तक न्यूजीलैंड के टूर के लिए पाकिस्तानी टीम की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो यहाँ पर कम से कम कुछ खिलाड़ियों को मौका जरूर मिल सकता है कि अगर वो अच्छा खेल पेश करते हैं तो वहां पर वो उस फ्लाइट में अपनी सीट बुक कराने में कामयाब। इसी एडवांटेज का मैं जिक्र कर रहा था कि यासिर शाह को अब अंदाजा होगा कि इस पिच पे कौन सा बॉलर कब इस्तेमाल करना है, इसलिए स्ट्रेट अवे उन्होंने खालिद उस्मान को इस्तेमाल करने का फैसला किया। बहुत ही तजुर्बेकार हैं खालिद उस्मान, बहुत स्किलफुल भी हैं, ये ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। ये पेशावर ज़ालमी से पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल चुके हैं। और प्रेशर हम देख रहे हैं कि दोनों बैटर्स पे है अर्ली ऑन, क्योंकि एक जानिब से स्विंग है, दूसरी जानिब से स्पिन है, तो आसान नहीं होगा। एक्स्ट्रा का रन जरूर मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद अब बैट्समैन के लिए शायद ये वक्त आन पड़ा है कि वो अपने ट्रू गेम को दिखाने के लिए जाए। लेकिन दूसरी जानिब बॉलिंग अच्छी है, गोके इस मौके पे तो वो चूक गए, लेकिन इसके साथ साथ विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर गलती करेंगे बैट्समैन तो खुद ही फंसेंगे।
और अब तक पूरी रिस्पेक्ट देने का फैसला किया है। बड़ी बाउंड्री है और उसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। दोनों फील्डर्स जो कि दायरे के बाहर हैं पहले 6 ओवर्स के लिए, एक मौजूद हैं स्क्वायरिश मिड विकेट पे, जबकि लॉन्ग ऑन की बाउंड्री। एक बार फिर लकी रहे, इससे पहले भी जो पहला सेकंड बॉल किया था लेग साइड पे बॉल किया था, ये भी गलत बॉल था, इस पे भी बाउंड्री बॉल था ये भी, लेकिन अभी थोड़ा अपने आप को चेक कर रहे हैं, केयरफुल हैं दोनों बैटर्स। क्योंकि फखर जमान से सीखना होगा इन दो यंग बैटर्स को भी, कि किस तरीके से उन्होंने अपने इनिंग को पेस किया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो आते ही मारधाड़ शुरू कर दी, उन्होंने अपनी इनिंग को पेस किया। और एक ऐसा टाइम आया था जब विकेट्स गिर रही थी तो अपने आप को रोका भी बड़े शॉट्स खेलने से, और जब कंडीशंस आसान हुई तो फिर आसानी से बाउंड्रीज भी हासिल की हैं। तो इसलिए आपको कभी कभी अपने अपोनेंट से भी सीखना है, जिस तरीके से वो बैटिंग करके गए हैं। एक बात तो तय है कि आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। खालिद उस्मान जिसपे एक हिस्सा है जिनका। दिलचस्प हिकमत अमली है और इन सब के साथ होगा ये कि जो इब्तिदा में ऐसा टारगेट लग रहा था कि जिसके लिए आप आसानी के साथ जा सकते हैं, 2 ओवर खामोशी के साथ मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद अचानक से आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा। एक और शानदार ओवर मुकम्मल, गो के 2 वाइड जरूर की खालिद उस्मान ने, लेकिन विकेट टू विकेट चलते रहे 6 बिना किसी नुकसान के। यहाँ चेंज आई है, हम यहाँ रावलपिंडी से कराची आए हैं पाकिस्तान कप के बाद, जहाँ पे क्राउड हमें फाइनल में नजर आया था, लेकिन कराची में क्राउड को इजाजत है। 2 स्टैंड्स हैं जो ऐसे खुले हुए हैं क्राउड के लिए, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे इनके जितने भी लोग हैं वो स्टेडियम में आके मैच देखें, सपोर्ट करें इन यंग प्लेयर्स को। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे नए प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, नए स्टार्स डेवलप होंगे। लाड़काना से डेरा मुराद जमाली, बहावलपुर, ये सारी टीम्स ऐसी हैं जिनको हम बहुत अरसे के बाद एक्शन में देखेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है इन सारे रीजन के प्लेयर्स के लिए कि अपना टैलेंट शोकेस कर सकें यहाँ पे बड़ी स्टेज पे, बड़े ओपोनेंट्स, टेलीवाइज मैच, बड़ा स्टेडियम। इससे बेहतर हालात हो नहीं सकते हैं किसी को भी अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। अली, मुझे वो दिन याद है उस T20 टूर्नामेंट के, क्योंकि अब तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में ये नई छत डल गई है, लेकिन इससे पहले जब छत होती थी तो इस छत के ऊपर तक तमाशाई मौजूद होते थे इस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में। डाउन द लेग साइड आदिल नाज की एक और डिलीवरी, लेकिन इस मरतबा चूके जरूर हैं, लेकिन मोमेंट जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आदिल नाज ने अपना डेब्यू किया अब्बोत्ताबाद से, और उसके साथ साथ चूंकि हमें हर गेम में यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान इस अंदाज के दिखते रहेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक यंग फास्ट बॉलर से जिसका डेब्यू हो, पहला मैच हो। नर्व्स डेफिनेटली होती हैं और स्विंग भी मिल रहा है, इस चीज़ का ये एडेड एडवांटेज तो है इनको, बट स्टिल कंट्रोल करना होगा। और एक क्रिकेटर के लिए अपना पहला मैच बड़ी स्टेज पे खेलना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है अखिल, और आज इनका ये बड़ा दिन है। बड़ी टीम है जिनके खिलाफ कर रहे हैं। लाइट्स ऑन होने का वक्त आ चला है, अभी भी सूरज डूबने में वक्त बाकी है, लेकिन अंधेरा सा हो रहा है। और दूसरी जानिब अच्छी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, डिजर्व कर रहे हैं विकेट हासिल करने के लिए। आदिल नाज अकेले डेब्यूटेंट नहीं है अब्बोत्ताबाद के लिए, आपको हर गेम में पहले मुकाबले में इस अंदाज के डेब्यूटेंट मिलते रहेंगे। इनके साथ साथ अहमद खान ने, इत्तेज़ाज़ हबीब खान ने जो कि इससे पहले अपनी बैटिंग करने के लिए आए थे, मोहम्मद फयाज खान ने भी अपनी कैप हासिल किया। बड़ा मौका इन तमाम के लिए, और ख़ास तौर पे देखते हुए कि एक ख्वाब को जीने का मौका तो उनको मिल गया है, लेकिन अब देखना ये कि ये जो पूरी दुनिया में मैच टेलीवाइज और स्ट्रीम हो रहा है उसमें वो किस अंदाज से परफॉर्म करते हैं। और अब तक इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया आदिल ने, विकेट को डिजर्व करें अपनी बॉलिंग से अब तक। थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं यहाँ पे रावलपिंडी के दोनों ही बैटर्स, क्योंकि अपनी नेचर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं। क्रेडिट जाता है आदिल को, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, स्विंग सीम हुआ है बॉल, और अच्छे एरिया में बॉल किए हैं। अच्छा रनअप है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, पहला मैच खेल रहे हैं ये। जितनी क्रिकेट खेलते जाएंगे बड़ी स्टेज पे उतने बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए बड़ा स्मूथ रनअप है, ओपन चेस्टेड है, अच्छी अप्रोच है क्रीज की तरफ, अच्छा जंप लेते हैं, अच्छा एक्शन है। एक और डोमेस्टिक के बड़े बेहतरीन बॉलर हैं समीन गुल, कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाते हैं अपने एक्शन और अपने रनअप से।
पहली अटेम्प्ट है ये, बड़ा शॉट खेलने गए हैं जिशान। थोड़ा हौसला रखना होगा, प्रेशर आएगा, ये बड़ा टूर्नामेंट है, बड़े अपोनेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कंडीशंस मुश्किल होंगी, लेकिन इन्हीं कंडीशंस से आपको रन्स करने, बाहर निकालना है टीम को भी, अपने आप को भी। शानदार सीम पोजीशन है, दोनों जाने मूव कर रहे हैं गेंद को और बैट्समैन को संभलने का मौका नहीं दे रहे, और अब शायद इस बात को रियलाइज कर रहे हैं दोनों एंड से बैटर्स, खासतौर पर जिशान के वक्त आन चला है कि वो आस्किंग रेट को ऐसे मौके पर ना जाने दें कि जो हाथ से निकल जाए। बड़ा ह्यूमिड और कुछ ऐसा धुंधला सा आज आउटलुक रहा है जो कि चीजों को इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाता। एक और शानदार डिलीवरी और एक मरतबा फिर बच निकले जिशान, बिना किसी फुटवर्क के अपनी जगह पर खड़े खड़े घुमाने की कोशिश की बगैर किसी गेम प्लान के। ऐसा लग रहा है जैसे फोर्स कर रहे हैं शॉट में, टाइम नहीं कर रहे हैं, करना जा रहे हैं, फोर्स करने जा रहे हैं, बड़ा शॉट खेलने जा रहे हैं, और यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बॉल उठा नहीं, थोड़ा लो रहा है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली इनिंग में भी थोड़ा बॉल लो रहा था, स्पेशली जो दूर वाला बॉल है, लेंथ वाला, लेकिन अच्छी कप्तानी, एक डीप मिड विकेट पे फील्डर ले लिया और एक डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है, क्योंकि बॉल अंदर आ रहा है राइट हैंडर को। अच्छी कप्तानी यासिर शाह की जानिब से। और फाइनली पहला ब्लड ड्रॉ करने में कामयाब होंगे जिशान, अपने प्लान को चेंज किया, ऑफ द बैक फुट खेले और आदिल ही के पेस का पूरा फायदा उठाते हुए पहली मर्तबा बाउंड्री गिरा दिखाई। या स्मार्ट क्रिकेट है ये बेहतर है, फोर्स करने से बजाय टाइम कीजिए। थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर है, सिर्फ बल्ला लगाना है और पेस इतनी है कि वो बाउंड्री की तरफ बॉल आसानी से चला जाएगा। ये स्मार्ट क्रिकेट है। इनिंग का पहला चौका हासिल किया और ऐसे शॉट्स ज्यादा खेलने होंगे, टाइम करना होगा, रादर देन कि आप फोर्स करने जाएं और मिड विकेट का एरिया ढूंढें। आपको बाकी एरिया की तरफ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने होंगे। अपने जिस्म से दूर रहकर कामयाब नहीं हो सके इस बड़ी बाउंड्री की जानिब खेलने में, ना टाइम कर सके ना प्लेस। बेहतर ओवर लेकिन बड़ा सफर तय करना बाकी, 12 बिना किसी नुकसान। ये स्लाइड्स ऑन हो रही हैं कराची में, गो के अभी तो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन मैं उन T20 टूर्नामेंट से जिक्र कर रहा था जो कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में खेले जाते थे और इसी अंदाज के, चाहे सुपर 8 टूर्नामेंट हो जो या कन्वेंशनल T20 टूर्नामेंट, यहाँ पर सेमीफाइनल्स, फाइनल, जहाँ पर कभी आफरीदी को, कभी मिसबा को, कभी दूसरे प्लेयर्स को आकर अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता था। और ये वो वक्त था अली के जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी और ना उस वक्त तक PSL की आमद हुई थी, और उसी बायस वो एक टूर्नामेंट होता था जो कि उस वक्त सारे क्राउड की तवज्जो का मरकज़ होता था। तो उम्मीद करते हैं कि इस वक्त इतने से हैं, जब इस रोड से लोग गुजरेंगे रात में, लाइट्स ऑन होंगी, वीकेंड का वक्त आएगा और ये मल्टीप्लाई बाय अगर 100 ना सही तो 10 या 20 तक ज़रूर क्राउड आएगा। हमारे सहाफ़ी दोस्त भी आए चाहते हैं, गो के लग रहा है कि अभी कुछ पर्सनल मैसेजेस में बहुत बिजी हैं, सोशल मीडिया का दौर है। गुड क्राउड इन। तीन इनक्लोजर्स खोले गए हैं और बेहतरीन यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स हैं क्राउड के लिए। आदिल आ गए हैं दूसरी तरफ से गेंद करने के लिए। आदिल ने इस तरफ से ओवर मुकम्मल किया, बल्कि दूसरी तरफ से तब्दीली खालिद उस्मान को तब्दील किया, आकिब आए हैं। खालिद उस्मान चलते रहते तो बेहतर नहीं होता, दोनों तरफ से पेस मिलेगा तो शायद हाथ खोलने का मौका मिल जाए बैटर को। या क्योंकि आदिल को थोड़ा स्विंग मिल रहा था इस एंड से, तो शायद यासिर शाह ने ये सोचा है क्यों ना अपने यंग जो फास्ट बॉलर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि इन कंडीशंस का फायदा उठा सकें वो। और हाथ खोलने का मौका मिला है, गेंद के नीचे आए, उठाया, शानदार आवाज, बेहतरीन प्लेसमेंट और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया 4 रन के लिए। ये अच्छा मौका मिल गया क्योंकि ये लेंथ मिल गई थी, जोन में बॉल कर दिया और यही वो बॉल है, ये लेंथ ढूंढ रहे हैं क्योंकि दोनों फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर है, मिड ऑन मिड ऑफ के, कोई इंटेंशन नहीं थी नीचे खेलने थी, क्लैरिटी थी कि सर के ऊपर से खेलना है। अच्छा स्टाइलिश शॉट है ये, और जब दोनों फील्डर्स अंदर होंगे और आप मुंह में बॉल करेंगे तो ये मिस आउट नहीं करेंगे बैटर्स, ये बहुत टैलेंटेड बैटर्स हैं। ये बेहतर है, दूर बॉल करेंगे, इस लेंथ पे करेंगे तो बचत हो सकेगी। आकिब भी अपना डेब्यू कर रहे हैं, आपने कुछ देर पहले जो मनाज़र देखे उसमें इन्होंने अपनी कैप हासिल की है, लेकिन दूसरे एंड से क्योंकि एक ही गेंद है और चंद गुजरते ओवर्स के साथ ये अपनी इब्तिदाई स्विंग को खोना शुरू कर देती है, तो आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पर लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है।
बॉलिंग साइड के लिए, क्योंकि खालिद उस्मान ने इस तरफ से खींच के रखा हुआ था। अब अगर आइडियली इस ओवर में एक बाउंड्री और या दो मिल जाती हैं तो वो अचानक से अच्छे स्टार्ट को, क्योंकि विकेट कोई नहीं गिरी है, वो नलीफाई कर देंगे। फिर उठाकर खेला और फील्डर के बाएं जानिब से निकालने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ उठाने के लिए जा सकेंगे। यासिर ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। 3 गेंदों में 2 चौके। या प्रेशर शिफ्ट होते हुए यासिर से आकिब की तरफ, क्योंकि दोनों बॉल जो बाउंड्री बॉल्स हैं ये लेंथ खराब हुई है, बहुत आगे बॉल कर दी है। और पहले भी मैंने जिक्र किया, ये जो नए मॉडर्न डे बैटर्स हैं ये लेंथ और ये जोन ढूंढते हैं, ये बहुत तगड़े हैं लेग साइड पे, ऑन साइड का शॉट अच्छा खेलते हैं। ऑल्दो फील्डर मौजूद था लेकिन उनको इस चीज़ की परवाह नहीं थी, प्लेसमेंट भी अच्छी रही। लेंथ को चेक रखना होगा यहाँ पे यंग आकिब को। में गई गेंद और एक मरतबा फिर बच निकले हैं बॉलर। अभी भी 10 रन पर ओवर तक नहीं पहुंचा आस्किंग रेट, और ये जो पावर प्ले का फायदा आपको उठाना होता है अब शायद ये वक्त आन चला है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 ओवर बाकी रह जाएंगे और उसके बाद जिस अंदाज की डायमेंशन हैं आपको फिर या तो भागना तेजी के साथ पड़ेगा या फिर हर गेंद में आप इस अंदाज की बाउंड्री हासिल नहीं कर सकते। टेपिंग की हुई है इन्होंने अपने दाएं हाथ पे, जो कि बॉलिंग हाथ भी है, और शायद बैट्समैन ने एतराज़ किया जिसकी वजह से उनको रिमूव करना पड़ा। यूजुअली तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने व्हाइट कलर का बैंड पहना हो तो उससे बैटर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो शायद सेम किट कलर का वो उनका जो टेप थी वो लगी हुई थी। फिर उठाकर खेला और छक्के के लिए गेंद रवाना। जैसे इस मौके के इंतजार में थे और आते ही इसको अपने लिए फायदे में बदल दिया। इंतजार कर रहे थे कि कब आकिब आए। यासिर ने 2 चौके के बाद छक्के के साथ बैकअप किया अपने 2 बाउंड्रीज को। यहाँ लेंथ एक बार फिर, लाइन भी खराब, ये खराब बॉलिंग है ये। और वो जो अर्ली प्रेशर डाला हुआ था खालिद उस्मान ने और आदिल ने, वो सब जाया हो गया इस ओवर में, क्योंकि खराब बॉलिंग की गई है, खराब लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की गई है। और यही लाइन और लेंथ तो ढूंढ रहे हैं बैटर, आप उन्हीं को ही यही बॉलिंग कर रहे हैं, तो सीखना होगा और जल्दी सीखना होगा। आस्किंग रेट भी नीचे आ गया महज 8.5 तक, और यूं 3 बाउंड्रीज वाला एक्शन से भरपूर ओवर मुकम्मल। 26 बिना किसी नुकसान के रावलपिंडी। Six for none after 4. Fayaz into the attack inside power play. Fine leg is up in the ring. Just a deep square leg. It's deep on the onside. Yasser moved right across his stumps. He was eyeing that mid-wicket boundary. We've seen the character of the pitch. The ball is not really coming onto the bat as much as we expected in the beginning. But we'll see. The lights are on now here at the National Bank Stadium to see if the
character of the wicket will change. Plenty of debutants today. Fayaz on that occasion getting his cap. Memorable moment for him in his career. No ball signaled by the umpire. That means it's a free hit. Such a big crime, and you feel they want to hide somewhere as a bowler when you bowl a no ball, because that could result in a lot of runs and no chance of a dismissal apart from a run out. We've seen an incredibly high number of no balls today. This one easily over. Someone like Zaman Khan also bowled a no ball. And then also he bowled a no ball for the height. Free hit now. Third man is deep. And the deep square leg. So two deep men outside, but we'll have a hold up in play now. Got to keep an eye on the time and the clock. 3 o'clock, the start of the game, and we finished off at 4:40 almost with the first innings. Should be an hour and 20 minutes. And then if you take a lot of time in this game, then you will overlap into the second one, which starts first ball at 8 o'clock. That's the local time here. So things have to be pretty quick. You finish off the first game, you give away the awards, you do a quick toss, and you allow the next two teams to come out and warm up. Really crucial for the umpires to keep the game flowing. That is very important, especially you having double headers every day here during this championship. The game has to keep flowing. And no timing on that either. Missed out on that free hit opportunity. Talking about the umpires, also huge responsibility on the match referee as well, Nadeem Arshad. And he needs to just keep a check on everything. Like Sikandar said, that the schedule is very, very tight. Evidence of that ball keeping low, Sikandar. And that's really challenging, especially with the newer ball, if that's happening. Once this ball is a little bit old and soft, there you see, dying on the way to the wicketkeeper. Played it way over the top. Zishan Malik not happy. Look at that quizzical look on his face. Something's going to give. Power play is coming to an end quickly. Rawalpindi hasn't made much use of that. He's given it a wide. The angle that Fayaz is bowling is away from that right-hander. This time around, his wrist position was pretty much around that second slip zone. Just missing out on that outstretched bat swing from Zishan Malik. Can be deceiving sometime where the wicketkeeper takes the ball, because that angle will be taking the ball away. Interesting where it passed the bat. A fair enough call. It's up in the air, but it'll be clear of that fielder. That's Yasir Shah. It's cleared everything, in fact. 2 full outside the off stump. Not really sure if that's the length and line he wants to bowl, because the fielders that he's kept outside the circle in the power play is a deep square and a third. Was right in the slot. Zishan Malik, you could see that look of content on his face. As soon as he middled that ball, he knew its fate. It landed over the fence. And Pindi needed that.
quick single to end the over. It's 5 gone, 35 for no loss. Five gone, 35 for none. Last over, last ball. It's really interesting to see if you're bowling left arm over the wicket. You're keeping a square leg back on the fence. Let me come back and have a look at that. Aqib's got 2 fielders now on the onside for Yasir, which is a deep mid-wicket and deep square leg. But for Zishan, he's got 2 men on either side. Deep square and a cover point. Just trying to understand what he's trying to bowl here to do 2 different batters. Exactly the same we saw in the last over as well. You see left arm over the wicket angle, allowing Zishan to hit through the offside. But throughout the over, he kept a deep square leg for that. So that is really, like Sikandar was mentioning, we need to just figure out what he wants to bowl when he has split field. There you go. This one's over the top again. Probably not off the middle of the bat, but few bounces onto the fence. Zishan Malik has really took the charge now. He wants to make use of that power play. It's again about that length that he's preferred to bowl, Aqib. When you've got a fielder square of the wicket, deep square, now he's got a long on in place. Earlier it was a deep point or cover point. Then you got to decide, because your captain will be working overtime trying to get those guys in great positions. But if your length is going to vary so much, then that means the captain and the bowler are not on the same page. Got to come back to that quickly, especially in the power play where it's just 2 men outside. Now they've got it right. You see a ring of fielders on the offside inside the 30-yard circle. So now they've got 2 deep fielders, mid-on and square leg, just in front of square. Probably that's the reason, because it does put the bowler under pressure to bowl a certain line. He cannot bowl outside the off stump. Overcorrection from him. Yeah, that's a bit playing with fire, isn't it? That line, look at that. Fine leg inside the circle, little nudge. There's no way anyone's stopping that. This time making room, but getting the toe end of the bat. Just looking to play inside out. This pitch is not too dissimilar to the one we saw at the World Cup final. A really interesting study had come out that Australian pacers, they bowled without mid-off and having 5 fielders on the onside, just like you would have for an off-spinner. This is exactly he should be drawing. And also the length and line. Length just slightly back of a length, and you line, you have to bowl within the stumps. There's an opportunity here. Clear opportunity here. Will be out inside the circle. Didn't get hold of it. There's a long on in place, and he's taken him on. Arif took that catch. Zishan was looking to make full use of the power play on that occasion. He's hitting the bottom of the bat. And also a little bit of tail coming into play as well.
You've seen that in the first innings as well. Bowlers were able to reverse the ball. And Zishan Malik perishes in the cause. Pindi lost the second wicket just at the stroke of power play. No problem here. See how it hit the bottom of the bat. Easy catch. Zishan gone for 18. 6 overs done. 42 for 1 Rawalpindi. Yasir Shah, very familiar, very experienced Yasir Shah, even in this format, 120 wickets, economy of 7.07, 4 for 7, his best bowling figures. Was playing the Hanif Mohammed Trophy this year for Abbottabad, the second tier of Pakistan domestic cricket, non-first class, I must add that, but good to see him back on the big stage. Pitching outside leg and then straightening up a bit. Should be the height as well, and then also coming down, outstretched left foot. Nice start from Yasir. He's just slided on. Yeah, my bad. That's almost middle leg and it's just gone straight. Probably missing. I reckon it would have been umpire's call, hitting leg stump, because it slid. That is Yasir Shah's strength. It always has been. Bowls wicket to wicket. And even if wicket doesn't do anything, he has that ability to bowl that slider. Got him plenty of wickets over the years. That was more close than it looked at the first instance. Yasir was sure, but the umpire was not. Yeah, the umpire can see a little part of that middle stump, so he just gets in that doubt. Look at that, how wide he goes onto this crease, using the box while bowling round the wicket. He's trying to bowl it, angle it into the left-hander from there. So he's just going very wide. Look where he is. He's almost outside the line of that side line. Important part is that back foot shouldn't collide with it. Front foot is outside. It's that wide. And also it kept low. Wasi has been prolific, but he's got a job on his hand. There you go, he gives the charge, and that is a sensational blow from Wasi. Took the experienced Yasir Shah on and came up trumps. Yet another no ball. He has been brought up as well. It'll be interesting to see, Sikandar, the point you were making. Was it for did he touch the return crease? It'll be very important and very, very crucial replay to have a look at. This is what Yasir was looking just now. Let's have a look there. Yeah, that's the front foot no ball.
free hit. Catch it is the call, but it won't be because it's a free hit and you got to only get a single. End of 7, 51 for 1. Fussy, very talented batter. We saw him score a magnificent 100 in the Pakistan Cup in a run chase situation. Point we were making last over, Yasir was bowling way wide of his crease. You see that one? That was called no ball. That was not actually the no ball, but that one was the one after. Talking about this man, he's very talented. An off spinner, rare commodity these days, the off spinners. Asking for 2, but may not get it. Good work done by long on to rush at the ball. Slightly behind Rawalpindi at the moment if you compare the two scores, but since they're chasing, they'll exactly know where to accelerate as long as they've got good wickets in hand. Abbottabad were 76 in their first 10 overs, and they managed to score another 101 run in the last 10 overs. They had wickets in hand because at the halfway stage they had only lost 1 wicket. And here at the National Bank Cricket Stadium, we know that if you get a partnership going, it's very difficult to stop the flow of runs. That is exactly what Rawalpindi needs at the moment, a good partnership. Crucial, interesting phase of the game when you have from over number 7 to 15. That is the time when you set yourself right for the last 5. Required is 10, and that's what they want to get down before they reach the 15th over. Really impressed so far with Fussy, the way he's come out and try to move the scoring immediately. Very selfless kind of approach, and also a very confident approach. Remember, he's very young. He's made good name for himself in first-class cricket, and then the list A. He's gained good use of the feet. He's shown a clear inclination that he's not going to allow the spinners to settle. 8 gone, 56 for 1. दो ओवर के बाद आधा सफर मुकम्मल हो जाएगा। 1 विकेट के गिरने से अभी भी इस पोजीशन में है कि अपने आप को वो डगर पे डाल सकते हैं। अब्दुल फसी आते ही उन्होंने छक्का लॉन्च किया था, फिर कदमों का इस्तेमाल किया है। बड़ा चैलेंज होगा यासिर शाह के तजर्बे के खिलाफ खेलना, और अपनी क्रीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस अंदाज से उन्होंने गेंद को मूव कराने की कोशिश की है। अमर कैसे देख रहे हैं इस पिच को, क्योंकि गेंद लो भी रह रही है और यासिर शाह के खिलाफ चार्ज करना बड़ा चैलेंज है नौजवान बैटर के लिए। बिल्कुल आसान नहीं है विकेट, काफ़ी रन्स स्कोर कर दिए उन्होंने। मेरे ख्याल से फील्डिंग का इसमें बड़ा अमल दखल था। काफ़ी लैप्सेस पिंडी के हमने देखे जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल बना पाई। कदमों का इस्तेमाल किया है और यासिर इनर फील्ड को अबूर करने में कामयाब है। लंबा चेज है, पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जाने फील्डर
लेकिन अब एक्शन दिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया शायद रावलपिंडी के लिए जिसमें वो अभी से अपनी रन रेट के हवाले से सोचने की कोशिश करें। पाकिस्तान कप में उनको ये धचका लगा था, लेकिन आज पहला मैच और अभी से शायद वो अपने एंकर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। बड़ी तेजी के साथ अपने बॉलर्स को रोटेट किया है। खालिद उस्मान ने 1 ओवर किया, तिश्ने की रह गई होगी, 1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे। मेरा ख्याल है न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि कप्तानी का भी जो तजुर्बा है यासिर का, वो बहुत यहाँ कारआमद साबित होगा एबटाबाद के लिए। बहुत जल्दी ज़ाहिर है गेम अवेयरनेस उनकी और एक्सपीरियंस उनका तजुर्बा उनको ये समझाने में आसानी करेगा कि इस विकेट पे किस तरह से बॉलिंग करनी है। अब्दुल फसीम जिन्होंने सीजन में अपनी बैटिंग की शुरुआत की है, उन्होंने 50 के साथ लिस्ट ए में डेब्यू किया, फिर सेंचुरी स्कोर की और नौजवान बैटर पे दारोमदार होगा कि किस अंदाज से वो खेल पाते हैं। आते ही T20 फॉर्मेट के लिए वो किस टैलेंट के बने हुए हैं, उन्होंने उसका सबूत दिया। मुश्किल बाउंड्री थी, बड़े एरिया को उन्होंने कवर किया। यासिर शाह के खिलाफ चार्ज किया था 6 लगाने के लिए। उठाकर खेलने के लिए गए हैं, फील्डर जा रहे हैं अपने दाएं जानिब, कैच करने का मौका और कैच ड्रॉप कर दिया। आकिब थे जिन्होंने बाकी सब कुछ ठीक कर लिया था, लेकिन फिंगर्स अप रख के इसको कैच करने की कोशिश की। आखिर में कहीं पे भी नहीं लगा कि वो उस पोजीशन में है कि कैच मुकम्मल कर सकेंगे, और बजाय इसके कि निगाहें गेंद पर मरकूज रखते, वो मोशन में थे, इस कैच को लेते लेते और ड्रॉप कर बैठे। टॉप एज, काफी देर बॉल हवा में रही, लेकिन आसान कैच है इस लेवल के लिए। दूसरी जानिब चार्ज किया अब्दुल फसी ने और फिर गैप तलाश करने की कोशिश की, लेकिन एक और खराब फील्डिंग का मुजाहरा। अपने बाएं जाने भाग रहे थे आरिफ, लेकिन ओवर रन कर गए इस गेंद को। डबल ब्लो कप्तान यासिर शाह के लिए, पहले कैच ड्रॉप और अब अब्दुल फसी का चौका 66 पे। देखिए कदमों का इस्तेमाल, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर उसको जज नहीं कर पाए, आगे निकल गए बॉल से और मिसफील्ड। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है फील्डिंग की अब तक जो हमने देखी है दोनों इनिंग्स में। दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी मायूस कुन मुजाहरा उन्होंने किया अब तक फील्डिंग का। अमर, आपने नौजवानों को बड़ा देखा है इस सीज़न में भी और हालिया वक्तों में, जब ये तमाम खिलाड़ी जिन प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, क्योंकि 4 कैचेस ऑलरेडी आज की शाम ड्रॉप हो चुके हैं इस एक मैच में, और उसके अलावा भी ऑब्वियसली हम जो मैचेस हो रहे हैं उनको देखेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में ये खिलाड़ी ग्रेजुएट होकर उसी एज क्रिकेट से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर फील्डिंग का म्यार, जहाँ पर अंडर 16 के मुकाबले हों या अंडर 19 के, वहाँ पर हम जानना चाहेंगे कैसा देखा। कदमों का इस्तेमाल किया दूसरी जानिब, यासिर ने गेंद हवा में, एक और कैच करने का मौका और फिर गेंद दरमियान में गिर गई। चार्ज करना चाहिए था वहां पर दाएं जानिब भागते हुए, लेकिन लगता है कि रुक गए इसको कैच करने की खातिर, इन दी एंड ना पहुंच पाए और अहमद ये कैच मुकम्मल न कर सके। एक बार फिर ये बाउंड्रीज जो हैं, जो डायमेंशन है इस वक्त ग्राउंड की, क्योंकि ज़्यादा लंबी बाउंड्रीज हैं, फील्डर्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं उसको देखना पड़ेगा कि कितने अंदर से वो थोड़ा सा बाउंड्री के स्टार्ट करें। लाइफ पे लाइफ मिल रही है दूसरी जानिब, तो कैसा देखा आपने फील्डिंग का म्यार एज क्रिकेट में? जी हाँ, थोड़ा सा काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि एज क्रिकेट में ख़ास तौर पे जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए उनमें फील्डिंग एक सबसे अहम शोबा है। फिर कदमों का इस्तेमाल किया और इस मरतबा लगता है कि गैप तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इनको गैप की क्या जरूरत। यासिर हवा में ही अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। फ्लैट जरूर थी मगर भरपूर शॉट थी 6 के लिए। बहुत अच्छा शॉट, कदमों का इस्तेमाल और मिड विकेट की जानिब उन्होंने अच्छा टाइम किया। इस बार टाइम करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त बॉल को इस विकेट पे, लेकिन कदमों के इस्तेमाल से वो विकेट के बॉल के बहुत करीब आ गए। अमर, ये रावलपिंडी का ऑलरेडी चौथा छक्का है और सिर्फ 3 छक्के थे एबटाबाद की पूरी इनिंग्स में। गो के ऐसी टीम में जिसमें फ़खर जमान मौजूद है, उनके शायाने शान नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा टोटल हासिल किया। अभी जिस नहज पे गेम जा रहा है, अभी भी 2 गेंदें बाकी आधे ओवर होने में, और इन्होंने आधे रन स्कोर नहीं किया, लेकिन 9 विकेट्स इनके पास हैं।
और एक पार्टनरशिप बन रही है, तो एक अच्छा मैच होने की तवक्को की जा सकती है यहाँ पे। क्लोज फिनिश, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक सुपर ओवर मिल चुका है पहले दिन। जी हाँ, इस इनिंग के इब्तिदा पे हमने यही बात कर रहे थे कि शायद फील्डिंग लैप्सेस की वजह से टोटल जो एबटाबाद ने कर दिया है ये मुश्किल हो जाएगा इनको हासिल करना, लेकिन दूसरी जानिब भी इसी तरह की फील्डिंग हो रही है। और उठाकर खेला, स्लॉग स्वीप किया और बड़ी बाउंड्री को नहीं खातिर मिला है। यासिर कदम जमा चुके हैं, अगेंस्ट द टर्न खेले, लेकिन शानदार कनेक्शन मिला है यासिर को अपने दूसरे छक्के के लिए। आधे ओवर मुकम्मल, आगे है स्टेज पे। जब 10 ओवर में 76 बनाए थे एबटाबाद ने, रावलपिंडी 82 पे। बहुत अच्छा शॉट, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की, टाइम किया इसको और ये मैक्सिमम हासिल किया है। बहुत अच्छा शॉट। तो हमने आपको बताया कि 76 था टोटल एबटाबाद का इस मौके पे, और ना सिर्फ ये कि टारगेट इनके सामने है, उस वक्त शायद इनके जहन में 200 चल रहा होगा, जहां तक नहीं पहुंच पाया था एबटाबाद। विकेट्स इनकी सिर्फ एक गिरी है, 9 इनके पास मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अब ये यासिर क्लियरली लग रहा है कि अपने आप को सेटल कर चुके हैं। जिस अंदाज से उन्होंने शॉट्स लगाए, बड़ी बाउंड्री है जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, इसके बावजूद के यहाँ पर बड़ा सफ़र तय करना था, लेकिन दोनों छक्के मारे हैं, दोनों फ्लैट लगाए हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि ज़्यादा कुव्वत नहीं लगाई, लेकिन प्लेसमेंट और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। दूसरी जानिब अब्दुल फसी जो कि आते ही छक्का लॉन्च कर चुके हैं। यासिर शाह ऑन द ट्रॉट अपना तीसरा ओवर करने के लिए जाएंगे, और सीधा खेल दिया है, फील्डर को पहुंचने का मौका मिलेगा, दूसरे रन का चांस नहीं है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी मेरे ख्याल से इस वक्त एबटाबाद के बॉलर्स को तंग कर रहा है। हालांकि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह की एडजस्टमेंट और जिस रफ्तार से एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें ये सारे एक्सक्यूजेस 5 चौके 5 छक्के लगाए हैं रावलपिंडी ने ऑलरेडी, सिर्फ 3 छक्के थे एबटाबाद की इनिंग्स में, और एक मरतबा फिर उठाकर खेला है। अब फील्डर के लिए एक और मौका है, गेंद के नीचे आए और मुकम्मल कर लिया। फखर जमान कहां छोड़ने वाले थे इस मौके को, यासिर सेकंड टाइम लकी साबित ना हो सके, और यासिर शाह ने यासिर खान को वापस भेजा। फाइनली इनिंग्स का खात्मा किया राइट हैंडर बैटर की, बड़े क्रूशल जंक्चर पे विकेट हासिल हुई है। बिलाखिर एक कामयाबी हासिल करने में कामयाब। अच्छी बॉल यासिर की, स्वीप पाड़ने की कोशिश की थी, स्लॉक स्वीप, लेकिन इस बार बॉल फखर जमान के पास गई, जो कि एक बहुत ही मुस्तनद अच्छे फील्डर माने जाते हैं, और बासानी टेक्निक देखिए ये यंगस्टर्स के लिए कितनी तेजी से बॉल के नीचे आए, उनको वक्त मिल गया कि इस कैच को आसान बना सकें। यासिर खान अपना इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करके गए, ऑलमोस्ट 145 की स्ट्राइक रेट के साथ 39 बनाए, 83 पे 2। हैदर अली जो कि नेक्स्ट बिग थिंग लगते थे अब से 3 साल पहले तक, लेकिन अभी भी इनके पास दुनिया जहां का वक्त मौजूद है अपनी फॉर्म को रीगेन करने के लिए। टैलेंट बेशुमार है, लेकिन उसको किस अंदाज से कन्वर्ट करते हैं ये नंबर्स में, ये पूरा सीजन इनके सामने होगा, जिसमें इनको अगर तो ये अगले राउंड तक पहुंचते हैं तो इसके बाद मुसलसल मैचेस खेलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन ये इब्तिदाई स्टेज है जहां पर उनको अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इस जवां उम्री में ऑलरेडी 100 से ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं, 134 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 13 50s इन्होंने बनाई हैं, और बात की बात छोड़िए, आज इनको इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर अभी भी चांस है गेम में रहने का, जोरदार अपील और आउट करार दिया यासिर शाह और हैट्रिक। कप्तान मुसलसल तीसरे ओवर के लिए मौजूद थे और उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, प्लम इन फ्रंट ऑफ स्टंप्स पाए गए और यासिर शाह ऑन अ रोल। शानदार बॉलिंग, नए बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा तेज बॉल किया, बिल्कुल विकेटों के सामने कदमों को इस्तेमाल नहीं कर पाए, बिल्कुल पैर जो है वो क्रीज में जमे रह गए। बहुत ही शानदार बॉलिंग यासिर की, नए बैट्समैन को उन्होंने, ये देखिए थोड़ा सा तेज एयर में बॉल, पिचों के सीधा रहा और बिल्कुल विकेटों के सामने, कोई डाउट नहीं इसमें, और अंपायर फारूक अली खान ने फौरन अपनी उंगली उठाई।
ऑन हैट्रिक है यासिर, हैदर का हार्ट ब्रेक, मुश्किलात का शिकार रावलपिंडी 83 पे 3। कप्तान को गेंद करने के लिए आएंगे, जहां पर टेल अप है। अब एबटाबाद की उनके कप्तान ऑन हैट्रिक हैं, जबकि अपनी डगर पे चलते चलते अचानक से इन 2 विकेट्स के साथ उतरती हुई दिख रही है रावलपिंडी की टीम। उमर अमीन के पास भी 1.5 दहाई का तजर्बा मौजूद है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, ईयर इन ईयर आउट। लेकिन एक बड़ा ये मीनिंगफुल सीजन है जहां पर एक मरतबा फिर पुराने सिस्टम में गई है क्रिकेट, जहां पर उनको रावलपिंडी की अपनी होम टीम को लीड करने का मौका मिला है। 140 मैचेस, 3000 से ज्यादा रन्स बना रखे हैं। और सबसे पहले अहम काम कि हैट्रिक डिलीवरी को वो नेगोशिएट करें, स्लिप और लेग स्लिप के साथ शुरुआत करें। यासिर ऑन हैट्रिक, बच निकले उमर अमीन, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा यहां से कम बैक करना अब रावलपिंडी के लिए, क्योंकि सिचुएशन जैसी भी हो नए बैट्समैन को आकर अपना वक्त गुजारना पड़ेगा अहमद कदम जमाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त। अशद और 2 विकेटें इस ओवर में हासिल कर चुके हैं यासिर, बड़ा अहम ओवर, यही तजुर्बेकार बॉलर का काम है। डाउन द लेग साइड, लेकिन ना रन्स को माइंड करेंगे ना ही वो इस एक्स्ट्रा को। बैक टू बैक विकेट्स हासिल किए हैं यासिर शाह ने। सबसे पहले यासिर खान को वापस भेजने में कामयाब रहे। एक्शन से भरपूर इनके ओवर पहले भी थे, पहले ओवर में भी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील थी, जो कि गेंद बज़ाहिर लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी खोई हुई लाइन को बहाल किया। बड़े वाइड ऑफ फ्रीज गेंद करने के लिए आते हैं लेफ्ट हैंडर को, और दूर ही रखते हैं बैटर से कि वो स्ट्रोक खेलने के लिए ना जा पाए। डबल विकेट ओवर मुकम्मल, गेम चेंजिंग स्पेल था यासिर शाह का। उनका एक ओवर अभी भी बाकी, 86 पे 3। यासिर शाह की इस ओवर में 2 विकेट्स, ये पहली स्वीप मारने गए थे, स्लॉक स्वीप कनेक्ट नहीं कर सके, फखर जमान के पास एक आसान कैच, और ये दूसरा सीधा बॉल थोड़ा सा तेज किया, और हैदर अली पहली बॉल पे प्लम इन फ्रंट, बहुत शानदार बॉलिंग। दो कदम आगे आकर खेलने के लिए गए थे एतजाज के खिलाफ, बच निकले। दूसरी जानिब उमर अमीन जो कि लीड कर रहे हैं रावलपिंडी की टीम को, कामरान गुलाम का कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन इनके बड़े तेजी के साथ गेंद आके बाएं हाथ पे लगी थी और अच्छी पोजीशन में नहीं लग रहे थे उस वक्त। लेकिन कम से कम ये रावलपिंडी के लिए अच्छी खबर है कि वो बैटिंग करने के लिए आए हैं और अपने नंबर पे ही आए हैं। लेकिन किस अंदाज से वो खेलेंगे, अब यहाँ से आउटसाइड चांस लेना पड़ेगा, और उसके लिए शायद यही हो सकता है कि कप्तान डीप लेके जाएं गेम को और फंसी चांस लेने की कोशिश करें, जो कि कर रहे हैं। उमर अमीन आमतौर पे बहुत ही समझदारी से इनिंग्स अपनी बिल्ड करते हैं। हैदर अली के बारे में जैसे आपने कहा, टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन गेम अवेयरनेस और कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के नीचे आए, उठाया और फील्डर को आने का मौका मिल गया। अहमद अपने दाएं जानिब आए, इस मर्तबा निगाहें जमाए रखी, खैमा जन हुए कैच करने की खातिर और अपने महफूज हाथों में मुंतकिल किया। तो पिछली 6 गेंदों के स्पेल में पटरी से ऐसी उतरी है रावलपिंडी की टीम के, मुश्किल ही लगती है कि एक्सप्रेस दोबारा अपनी टक्कर पे गामजन हो सके। एक यही फर्क अब तक सुबह से नजर आ रहा था, फील्डिंग। 9 गेंदों पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि अब एबटाबाद ने अपने कैचेस पकड़ने शुरू कर दिए। दाएं जानिब गए थे अहमद, जो कि इस मर्तबा जज करने में कोई गलती नहीं कर गए। शुरुआत अच्छी की थी अब्दुल फसी ने, लेकिन लंबी इनिंग्स ना खेल पाए। 19 रन बनाकर आउट। रावलपिंडी मुश्किलात के भवन में 88 पे 4। मुबस्सिर खान नए आने वाले खिलाड़ी, ये भी काफी
कार प्लेयर है। उमर अमीन का अब ये भी काम होगा, न सिर्फ इनिंग को बिल्ड करना है उन्होंने, लेकिन अपने पार्टनर्स को भी ये समझाना है कि किस तरह से अब उनको मज़ीद ये बकिया ओवर खेलने हैं, क्योंकि अगर मज़ीद कोई विकेट गिरती है तो ये बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगी टीम। और ये ख़ास तौर पे मुबस्सिर और उमर की ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही अहम इस वक्त इस सिचुएशन में है। 32 मैचेस खेले हैं नौजवान मुबस्सिर ने, और यहाँ पर हैप्पी हैंडिंग ग्राउंड है उनके लिए। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे वो सेंचुरी बना चुके हैं। यहीं पे खेलते हुए एक यादगार इनिंग्स खेली थी उन्होंने, और अब शायद वो वक्त आन पहुंचा हो कि ये गेम को पूरा खेलने की कोशिश करें, क्योंकि जो जख्म इनको लगा था पाकिस्तान कप में नेट रन रेट के हवाले से, वो अब इनके जहन में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। अब 6 विकेट्स आगे रह गए हैं, 12 ओवर मुकम्मल होने के लिए जा रहे हैं, और शायद ये चार्ज ना कर सके हर गेंद पे। अच्छी टच में लग रहे थे अब्दुल फसी, लेकिन मुश्किल था इस पिच पर इस अंदाज के शॉट्स खेल। गेम अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा था पहले, वो यही है कि आप जब बाहर बैठे हुए आप मैच को देख रहे हैं और पहली इनिंग्स में आप फील्डिंग कर चुके हैं, तो ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि ये विकेट ऐसी नहीं है कि जिसपे बहुत ज़्यादा शॉट्स मारे जाएं। कोई दूसरा प्लान भी आपको बनाना चाहिए और आपको आना चाहिए इस तरह से खेलना कि किस तरह से जो है वो बगैर चौकों और छक्के मारे हुए रन्स जो हैं वो या स्कोरबोर्ड जो है उसको मूव किया जाए। 12 ओवर इस इस्लाम में मुकम्मल, रावलपिंडी 90 पे 4। So it's the start of the 13th over, and 3 quick wickets have fallen. 91 for 4 at the moment. Rawalpindi in a spot of bother with the captain and Mubassir, the 2 experienced guys in. They need a partnership. Yasir Shah in this spell has been pretty destructive. He's bowling his last over, Sikandar. The experience that he has brought in this team is definitely helping the side, taking wickets and creating pressure on the opposition. I still remember, if you go back in time, it was his playing days in the national side test match. Last ball of his spell against West Indies, got that wicket when Pakistan needed 1 to win the match. That's the kind of experience he has. Till the last ball, last breath. Have you noticed something today about Yasir Shah? I hope I'll ask my director producer to show us how wide he's going on this crease and trying to bowl to the left hand especially. He's almost touching that sideline, almost. Yes, it's pretty evident. He's using the angle. He's bowling from the end, which is the pavilion end, and the left-hander, while the left-hander is facing him, the boundary on his leg side with the spin is too big. There we see again Yasir going way outside, creating a big angle from outside the crease. If you can see the replay, the bounce isn't just there. It's creating an angle from going really very wide. His front foot nearly touching the line on this occasion. He's asking the batter to take a risk towards the biggest boundary. That would be wide. In his first over, when he was bowling around the wicket, his front foot was outside the line. It was that wide. And what's happening is that you're so right about it. With that angle, you're forcing the batter to play on that bigger side. Would still like those fielders on the onside to be a little on the 75 marker rather than touching the rope. That's a huge boundary. It's not Fakhr Zaman. You see in the air and just lands on the second bounce. In fact, goes through. 100 up with this stroke. Another 4, 13 overs gone. The important thing is, on such a big boundary, the fielders must not forget that cutting angles is the way to block
the boundaries. And this one, because he was standing right at the edge of the boundary line, he could not cut this angle. Umar Amin must have timed this well. It's a huge boundary, and the fielder tried his best, was nowhere close to the ball. 101 for 4, end of 13. Still that creeping required run rate is getting to them, 77 or 42. It's gettable, yes, but who's going to take that initiative? Back-to-back wickets have set them back. Umar is still out there, the captain. Mubassir can speed it up, but he's not known to be the one who would clear the boundary. Strangely, he's let one go outside the off stump, where the boundary is shorter. And something the batters should communicate is definitely big pockets, big boundary, fielders on the boundary line. So twos are always there. Twos are always an option. And if they can get one boundary and run a couple of twos, this 11 is not far-fetched. It's just about having the will to do it and communicating a plan, how you can execute and still be there at the wicket. Again, the two call. The two call, only there, just endorses the fact what you just spoke about. Bigger side of the boundary is such an easy two there if the fielders are so back to the rope. Even if you play straight to the fielder but not punch it fully, there's a chance for two like this one. And imagine playing in the gap. It's a confirmed two. And good timing will take it to the boundary we saw in the previous over as well. So there's a pretty much chance it's doable, but it depends how far this experienced player can go. We'll just show you the onside field. Well, not now because there's a left-hander on strike. We wanted to see the onside for the right-hander, which is the bigger side of the ground. But what I was trying to say was that there was a good move in the previous delivery. That fielder at deep mid-wicket is not at the boundary. He's standing a little in. Few changes being brought in the field by Yasir Shah. He's moving one more fielder to the offside inside the circle, probably point. One thing the batters can do is probably take a step or two towards the bowler, and then he will definitely drag the length down towards the longer boundary. Again, we see it was outside the off stump. So the thing is that if Umar Amin tries to just time it, like we saw one stroke from Fakhar Zaman where he just timed one through point for 4, and there is a big gap between third man and point. This ball could have been placed there, but I guess Umar Amin was looking for the shorter boundary. That's a good ball. A very good ball. Not much you can do about it as a batter. That's the one outside the off stump. Only point is that this one again is gone under the bat. You see, you can easily chop it onto the stumps. What happened against Zaman Khan in the first innings. That's the reason why he opted to bowl first, to see what kind of a pitch it was. So if he doesn't know now how much the bounce is there, for him to attempt this stroke is showing that he's not fully aware of what's happening on the pitch. This will be 4. That's gone fine. Edge of the full toss, a much required boundary. 14 gone, 109 for 4. Not really sure what the bowler is trying to do here. Now this is a freebie. There's no way third can actually get near to it.
Wish we could show you what field he's bowling at. He's been a little wayward. Sometimes he's bowling across the right-hander. Sometimes he's bowling in the middle leg region. Making a little bit of a tricky situation for the fielding captain for him. 109 for 4. Since they are having the upper hand at the moment, Abbottabad, they're ready to experiment a few things. But trust me, T20, 69 of 36, it's a matter of 2 overs where you suddenly start feeling the pressure as a bowling unit. Down on one knee, where it's a big boundary, couple of bounces. Yes, Khalid Usman will do the intelligent bit. He'll bowl within the stumps towards the legs of the left-hander, asking him to go over the big boundary. And the chances of clearing depend on a full-blooded connection, a well-timed stroke. Again, well bowled, pace off this time. And this might be the end of Mubassir Khan. He did not run in a straight line. It would be interesting to see the replay. The direct hits always have something in store for the watchers. Well, if you've watched international cricket, you should know that Yasir Shah is a live wire, and he's still showing it. Aiming at one stump from square of the wicket. He's a very, very good fielder. He's got a quick pick up and release, and direct hits are always interesting. Look at that, in one motion, in good position, release is fast and quick. This should be very, very close. Bat is in the air, Mubassir is struggling there. Yes, he's fallen short at least by a couple of inches. Great fielding that, great positioning, collection and throwing in one go. That is brilliant from Yasir Shah. And this is now the second occasion in the day where the batters have not fully stretched. They haven't even dived to make the ground, and both of them have played good cricket. Kamran Ghulam being the first person, and now Mubassir Khan, both recently coming off the Shaheen's tour. And this is pretty basic stuff. You're running a tight single, you need to drag your bat. Mubassir run out for 9 of 9. Again, catch it called, but it's wide of the field, LV4. That's good placement. Some power and more placement from Umar Amin on that occasion. This bat working, got a pretty meaty stroke this. It's a big boundary there on the mid-wicket. But this time, the difference was the gap. Umar Amin needs a few blows to get himself and his team both going. Great head position while execution of the stroke. And again, Khalid Usman bowls one towards the legs. Another dot ball. Coming back to that run out, you were talking about it, how you need to protect and save your wicket, dive, make sure that you do everything possible to make ground. That's beaten, shot fine, that'll be a boundary again. That's a bad ball, it was fast into the pads and allowed Umar Amin to just get some bat onto it. Talking about 60 required of 31, and as you just said before, 2 big overs can just turn the game on its head, and now we have seen 2 boundaries. So Umar Amin's wicket is the key, and he needs to be sensible. He's got 2 boundaries now. Better to take a single and give himself more chance. And tried something different, wanted to go big, but luckily just 1 for him. So it's 119 for 5 at the end of 15.
Yeah, coming back to that run out from Yasir Shah, that was a very, very good pick up and throw. Point being, look at him, he's running hard, yes, but he's not. Look, first, he's going wide to avoid the throw. That's one mistake. Two, not diving in to make ground. Now, you've added extra couple of inches into getting into that safe zone. Also, to understand who you played the ball at. What kind of a fielder? Is he right arm, left arm? What's his throwing arm? How good is he? Is it a bullet arm? Is he lazy? Can you push him? Yes, so many factors, and rightly said by you, Sikandar, to consider by a batter who is that experienced, has played Pakistan at different levels. You expect them to know all this stuff. And when you, in such a crunch situation, your game awareness counts a lot. So this is one of the reasons on your screen now. The regular fall of wickets is the reason why the state of affairs for Rawalpindi hasn't been smooth, is because they've kept losing wickets on regular intervals. Good ball. It's fast, quick, and too full to get underneath it. Just another look at that replay of that run out. I think in this, Mubassir is at fault because he's created more trouble for himself. Look at him. He's coming straight and now he goes diagonal. Why would you do that? Sikandar is wearing every piece of this equipment on himself. Why is he afraid? Why is he running over there? He's more concerned about the ball hitting them rather than hitting the stumps. He's added an extra step to his finishing line. And he missed it by 2 inches. Now the desperation is creeping in. Oh, direct hit would have been a problem. Surely. There are two things that as a batter you can do on a pitch like this, where the ball is just skidding with low bounce, is just take your eye line trajectory down a bit. By opening your stance, by increasing the distance between your feet, your eye level goes down. But so far, I haven't seen anybody do that. Again, this could have been run out and by a lot of distance this time. He wouldn't have even been in the picture. Again, then there's another problem. When he played that shot as Umar Amin's call, now he's still searching for the ball. The first 4-5 steps of his run, Raza, he's not running full speed. He should know he's running at the danger end. And that is where you need to trust your partner's call. If Umar Amin is running, then he should not be looking for the ball. He should be trusting his partner. And that is where experience matters a lot. Knowing what is happening, the state of the game. And especially when you don't know where the ball is, trust your partner. Look at this. He's played that. He doesn't know where the ball is gone. But he's still not trusting. He's going slow, looking back, and then he rushes through. Oh, I'm not going to make it. Once again, quick run there. Singles won't do. I think they need to regroup and regather as a batting pair and understand that this is gettable. Sikandar, if we can just see the field on our screens, on the offside for Umar Amin, there's mid-off up in the circle, cover is up, point is up. So definitely the length will be short. There is no way the bowler will gamble by bowling full. But still Umar Amin hasn't lined it up for the shorter boundary. He hasn't aimed over there. He's just punching off the back foot. The run rate required is close to 13 now, and they need to play their shots. They need to be preempting, and that also in a good sense, where they already know what's coming. This one has been cracked, but to the fielder. You know, to their liking over here, it's a left-right combination, so they don't have to sit and wait for that shorter boundary on the onside. Umar Amin can target when the bowlers are bowling from the University Road end, whereas Raza can target when it's being bowled from this end. Have a look at that. Mid-off is up in the circle. You've got to understand what the bowler is trying to bowl. This is the shorter side to his onside, Umar Amin. These two balls need to go big. Well, thanks to the bowler. Balls are wide.
and he is down. I hope everything is okay with Fayaz. He's just stretching one of his legs, the right one. Straight to the field, but the misfield allows them to take a single where Umar Amin will keep strike. 125 for 5, 4 overs to go. चार ओवर्स में 53 रन चाहिए रावलपिंडी को और अगला मैच फैसलाबाद और बहावलपुर के दरमियान खेला जाएगा यहाँ नेशनल बैंक स्टेडियम में। वकास मकसूद आ गए हैं, फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फैसलाबाद रीजन बहावलपुर रीजन, एक और अच्छा मैच होने की तवक्को है यहाँ। अलबत्ता ये मैच खत्म नहीं हुआ। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में 4 ओवर में 50 रन बनते देखे गए हैं काफी दफा, लेकिन यहां नहीं बन पाएंगे क्योंकि उमर अमीन आउट हो गए हैं। कोशिश करते रहे लेकिन बॉल थोड़ी सी नीचे रही और रावलपिंडी के कप्तान की वापसी के साथ ही उनकी उम्मीदें दम तोड़ते हुए खुशामदीद अली यूनुस। आदिल ने आज शुरू से ही बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे लाइन और अच्छे एरिया में बॉल किया है, अच्छी समझ से बॉल किया है। यहाँ पे कुछ गलती नहीं करनी है क्योंकि ये बड़ी विकेट है, सेफ है। उमर अमीन को जाना होगा, चलते जाना होगा ड्रेसिंग रूम की जानिब। ये बड़ी विकेट हासिल की, लेंथ की है और जिसने भी दूर बॉल किया है वो बॉल लो भी रहा है और थोड़ा फंसा भी है। एक बार फिर बॉल लो रहा है और बीच में से ही शॉट ऑन साइड पे खेलने चले गए, लेकिन दाद देनी होगी आदिल को। पहले ओवर से ही बहुत शानदार बॉलिंग की है इन्होंने। उमर अमीन वापस जाएंगे 25 रन बनाकर, 125 पर 6 रावलपिंडी। तिरपन रन है रावलपिंडी को चाहिए 23 बॉलों पे। प्रेशर है लेकिन उस प्रेशर और मुश्किल सिचुएशन में ही फैसल एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी है इनके लिए कि अपनी बैटिंग से कुछ जादू दिखाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की तलाश है और जहादात की बैटिंग के चर्चे सुने हैं, इससे बड़ा मौका उन्हें मिल नहीं सकता अपनी सलाहियत दिखाने का रावलपिंडी टीम के लिए। दूर दूर से खेल गए, बल्ले और गेंद का मिलाप नहीं हुआ। आखिरी विकेट जो गिरी अली, देखिएगा जहां बॉल पिच हुआ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पफ ऑफ डस्ट भी निकला। दूर वाला बॉल मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिस चीज का आपने निशानदेही की, और इसी वजह से वो जो फंसता हुआ बॉल नजर आया हमें, वो शायद इन्हीं वजह से। ये एरिया ऐसा है कि जो भी बॉलर जिसने दूर बॉल किया है उसने मुश्किलात डाली हैं बैटर के लिए, और विद इन द स्टंप्स अगर होंगे तो आप विकेट हासिल करेंगे। दो की कॉल है लेकिन स्लिप हो गए
रजा स्ट्राइकर एंड पर, कुछ भी सही नहीं जा रहा पिंडी के लिए। टॉस उन्होंने जरूर जीता, एक जजमेंट कॉल थी। यहाँ पे उमर अमीन ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि लग रहा है कि शायद सही फैसला नहीं था, जिस तरह विकेट खेली है बाद में। या मुझे लगा था टॉस पे कि अच्छा फैसला है बॉलिंग करने का, लेकिन दाद देनी होगी फखर को और एबटाबाद को। शायद रावलपिंडी ने कहीं 20 से 25 रन ज्यादा करवा दिए, जिसकी वजह से अब बहुत पीछे रह गए गेम में। रजा से निकालने में कामयाब हुए और केन फील्डर को छोड़ते हुए निकल गई 4 रन। बाउंड्री की बहुत शदीद जरूरत थी रावलपिंडी को, और विकेट कीपर बैटर रजा ने थोड़ी सी उन्हें विड्थ मिली और उसका फायदा उठाया। या लेंथ, मेरे लिए विड्थ से ज्यादा लेंथ मसला है। आदिल को जितने भी रन हुए हैं या फास्ट बॉलर्स को जितने भी रन हुए हैं, वो आगे बॉल पड़े हुए पे हुए हैं। ये भी बॉल मुंह में था, इसे सिर्फ गाइड किया थर्ड की जानिब, थर्ड और पॉइंट के दरमियान में इनफैक्ट 4 रन हासिल किए। तो आप थोड़ा दूर बॉल कीजिए, यही सही तरीका है, क्योंकि ये आसानी से इस लेंथ पे शॉट्स लग रहे हैं। जब विकेट से आपको इतनी मदद मिल रही है तो फिर आपको यॉर्कर ढूंढने की जरूरत नहीं। इनटू द विकेट, और इस मरतबा फिर गैप में खेल दिया है और एक और बाउंड्री मिल जाएगी। बैक टू बैक बाउंड्रीज। इस मरतबा लेंथ खिंची हुई थी, लेकिन अच्छा शॉट बनाया और गैप हासिल किया रजा ने। अब 44 रन रावलपिंडी के लिए। चेज ऑन है, फाइट ऑन है अभी भी, क्योंकि एक बार फिर खराब बॉलिंग, फिर भी अभी आगे है। मेरे नजदीक की बॉल अभी भी आगे है, क्योंकि इससे भी थोड़ा दूर करना होगा। इस लेंथ पे स्विंग करने का आसानी से मौका मिल रहा है बैटर को। कुछ उमर अमीन को हिकमत अमली थी विद इन द विकेट्स, और 6 से 8 मीटर के दरमियान जो लेंथ है वहां पे, यही इसी चीज की बात। और अपील करते हुए एंगल शायद थोड़ा सा बॉल को नीचे ले जाता लेग स्टंप से बाहर, लेकिन करेक्शन की अच्छी अपनी लाइन और लेंथ दोनों में आदिल ने। और जल्दी की है, 2 चौके ही लगे हैं अभी। रियलाइज हो गया है कि दूर बॉल करेंगे तभी आप सरवाइव कर सकेंगे, और ये वो एग्जैक्टली वही लेंथ और सिमिलर डिलीवरी थी जिसपे उमर अमीन की विकेट हासिल की थी, लेकिन ये राइट हैंडर थे। काफी करीबी मामला है फैसल, ये अच्छा शाउट था। ये अंपायर ने बहुत जल्दी सर हिला दिया, लेकिन ये अच्छा शाउट हो सकता था। अगर हम थोड़ा स्लो एंगल में देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं फैसल ये बॉल लेग स्टंप को लग रहा था। देखना होगा कि कहां से बॉल की आदिल ने, क्योंकि जनरली वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे हैं, तो उससे जो एंगल क्रिएट होगा वो उसका शायद बेनिफिट दिया होगा। ये देखिए काफी बाहर से उन्होंने बॉल किया, और ये शायद मार्जिनल कॉल है, लेकिन बेनिफिट ऑफ द डाउट टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी में बैटर को ही मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा शफल करके बहुत ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा कि मार्जिनल कॉल थी, और बेनिफिट हमेशा बैटर को ही जाना चाहिए। इस मर्तबा हवा में बॉल, लेकिन गैप में खालिद उस्मान आ रहे थे। थोड़े से देर के लिए ऐसा लगा कि शायद बिल्कुल उनके हाथ में चली जाएगी, लेकिन एक और जबरदस्त शॉट रजा की। उन्हें ये चांस लेना ही है, जिस तरह मैच टाइट हो गया है। अब अंपायर का फैसला देखना होगा कि क्या ये चौका था या छक्का था। ऐसा लगा कि खालिद उस्मान के सर के ऊपर से बॉल क्या है, लेकिन हतमी फैसला जो होगा वो अंपायर करेंगे। देखना होगा, काफी आगे आ गए थे खालिद उस्मान। 4 रन होंगे, क्योंकि बॉल डेफिनेटली स्कर्टिंग से पहले बाउंस किया है, और वो जो बड़ी बाउंड्री की वजह से फील्डर्स आगे आते हैं 2 रोकने के लिए, उस चीज का कभी कभी आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया अली, क्योंकि खालिद अंदर थे और यहाँ पे 2 रोकने के लिए आपको अंदर रहना ही होगा, जितनी बड़ी ये फील्ड है। 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं रजा के लिए। इस मतलब इनटू द पिच, अच्छा देखा, और यहाँ पे फील्डर गेंद को देख नहीं सके। कामरान गुलाम जो कि बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्टैंड्स हैं, और उसके बैकग्राउंड में शायद ऐसा लगा कि वो गेंद को पिक नहीं कर सके, और ऑलमोस्ट ये गेंद जा लगी उन्हें खुद, जबकि उनकी पीठ थी गेंद की तरफ। जनरली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे फील्डर हैं कामरान गुलाम। यहाँ पे डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि बॉल सीधा ही फ्लैट बॉल आ रहा था उनकी तरफ, और शायद यही सिग्नल भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बचाना दोबारा किया है, क्योंकि बिल्कुल जब आप लाइट की एक लाइन में बॉल आ जाए तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, आपको नहीं अंदाजा होता कि बॉल कहां जा रहा है। 4 रन का इशारा शोजब रजा की जानिब। ये जो रिएक्शन है, ये ऐसा लगता है कि बॉल बल्ले से उन्हें नजर आया,
इसीलिए वो लाइन में थे, और आखिर में जब कहीं नजदीक आया तो वो उनकी नजरों से ओझल हुआ, इसीलिए वो अपने आप को बचा रहे थे। इसका मतलब ये था कि उन्हें बॉल दिखा कि उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन आखिर तक बॉल देख नहीं सके। ऐसा हो जाता है बैकग्राउंड की वजह से समटाइम्स। और रजा क्या बारी खेल रहे हैं, रावलपिंडी की डूबती हुई नाव को किनारे लगाने की कोशिश, और एक और बाउंड्री। क्या जबरदस्त इंप्रोवाइजेशन है। या फाइट ऑन है, ये अच्छी इंप्रोवाइजेशन, जैसे आपने कहा प्रेडिक्टेबल हो गए थे थोड़ा अपनी लाइन और लेंथ को लेके। और आजकल के मॉडर्न डे बैटर्स जिनके पास बहुत वैरायटी है शॉट्स खेलने की, डिफरेंट एरियाज में खेलना पसंद करते हैं, जो कि यूजुअल हम क्रिकेट में नहीं देखते हैं। इनफैक्ट अब तो देखते हैं, पहले नहीं देखते थे। ये अच्छी इनिंग है, 21 रन की 9 बॉलों पे रजा की जानिब से, और इन्हीं की वजह से जो होप है रावलपिंडी की वो अलाइव है। 3 चौके इस ओवर में आ चुके हैं। बिल्कुल, और 2 चौके पिछले ओवर में, तो ये 5 चौके हुए, और जो चेज है जो डगमगा रही थी वो वापस टारगेट पे आते हुए टू द पिच। इस मरतबा एक ही रन मिलेगा। एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं रजा, और अब इनके ग्लव वर्क भी बहुत ही शानदार था। याद रहे कि रावलपिंडी में जमाल अनवर भी हैं विकेट कीपर, और उमैर मसूद भी। उनके होते हुए इस नौजवान का खेलना और इस तरह परफॉर्म करना, अच्छे कंपटीशन को बीट करके ये पहुंचे हैं यहाँ तक। पाकिस्तान कप में भी हमने इनको देखा था बैटिंग करते हुए, और ये जिस तरीके से चौके हासिल किए हैं, शानदार बैटिंग है। ये लेंथ को बहुत अच्छे तरीके से फरका, थोड़ा किस्मत ने भी साथ दिया है, और ये बेस्ट शॉट रहा। लेग स्टंप के बाहर गिरा हुआ बॉल सिर्फ बल्ला ही लगाना था, 4 रन हासिल किए। तो एक काउंटर अटैक है ये रावलपिंडी की जानिब से, 2 यंग उभरते हुए नौजवान बैटर्स। जहांदाद को भी हौसला मिलेगा, जाहिर है उनका डेब्यू मैच है, उनकी रेपुटेशन है एज ए बिग हिटर। इनटू द पिच, थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करेंगे दूसरे रन की, लेकिन हो नहीं पाएगा। अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर, अच्छा बैकअप किया। थोड़ा सा अली यंगस्टर्स को ये देखना और समझना होगा, पूरा दिन इस विकेट पे मैच हुआ, कि कौन से आपके स्कोरिंग एरियाज हैं इस विकेट पे। डाउन द ग्राउंड हिट लगाना यहाँ आसान नहीं। यार इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फखर जमान की इनिंग है। ऑल्दो वो एक डैशर कहलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने पिच को अच्छा एसेस किया, अच्छी पेस से अपनी इनिंग को बढ़ाया, और इसी वजह से इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एबटाबाद फखर जमान की उस इनिंग की वजह से। क्योंकि एक टाइम आया था जहां पे थोड़ा फंसे जरूर थे, लेकिन अपने इरादे को मजबूत रखा कि पूरा जाना है, एंड तक जाना है, और वो गए और अपनी टीम को एक अच्छा टोटल दिया। बिल्कुल, 13 गेंदों पर 29 रन, ये है इक्वेशन। बाउंड्री आ जाए तो मैच और दिलचस्प हो जाए, नहीं होगा। लेकिन 2 रन के लिए तेजी से जा रहे हैं, सर्कल में कोई फील्डर नहीं ऑन साइड पर, और रजा ने 2 रन बना लिए, और 1 रन शॉट, शायद अंपायर की तरफ से इशारा। दोबारा डबल चेक करेंगे। जी हाँ, शोजब रजा ने देखा, और ये जहांदाद थे जिन्होंने शॉर्ट रन लिया, इसलिए 1 ही रन मिलेगा पिंडी को 150 18 ओवर्स के बाद। फखर जमान काफी इन्वॉल्व लग रहे हैं यासिर शाह के साथ साथ। आसानी होती है कप्तान के लिए अगर फखर जमान जैसा सीनियर मेंबर टीम के अंदर मौजूद हो, क्योंकि एक अच्छा मशवरा आपका मैच की को बदल सकता है। यहाँ पे शोधर रजा फिर भी रिकन्फर्म करते हुए थर्ड अंपायर से, क्योंकि एक रन फैसले यहाँ मैटर करता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो आपने तजर्बे की बात की, यासिर शाह खुद भी बहुत तजर्बेकार हैं, और फिर फखर जमान, तो ये इस वक्त इन प्रेशर सिचुएशंस में इन यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए ये एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। और अभी भी जब ओवर के स्टार्ट में हमने देखा कि ऑल द वे फखर आदिल के पास आए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ओवर होने वाला है, ये पेनल्टीमेट ओवर है, 19वां ओवर कहलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है चेज में, स्पेशली 28 रन दरकार है रावलपिंडी को ये मैच जीतने के लिए, और अगर ये दोनों खड़े रहते हैं तो ये मुकम्मल कर ही लेंगे ये स्कोर, जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी वक्त ले रहे हैं शोतब रजा, क्योंकि अभी हम जैसे जिक्र कर रहे हैं कि एक रन मैटर है। हम नहीं चाहेंगे कि वो एक गलत कॉल मैच का डिसीजन पे इंपैक्ट डाले। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट में पहले ही दिन हम एक सुपर ओवर आज देख चुके हैं। मुल्तान और सियालकोट का मैच सुपर ओवर तक गया। यहां पे तो रन सही लगा है, लेकिन दूसरे एंड पे
क्योंकि ये रजा थे। क्या मेक श्योर कर रहे हैं कि दोनों एंड अच्छे तरीके से चेक किए जाएं, क्योंकि दूसरा एंड था जहां पे शोजब रजा अंपायर थे। ये एंगल शायद आपको ये रन तो मुकम्मल हो गया है यहां पर, और मेरा ख्याल है कि शायद शोजब रजा अपना फैसला दुरुस्त करें। अब ये मसला होगा कि स्ट्राइक कौन लेगा, क्योंकि अगर ये 2 रन करार दिए गए तो बैटर्स को भी एंड चेंज करना पड़ेगा। काफी ड्रामा है, लेकिन अभी तक अंपायर्स ने अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है। क्या बात है, जो आवाज आई बल्ले से उसके बाद ये गेंद ग्राउंड में रुकने वाली नहीं थी। जबरदस्त आगाज 19वें ओवर का जहांदाद खान। या पाकिस्तान कप में भी बहुत शानदार एक मैच जितवाया था इसी तरीके से लॉन्ग हिटिंग करके, और ये भी इनके जोन में बॉल है। ऐसा लग रहा है कि आदिल थोड़े एक्साइटेड हो गए, थोड़ा आगे बॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट की नहीं, थोड़ा अकल की जरूरत है, थोड़ा हौसले की जरूरत है। आपको अकल से बॉलिंग करनी है, क्योंकि ये क्रूशियल स्टेज पे आ गया मैच। यहाँ से अब 11 बॉलों पे 21 रन है, ये किसी भी तरफ जा सकता है फैसले ये मैच। फखर जमान एक बार फिर एक्शन में है, करीब आए हैं, समझा रहे हैं कि अपने इधर कूल रखिए माइंड को, अकल से बॉल कीजिए, दूर बॉल कीजिए। जी बिल्कुल, और पीएसएल के ड्राफ्ट की भी आमद है। इससे बड़ी स्टेज हो नहीं सकती कि आप अपना टैलेंट शोकेस करें। ये एक बहुत ही लाजवाब स्ट्राइक थी जहांदाद की। तो फिर यहां पे एक थोड़ी सी नजर आई कि हर बॉल आप एक एरिया में नहीं खेल सकते। किसी लेवल ऑफ क्रिकेट में तो आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन थोड़े बड़े लेवल क्रिकेट में आपको वेरिएशन होनी चाहिए आपके स्ट्रोक प्ले में। अच्छा कमबैक किया आदिल ने, हालांकि फिर भी बॉल फुल था, वो जो खिंची हुई लेंथ थी उसको छोड़ दिया है एबटाबाद के बॉलर्स ने पिछले 2 ओवर्स में। यार ये पार्टनरशिप मैच विनिंग पार्टनरशिप हो सकती है। 33 रन 13 बॉलों पे इन दोनों ने बनाए हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एबटाबाद आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन शानदार कमबैक। इस मरतबा एज लगा और ये चौका। इस मरतबा किस्मत ने भी साथ दिया रजा का, और रावलपिंडी की टीम इस वक्त एक रिदम से जा रही है, और अब प्रेशर एबटाबाद पर आ गया है। ये इनएक्सपीरियंस है आदिल की जानिब से। इतने अच्छे ओवर किए हैं, लेकिन आखिरी ओवर में यहाँ पे गलती कर रहे हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अगर थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर है तो एज भी 4 रन के लिए जाएगा। ऑल्दो ये लेंथ दूर थी, लेकिन लाइन बहुत खराब थी। 15 गेंदों पर 37 रन, अपना डिसिप्लिन छोड़ दिया। यही एक पॉइंट होता है जो यंगस्टर्स अंडर प्रेशर क्रंच सिचुएशन में, और ये इस चीज को एहसास हुआ यासिर को भी। और आप अगर देखें तो लाइन, जैसा आपने कहा कि उनकी वो इतनी बुरी लेंथ, सॉरी जो है इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन लाइन ऐसी थी कि रजा को हाथ चलाने का मौका मिला। अब फुल टॉस, फिर गैप में निकल गई है। 2 रन तो आराम से बन जाएंगे, और 2 ही बने। अच्छा आगाज है ये ओवर का। अब सिर्फ 14 रन रह गए हैं 8 गेंदों पर। बहुत ही शानदार आगाज इस नेशनल T20 का। इससे पहले हमने, जैसे आपने जिक्र किया कि एक मैच टाई हो गया सियालकोट का, और अब ये मैच भी नेल बाइटर, आखिरी बॉल तक जाएगा ये मैच भी। पिंडी का डगआउट आपने देखा, राहिल मजीद, जवाद हमीद बहुत ही एक्साइटेड हैं। जमान खान ने पैड पहने हुए हैं, पिंडी ख्वाहिश करेगा कि उनकी बारी ना ही आए तो बेहतर है। और ये हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन इस मर्तबा गेंद गैप में गिर गई, यासिर से दूर थी। क्या एक्शन पैक्ट आगाज है इस नेशनल T20 कप का। इससे जबरदस्त मैच हो नहीं सकता पहला मैच। या नो डाउट। और रावलपिंडी ने इनकार किया है गिव अप करने को। वो लड़ रहे हैं, वो एंड तक लड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहां पे एबटाबाद आराम से मैच जीता था, और अब ये चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। यहाँ पे रिस्टी शॉट खेले हैं, लेकिन हवा में बॉल ज्यादा चली गई, प्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि एक गैप मौजूद है मिड विकेट पे, शायद उसी को ढूंढना चाह रहे थे।
यहाँ लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट इन्हीं दोनों ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी। 37 रन रजा ने बनाए थे, 24 रन जहादाद ने बनाए थे, 258 रन चेस किए थे लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट। तो ये एक बार फिर दोहराते हुए उसी पार्टनरशिप को। 7 गेंदें 13 रन। आदिल का आखिरी स्पेल की आखिरी गेंद है। इस ओवर ने उनके फिगर्स का हुलिया कुछ बिगाड़ा है, लेकिन विकेट यहां पे काम कर जाएगी एबटाबाद के लिए। अच्छा फिनिश किया, 2 की कॉल है। रजा बहुत तेजी से मुड़ गए और पहुंच जाएंगे। जबरदस्त ओवर रावलपिंडी के लिए। 19 ओवर्स के बाद 167 पे 6 और 11 रन बच गए हैं आखिरी ओवर में। अच्छी गेम में अवेयरनेस दिखाई है क्योंकि लंबी बाउंड्री है और दोनों यंग हैं, दोनों बहुत फिट हैं और ये आइडियल है रावलपिंडी के लिए कि 2 फिट क्रिकेटर्स इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं क्योंकि भाग के रन्स होंगे और अब 11 में भी 6 बॉलों पे 11 रन्स बनाने हैं तो बेहतर होगा कि आप भागने की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखें। 167 पे 6। आखिर 2 ओवर्स में 21 रन दिए हैं। ऑप्शंस क्या हैं फखर जमान के पास? खालिद उस्मान ये चांस शायद ना लें। एतजाज ने भी 3 ओवर में 24 रन दिए हैं। आप किसको बॉल करवाते हैं यहाँ पे अली? देखिए फास्ट बॉलर ही होगा और आकिब ही वो चॉइस है। ऑल्दो 2 ओवर्स में 20 रन 21 रन दिए हुए हैं, लेकिन स्टिल बैक करेंगे यासिर शाह आकिब को ही क्योंकि फास्ट बॉलर के बाद बेहतर चांस होता है जब इतने कम रन रह जाएं। क्या हम दूसरा सुपर ओवर देखेंगे आज के दिन में? क्या ये मैच टाई की तरफ जाएगा फैसल? ये आज का पहला मैच है। दोनों टीमें चाहेंगे नहीं क्योंकि एक बहुत ही नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस होता है। इतना क्लोज मैच अगर आप बचा दें और स्पेशली इस रन चेज में एबटाबाद को लगेगा अगर टाई हो गया और ये सुपर ओवर पे चला गया तो एबटाबाद को लगेगा कि मैच उनके हाथों से निकल गया क्योंकि एक टाइम पे वो क्रूज कर रहे थे। हाइट देखनी होगी। 4 रन के साथ जबरदस्त आगाज और यकीनन नो बॉल। यहाँ बहुत ही कमाल की गेम अवेयरनेस दिखा रहे हैं रजा। यहाँ पे फुल टॉस दिया और उसको सिर्फ गाइड किया है थर्ड की जानिब। ये कहीं भी खेल सकते थे लेकिन अच्छी गेम अवेयरनेस, अच्छी मैच्योरिटी दिखाते हुए रजा जोरदार शॉट खेलने नहीं गए, सिर्फ प्लेस किया है। शानदार बैटिंग है ये और अब सिर्फ 6 रन रह गए क्योंकि ये बॉल एक फ्री हिट भी होने वाली है। यहां पे मैच का किस्सा तमाम कर सकते हैं रजा। इस मर्तबा फिर मिड ऑफ का फील्डर धारे के अंदर था, अच्छी ऑप्शन चूज की लेकिन उतना ज्यादा टाइमिंग हासिल नहीं कर सके। 5 गेंदों पर 5 रन। यहां से इट्स रावलपिंडीज मैच टू लूज। यहाँ काफी अब इत्मीनान में होंगे उमर अमीन क्योंकि काफी खराब बैटिंग हुई मिडिल ओवर्स में, लेकिन इस पार्टनरशिप ने उनको दोबारा जिंदा किया कि आप कर सकते हैं, लड़ते रहे और अब सिर्फ 5 रन दूर रावलपिंडी 5 बॉलों पे। और सबसे खास बात कि 2 यंगस्टर्स ने यहां परफॉर्म किया है और ये लीजिए, क्या ये बाहर चली जाएगी? नहीं, यासिर शाह बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं। प्रेशर कैच था और इस कैच को थाम लिया। यहां पे आकिब ने विकेट दिलाई एबटाबाद को और उसके साथ उम्मीद भी। जहां 48 रन की पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हुए हैं आकिब। बड़ा शॉट खेलने गए जहादाद, लेकिन अच्छी बात ये थी कि नीचे यासिर शाह मौजूद थे जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर्स में होता है। अभी भी थोड़ी होप है एबटाबाद के लिए। एक और विकेट गिरते हुए यहाँ पे 7वीं विकेट गिरी है 173 पे। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मसला दूसरे एंड पे हुआ। यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने गए थे, एक बार फिर दूर बॉल किया, लेंथ बॉल किया है जिसे मिड विकेट का कॉर्नर की जानिब खेलना चाहते थे और प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एलिवेशन नहीं मिली और अच्छा कैच यासिर शाह की जानिब से। एबटाबाद की टीम एनालाइज करेगी इस मैच को। जहादाद ने रन तो 11 बनाए लेकिन 40 रन की पार्टनरशिप इनकी हुई 48 रन की रजा के साथ। और जब एबटाबाद अगर एनालाइज करेंगे
तो इस पार्टनरशिप के दौरान उन्होंने जो अपनी बैक ऑफ लेंथ थी एबटाबाद के बॉलर्स ने वो छोड़ दी और अभी भी उन्हें कामयाबी मिली उसी हार्ड लेंथ से इनटू द पिच। और इस विकेट पे ऐसी बॉलों को खेलना आसान नहीं। 114 की स्ट्राइक रेट है मेहरान मुमताज की। सिर्फ 32 रन बनाए, लेकिन ये इस वक्त इनके 5 से 4 रन भी बहुत होंगे टीम के लिए। 4 गेंदें 5 रन। स्विंग एंड अ मिस और चांस है नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस मर्तबा डायरेक्ट हिट की बदौलत 1 रन मिल जाएगा। या डिफ्लेक्ट हुआ, ये बॉल लगा मेहरान मुमताज को, लेकिन जब प्रेशर गेम होता है तो आप भागते हैं, क्योंकि थ्रो की थी विकेट कीपर ने, डिफ्लेक्ट हुआ, मेहरान मुमताज से बॉल स्क्वेयर की तरफ गया और उन्होंने 1 रन हासिल कर लिया। और ये मुझे लगा शायद डायरेक्ट हिट होगी, लेकिन मेहरान को लगा, लेकिन उनकी इंटेंशन नहीं थी और ही इज वेल विद इन हिज राइट टू रन फॉर दैट। इतने टाइट गेम में उनको स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना था। हमने देखा अक्सर के प्लेयर्स नहीं भी भागते इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन आप उनसे शिकायत नहीं कर सकते। अगर वो ना भागते तो आप शुक्रिया जरूर अदा करते, लेकिन शिकायत नहीं कर सकते। 3 गेंदें 4 रन। रजा मैन ऑफ द मोमेंट। 36 रन बनाए सिर्फ 16 गेंदों पर। मैच विनिंग इनिंग्स, 7 चौके लगाए। थर्ड मैन का फील्डर दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर। इस मतलब गैप निकाला, 2 रन की कॉल है, लंबी थ्रो है इसलिए 2 रन बन जाएंगे। जब भी बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगा 2 रन तो मिलेंगे, क्योंकि ये लंबी बाउंड्री है। यहाँ पे अच्छी बैटिंग करते हुए रजा, गेम अवेयरनेस अच्छी है, फील्डर्स को मार्क किया है कहाँ पे आप भाग सकते हैं, कितना दूर बॉल गया है, ये सारी गेम अवेयरनेस के पार्ट हैं यहाँ पे बाखूबी निभाते हुए। और अब रावलपिंडी सिर्फ 2 रन दूर है 2 बॉलों पे। फैसल, एक बार फिर मैं पूछूंगा आपसे, क्या हम टाई देख सकते हैं? सुपर ओवर। बिल्कुल चांस है, क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर पीछे, फाइन लेग का फील्डर पीछे। क्या वो बैक ऑफ अ लेंथ इनटू द पिच बॉल करेंगे? बड़ी स्क्वायर बाउंड्री है ऑन साइड पर, लेकिन अच्छी अवेयरनेस दिखाई रजा ने, जो ऑफ साइड को ओपन कर रहे हैं। अभी भी वो ऑफ साइड की फील्ड देख रहे हैं। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर है। 2 गेंदें 2 रन। इस मरतबा रूम मिला, फील्डर मौजूद, लेकिन उनकी 5 से दूर और 4 रन। और रावलपिंडी ने यह मुकाबला जीत लिया। क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली रजा ने, और इस डगमगाती रन चेस को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया। क्या शानदार मैच हुआ यहां पर, और बजा तौर पर रावलपिंडी जीत की हकदार है। जी हाँ, नो डाउट अबाउट दैट। अनबिलीवेबल सीन्स, बहुत ही शानदार रन चेस रावलपिंडी की जानिब से। डिसअपॉइंटेड होंगे यासिर शाह, क्योंकि मैच इनकी गिरफ्त में था और वहां से खींच के ले गए रजा अपनी शानदार बैटिंग की जानिब। 42 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग। डिसअपॉइंटेड होंगे फखर, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही कमाल की इनिंग खेली थी, लेकिन जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि खराब बॉलिंग आखिरी 4 ओवर में इस चीज की वजह बनी, और आसानी से ये रन चेज मुकम्मल किया रावलपिंडी ने। और ये आखिरी विनिंग शॉट भी उसी चीज की अलामत है। ऑफ स्टंप से बाहर आगे गिरा हुआ गेंद, जबकि इस विकेट पे इनटू द पिच हार्ड लेंथ पे विकेट्स की लाइन से हिट करना मुश्किल था, लेकिन नातजुर्बेकारी आड़े आई एबटाबाद के बॉलर्स की, और नातजुर्बेकारी के बावजूद पिंडी के 2 नौजवानों ने इस रन चेज को बिल्कुल एन लम्हे पर जो है अपने इख्तिताम तक पहुंचाया। 1 गेंद का खेल बचा था। समीउल्लाह न्याजी खुश होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी
नहीं सकते, जो सोशल मीडिया बॉय हैं रावलपिंडी की टीम के। और वो मौजूद हैं अहमर सईद के साथ। ओवर टू यू अहमर। रजा, शानदार इनिंग, 42 रन की मैच विनिंग इनिंग्स, क्या कहेंगे इस इनिंग के बारे में? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और 2 दिन से पिछले बीमार भी था, तो स्पेशली थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बैकअप किया, स्पिरिट्स हाई किए, और मेरे कोचिंग स्टाफ का, डॉक्टर साहब का और हेड कोच, असिस्टेंट कोच साहब का बहुत शुक्रिया। रजा, आप पिंडी में जो है वो मोहम्मद आमिर के क्लब से खेलते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे अपने सफ़र के बारे में क्रिकेट के अब तक के? जी, बहुत स्ट्रगल किया है, शुरू में क्रिकेट नहीं मिली, थोड़ा बेंच स्ट्रेंथ में भी बहुत रहा, तो उसी का सिला मिला है कि मैंने सब्र किया, और अल्लाह ताला का दोबारा शुक्र है। जब हाफ टाइम पे जब ये आपने टोटल देखा था, तो क्या अंदर कप्तान ने बात की थी कि क्या ये हासिल किया जा सकता है आराम से, या क्या माहौल था अंदर का? बस स्किपर को मैंने कहा इंटेंट रखेंगे, इंशाल्लाह हम चेस करेंगे, तो इंटेंट रखा, अल्लाह ताला ने साथ दिया। चले, बहुत ही अच्छी आपने बैटिंग की है, और ये इस कम उम्र में आपके जो एक कंधों पे ये सर है, बहुत ही मुझे अच्छा और मजबूत सर लग रहा है, तो आइंदा के लिए आपका क्या इरादा है? जी इंशाल्लाह, अभी तो बहुत परफॉर्मेंसें करनी है, अभी जस्ट स्टार्ट है। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये अभी तो सिर्फ स्टार्ट है फैसल, उन्होंने कहा, और क्या ही शानदार स्टार्ट है इनके करियर का। इस तरह से इनिंग खेलना एक अलग बात है, लेकिन मैच विनिंग इनिंग खेलना, रन चेस के अंदर एक इनिंग खेलना, ये श्योरली बताता है कि ये एक थिंकिंग माइंड है, एक शानदार प्रोस्पेक्ट है। बड़े कॉन्फिडेंट यंग मैन है। आगाज तो बहुत अच्छा, आगे भी इसको कैरी करना होगा। रावलपिंडी की इनिंग्स का आगाज ज्यादा अच्छा नहीं था, यासिर ने कोशिश जरूर की, पावर प्ले में उस तरह रन आए नहीं, गाहे गाहे बाउंड्रीज मिलती रही। जीशान मलिक ने ट्राई की, लेकिन पावर प्ले से पहले 2 बड़ी हिट्स लगाने के बाद वो आउट हो गए, और ये पावर प्ले एबटाबाद के नाम रहा। फिर यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग की, इस स्लो स्लगिश विकेट पे अच्छी लाइन और लेंथ की बॉलिंग को बड़ी हिटें लगाना आसान काम नहीं था। कैचिंग अच्छी थी एबटाबाद की, पिंडी की निस्बत। हैदर अली को पहली बॉल पर डक यासिर ने आउट किया, और यहाँ पर भी विकेट गिरती रही, रन्स उतनी तेजी से आए नहीं, प्रेशर बिल्ड होता रहा। मुबस्सिर और उमर अमीन से तवक्को थी कि वो कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी स्लॉपी क्रिकेट, मुबस्सिर रन आउट हो गए। देखिए कैसे गलत एंगल पे भागे, और वही 2 इंचेस से वो पीछे रह गए। उमर अमीन की इनिंग्स का भी खात्मा हुआ, लेकिन यहाँ पे रजा ने अपने टैलेंट का भरपूर नमूना पेश किया, जहांदाद ने भी साथ दिया उनका। रजा की वेरिएशन ऑफ स्ट्रोक्स, जो रेंज थी वो काफी जबरदस्त थी। जहांदाद आउट हुए आखिरी ओवर में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी एबटाबाद के लिए। 5वीं गेंद 20वें ओवर की बाउंड्री की तरफ गई, रजा ने विनिंग स्ट्रोक खेला और विनिंग सेल्फी ली मेहरान मुमताज ने।
जमान आपके लिए। It's in the air and gone. Tried to reverse and just couldn't clear that fielder at backward point. Gone. Played on to the stumps and it has worked. Down on one knee and just scoops that over the keeper for a boundary. और दूसरी जानिब लाइसेंस मिला है फखर जमान को, लेकिन अब नहीं बच पाएंगे।